Brooke Rollins, who is the Agricultural Secretary of the United States, she said, and this is 5 days back, on the day when the trade deal was announced, she's clearly saying, new US-India deal will export more American farm products to India's massive market. In 2024, America's agricultural trade deficit with India was 1.3 billion. India's growing population is an important market for American agricultural products, and today's deal will go a long way to reduce that deficit. So this is not my tweet. She clearly says, thank you, President of the United States, for once again delivering for our American farmers. If the government doesn't agree with a tweet, so where is the disapproval letter, or where is the communication that the government has sent in protest to the tweet that has been sent out 5 days back? Sir, अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रहा है इस डील से अमेरिका का किसानों का फायदा है, इसीलिए हम अमेरिका का सभापति का धन्यवाद करता है. And the Indian government of the union has not written a line in protest of what the agriculture secretary has tweeted. So now I come to youth. So the much publicized PM internship scheme was allocated over 10,800 crores. Less than 5% of the amount has been utilized. Similarly, the PM Young Achiever Scholarship, which was meant to uplift the talented students from marginalized backgrounds, saw 31% of its fund go unused in financial year 25-26. Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita Bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. So when a democratically passed law maintained to strengthen protection is left in a limbo, it expresses a lack of intent. This reminds me that I come from an India that promises to double farmers' income. And I come from an India where 1,11,174 farmers and agricultural laborers, brothers and sisters, have been forced to commit suicide. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao. And I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported. So now I come to 3 cracks in the constitution. Number 1, so hatred has now been normalized. It has moved from margin to the mainstream. So if I talk about cases registered for promoting enmity between religious and social groups, the number of cases has doubled between 2021 and 2023. And this rise didn't happen in silence. It happened alongside political speeches, public rallies, and calculated dog whistles. When hate goes unpunished, it spreads. When it spreads, minorities pay the price. Second, hate is no longer whispered. It has become a broadcast. So our country has documented more than 1,300 hate speeches in a single year. When such volume of hate fills public space, the government refuses to act decisively, swiftly, then the message is clear, sir. Intimidation is tolerated and silence is the union's policy. Third, so the education empowerment scheme under the Ministry of Minority Affairs has just used 8% of its total funds, while the 35% of the ministry's allocation, 27% under tribal affairs and 28% under scheduled tribes remain unutilized. Sir, even schemes like a scholarship like Maulana Azad National Fellowship, pre-matric scholarship,
and Paro Pradesh have been hollowed out. So now I come to 777, which is the triple power grab. Over the last decade, the government has treated institutions as the government's own personal property. So the parliament is silenced, debates are curtailed, scrutiny is abundant, and even the deputy speaker's post is kept vacant because dissent is inconvenient. So investigating agencies no longer investigate, they intimidate, chasing the opposition with raids and arrests. While convictions become negligible, as independent institutions weakened, public institutions are put on the auction block. Air India, BPCL, the shipping corporation, built by generation with public money, are being sold like distressed assets, hastily, without any sort of accountability. So this is described as reform, but it is actually a managed handover. When institutions are bent to serve power and national assets are reduced to headlines and handover, the constitution is not broken in protest, it's torn apart. Sir, I come from an India where the Honorable Prime Minister says, na khaunga, na khane dunga. And I also come from an India where questioning the washing machine that gave reprieve to 23 of the 25 leaders who joined the BJP makes you the most corrupt one. So now I come to triple jumla on finances. Agriculture. So the budget waxes eloquent about coconut, cocoa, cashew, sandalwood, fisheries and AI advisories, but remains silent on MSP assurances, procurement expansion. There is no price stabilization fund, no diesel support, no fertilizer relief, and no electrical subsidy. This is diversification without security, and it leaves the majority of Indian farmers trapped in distress. So even the PM Kisan scheme has been stuck at 6,000 rupees since December 2018. Despite soaring input costs and record diesel prices, so in actual, if we see, real terms, farmers are earning less each year. A rupee in 2018 is not a rupee in 2026. So if I speak of healthcare, the government spends less than 0.26% of the GDP. And they might have questions on my source of information. If the need be, I will place all the sources before the table by 8 p.m. tonight. The government spends 0.26% of GDP on public health even today. The national health policy promised 2.5% of GDP. What we get instead is postponement, excuses, and under-allocation. In a country where illness is still the fastest road to poverty, this budget chooses flyover over first aid, optics over oxygen, and announcement over actual care. So if I speak of infrastructure, the smart city mission promised transformation in 100 cities with over 2 lakh crore. Yet a decade later, what we have is half-dug roads and half-built homes. Instead of finishing the job, this budget announces new economic regions. So under the Jal Jeevan mission, funds were cut by 74%, forcing states to pick up the bill. In higher education, 55,000 crore is spent on management, but 2.68 crore on infrastructure, not even enough to build a world-class lab. So now I come to my 999, the triple truth trap. And what I mean by truth is, the accountability on the government, sir, primarily rests on 3 pillars. One is the RTI Act. But when I speak of transparency, it diluted the RTI Act by expanding personal information as a ground for refusal. Sir, if you speak of PM cares, the PMO claims it lies outside the purview of RTI because it's a private fund. A fund that is created by public authority in a public office with the money of the people is being claimed as a private fund. There's no accountability. Sir, NFHS and NCRB data has been frozen because welfare still runs on census 2011. Sir, if I am to summarize the budget from the perspective of 3 stalwarts,
B.R. Ambedkar warned us. What is the moral verdict of the budget? If we were to look at it from the perspective of Dr. Ambedkar, Gandhi ji, or Swami Vivekananda, Dr. Ambedkar warned us that democracy is not just institutions. It is a constitutional morality. Gandhi ji taught us economics divorced from ethics is violence. Swami Vivekananda reminded us that a nation cannot rise by crushing the weakest. Well, this budget violates all three. In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर. I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डाइपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा, सब पर टैक्स. कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स. सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स. जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स. काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स. बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स. बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स. और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है. This summarizes the budget. Sir, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स. ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है. सर नाउ आई कम टू 1010, मेरा लास्ट ट्रिपल. मैंने 9 ट्रिपल का बात किया, अब 10वां कर रहा हूं. सर आई विल एंड विथ 3 dates, 3 moments of history: 2016, 2021 and 2024. 3 elections, 3 verdicts, 3 decisive defeats for the BJP in West Bengal. And after this triple defeat, a 4th one is no longer a warning. It is approaching. Sir, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं. Let me come straight. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूं persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है. हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. You want to profile and persecute our youth? We will protect them. You want to starve our schemes? We will sustain our people. Bengal's spine was not ever bent by surrender, nor softened by sermons of hate. It is forged in struggle, tempered in sacrifice, and is not for sale. Go ahead, send your audits. We will answer them. Unleash your agencies. We will confront them. Delay our clearances. We will chronicle every day stolen, every stolen day. But remember this: files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. You will wear the mask of the union, we will raise the mirror of the people. And when truth looks back, power will bend and we'll have to blink first. So this reminds me again
that I come from an India that celebrates labor as a backbone of the economy, the hands that build our highways, factories, ports, cities, this parliament. But I also represent an India where that very labor, when it travels from Bengal, is no longer seen as a labor, he's seen as a suspect. Yeah. Punished for the language he speaks. I come from an India where Northeast is proudly called Ashtalakshmi. And I also come from an India where Manipur bled for 864 days and the Prime Minister found no time to visit. I come from an India that derives its vocabulary from Ishwar Chandra Vidyasagar. And I also come from an India where Vidyasagar's bust was vandalized by ruling party at the center. I come from an India where we worship Ma Durga as Supreme Shakti. And I also come from an India where Ma Durga's ancestry is questioned by BJP leaders. Sir, I really come from to India. And honestly, I'm tired of explaining this house which India I belong to. Because the truth are, they both exist. And until and unless we acknowledge the second one exists, we will never be able to be the first one we claim to be. So budgets can divide, politics can polarize, power can pretend, but there's something deeper than budgets, older than governments, and stronger than fear, which is the moral imagination of the people. When institutions weaken and language loses its faith, it is our literature, our culture, our shared memory that rises to remind the nation of who it is and who it must never cease to be. So I finally return to the Constitution. When you open the Constitution, it opens with the words, "We, the people of India." It's not a ceremonial phrase. It's a declaration of sovereignty. It's a reminder that power flows upward from the people, not the other way down. That governments may rule, but people remain the supreme. That sentence is not meant to be recited, it is meant to be lived. And as long as people remember it, no fear can last, no injustice can endure, and no republic can ever truly be taken away. And thus today, I do not end with slogans. I end with conscience, and I end with voice of Bengal. এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। Thank you. Next speaker, Sri T.R. Baluji. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to discuss on the subject matter of budget estimate 26-27. First of all, I would like to congratulate Madam Nirmala Sitharamanji for having brought the budget estimates for the consecutive 9th time, next to Mr. Chidambaram, who has also done the same thing in the same parliament. Sir, Finance Minister claims she aims at developed India by 2047. India has programmed like artificial intelligence, biopharma, semiconductors, critical minerals, and they are given a lot of priority and importance. But the question is, how efficiently Madam Nirmala ji is going to implement them with a sustained push. So strategy of the government is said to be reducing revenue expenditure and increasing capital expenditure. It is also claimed that revenue expenditure has fallen by 11% in the last 10 years. That is from 88% in 2014-15 to 77% 26-27. It is also stated
that reduction of the revenue expenditure included 7% of subsidies. But what is the reality? Your usual practice is reduction of subsidies in the budget is made, and in the next 6 months you come up with additional demands for subsidies through supplementary demands. That is what I have also mentioned in the last supplementary demands in 25-26. Within 6 months, things became haywire. Now, at the end of the current fiscal year, you are saying that the revenue receipts shortfall is around 78,086 crores. Decrease in revenue expenditure is 1,05,503 crores. The fall in capital expenditure is 1,44,376 crores. It's a very huge fall. It gives no hope of credibility. Budget 26-27. Expenditure estimated is 53.43 lakhs crores. Expenditure proposed in 25-26 was 50.65 lakhs crores. Now FM is asking 3 lakh crores more in upcoming fiscal year. Usually the government used to announce big schemes in the budget, but even after several months, no progress is the result. Last year, 15th August, Employment Linked Incentive (ELI) scheme was announced, and the incentive to labor and industry to provide additional 3.5 lakhs crores, 5 crores jobs, with the outlay of 99,446 crores was launched, but the scheme has not taken off. Another non-starter is Research and Development Innovation RDI scheme, announced with the effect from 1/7/25 and was said to be implemented with a corpus of 1 lakh crore, and provision of 20,000 crores was made in 25-26 budget. But no progress has been achieved in this effort. Also, this was also properly responded by the Honorable Minister during his reply in the Lok Sabha. Coconut production in Tamil Nadu. Tamil Nadu is the second largest coconut production state. 12 lakh acres are under cocoa cultivation, next to paddy. Besides Pollachi, Pattukottai, Tiruchi, Dindigul, and others, southern districts are major coconut producing districts. It has got high export potential to an extent of 3,500 crores per year. The production has fallen because of the root diseases, but Government of India has not taken care, and the root diseases still remain. Economic survey pointed out that the agricultural growth has slowed down to 3.5% in 25-26 from 4.4%, nearly 1.1% fall. The tariff and trade agreement unilaterally announced by USA bound to open floodgates to import of agricultural products into India. This will be disastrous for our farmers and farm sector. The Finance Minister said in a speech that rich value crops like coconut, cocoa, sandalwood, cashews, etc. will be given special support. But the allocation was just 350 crores only. The farmers' organization are condemning this announcement of government is nothing but a naive rhetoric. Banana is another crop that requires special attention and support from Government of India. Tamil Nadu is #1 in banana cultivation and exports around 4,000 crores every year. Government of India should come forward to give special intensive to banana cultivation to boost exports. Union government has been giving stepmotherly treatment to Tamil Nadu, and there has been no special scheme or financial allocation so far. Even the prestigious projects like Setu Samuddram, which were implemented by UPA, has been shelved on political grounds. UPA government had gifted 69 large projects and very important projects
in all sectors during 2004 and 2014. The last of the schemes included the Tamil as Semmozhi, Chennai Port as to Madurai elevated bridge of 21 kilometers, abolition of Senva to protect textile industry, new railway station, new railway division at Salem, Thiruvarur Central University, IEM at Trichy, Indian Maritime University at Chennai, etc. On the contrary, it lasts 12 years. For the past 12 years, one project has come, that is AIMS Madurai. Not yet taken up. AIMS Madurai is still under the ground. It has not yet been taken up. Tamil Nadu CM had also stated during UPA, Tamil Nadu was allotted 11% of plan expenditure, and now Tamil Nadu is given 0 only. Government of India is not funding Metro Rail Project number 2, Samagra Shiksha Fund to the tune of 3,548 crores, not yet released. Madurai and Coimbatore Metro, which has been provided 21,000 crores, and project submitted to the Central Union Government has not given approval. But at the same time, small towns like Agra, Bhubaneswar, Navi Mumbai, and Indore have been permitted. Jal Jeevan Fund rupees 3,112 crores had not been released. Railway schemes 289.73 crores to Thiruvananthapuram Kanyakumari not released so far for the land acquisition. Further, to purchase 931 hectares of land, funds have not been provided. CM Tamil Nadu has also urged that the devolution from the divisible pool from taxes should be increased to 50%, but it has fallen on deaf ears of the union government, and at present 41% is retained. I also urge the Government of India that cess and other taxes which are not being shared with the state should be abolished immediately, or they should be brought under the divisible pool. Such anti-federal attitude and exploitation must be ended. What happened to the promises made by the Honorable Prime Minister of India? 2 lakhs jobs per year. What has happened? 15 lakhs per family. What has happened? Nobody, it's all dumbfounded. For this question, always for the past 10 years, Government of India, the people of Government of India representing the Government of India, they are keeping lukewarm position only. Much talked about MSP not implemented. Double the agriculture income not implemented. And Dr. Swaminathan's recommendations have become only slogans to every election. People of the industry, business, the middle class, and even the ordinary men on the street have expressed dissatisfaction and said your budget is nothing but the rhetoric of a sloganeering government with little use to the common mass. Before I conclude, how are you going to arrest the jet speed depreciation of rupee against US dollar? It is already around 92 per dollar. Prime Minister has lauded this budget as a historic. There is proverb in Tamil, Kakaki Tangunjam Pungunji. It means to a crow, its offspring is golden. Thank you very much. Thank you very much. Next speaker, Sri B. Nagaraju. Respected Speaker, sir, మన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క దూరదృష్టి నాయకత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ముందు చూపుతో మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ను సమర్పించినటువంటి గౌరవనీయులైన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారిని అభినందిస్తూ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ను 3 కర్తవ్యాల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా మొదటి అంశం వచ్చేసి ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, రెండవ అంశం వచ్చేసి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, మూడవ అంశం సమగ్రాభివృద్ధిని నిర్ధారించడం. ఈ 3 అంశాల ఆధారంగా
ఇది స్పష్టమైన మ్యాక్రో ఆర్థిక దిశను నిర్దేశిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఈ బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష నాన్ డెబిట్ రిసిప్ట్స్ కోసం 36.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలను మరియు మొత్తం వ్యయంను 53.5 lakhs కోట్లను అంచనా వేయబడింది అధ్యక్ష. మూలధన వ్యయం వచ్చేసి 12.2 లక్షల కోట్లకు పెంచబడింది అధ్యక్ష, ఎన్నడూ లేని విధంగా. అంతేగాక ఇది వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్లో మౌలిక వసతుల మరియు ఆధారిత వృద్ధికి ప్రభుత్వం యొక్క కట్టుబాటును చూపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఆర్థిక లోటు వచ్చేసి జీడిపిలో 4.3% తగ్గించబడింది. రుణం మరియు జీడిపి నిష్పత్తి 55.6%కి తగ్గేలా అంచనా వేయబడింది అధ్యక్ష. ఈ సంఖ్యలన్నవి అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ప్రతిపక్షాలు ఇంతసేపు వారి యొక్క స్పీచ్లో ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ మీద నిందలు మోపుతూ బడ్జెట్ మీద ఇది చేస్తామని సరికాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే భారత్ అనేది తయారీ రంగంలో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ వ్యూహాత్మక రంగాలకు పెద్దపీట వేయబడింది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా బయోఫార్మా శక్తి కోసం 10,000 కోట్ల రూపాయలను మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ భాగాల తయారీకి 40,000 కోట్ల రూపాయలను, కార్బన్ క్యాప్చర్ సాంకేతికలకు 20,000 కోట్ల రూపాయలను మరియు ఛాంపియన్ ఎస్ఎంఈల కింద 10,000 కోట్ల రూపాయల నిధిని ఈ బడ్జెట్లో ఏర్పాటు చేశారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక యుగంలో పాశ్చాత్య దేశాలతో పోటీ పడుతూ టెక్నాలజీని ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజలకు అవసరాల కోసం ఏ రోజుకి ఆ రోజు పోటీ పడుతూ ఈ బడ్జెట్లో 7 హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రతిపాదించబడ్డాయి అధ్యక్ష. అంతేగాక 20 జాతీయ జల మార్గాలు అభివృద్ధి చేయబడుతున్నాయి అధ్యక్ష. మూలధన వ్యయం కింద చరిత్రాత్మక స్థాయిలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఇది సాధారణ బడ్జెట్ కాదు అధ్యక్ష, ఇది నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల బడ్జెట్గా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. సరఫరా గొలుసులను మరియు బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ఎగుమతులను పెంపొందించడం మరియు సూక్ష్మ మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా రైతులకు మద్దతు ధర ఇవ్వడంలో మరియు భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ పోటీలో ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భాగంగా ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించారని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈ బడ్జెట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చిందో ప్రత్యేకంగా 2 విషయాల్లో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 64,320 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించబడ్డాయి అధ్యక్ష. విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర వాటా 4.21%గా పెరిగింది. ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధి అవసరాలను గుర్తించిన నిర్ణయంగా భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మేము గౌరవ నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో డెడికేటెడ్ రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ కారిడార్ల ప్రకటన మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చారిత్రాత్మక అవకాశం కల్పించినటువంటి అవకాశం మరియు ఖనిజ సంపద ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా మేము తవ్వకాల దశను దాటి విలువ ఆధారిత పరిశ్రమల వైపు అడుగులు వేస్తూ ప్రాసెసింగ్ మరియు పరిశోధన ఆధునిక తయారీ వైపు ముందుకు సాగుతున్న విధంగా పనిచేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఈ బడ్జెట్ అన్నది ఏపీలో వచ్చేసి అధ్యక్ష మాకు తీర ప్రాంతం అనేది సుదీర్ఘంగా ఉంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా మత్స్య మరియు ఎగుమతులకు క్లస్టర్లకు మద్దతు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ రూపొందించారు అధ్యక్ష. అంతేగాక డ్యూటీ ఫ్రీ దిగుమతుల పరిమితిని 1% నుంచి 3% వరకు పెంచడం వలన వ్యయం భారం తగ్గుతుంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా భారతదేశ ఈజెడ్లో చేపల వేటకు ఇచ్చినటువంటి మద్దతు మా మత్స్యకారులకు ఆదాయం పెంపుకు దోహదపడుతుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ట్రైబల్ ఏరియాలో భాగంగా అరకులోయలో సస్టైనబుల్ మౌంటైన్ ట్రైల్స్ను మరియు పులికాట్ సరస్సు యొక్క పరిసరాల్లో ఈ పక్షి వీక్షణ మార్గాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు పర్యావరణ పరంగా పర్యాటక పరంగా కేంద్రంగా నిలబడుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఇవి కాక ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడమే కాకుండా గిరిజన ప్రాంతాలకు మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నట్టుగా ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష 600 కోట్లతో నైపుణ్య మరియు రూపాంతర పైలట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపిక చేయడం చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే యువతకు పెద్ద అవకాశంగా మారుతా ఉంది అధ్యక్ష. ఇది మా యువత ఉద్యోగార్థులనే కాకుండా ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా మార్చే దిశగా ఇది సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష మా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యంగా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్లో భాగంగా హైదరాబాద్ టు చెన్నై టు బెంగళూరు ఈ హైస్పీడ్ కారిడార్లు అనేటివి మా రాష్ట్రానికి చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ హైదరాబాద్ టు చెన్నై అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మా అమరావతి అనేది టచ్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ అనే కార్యక్రమంలో మా సొంత పార్లమెంట్ అయినటువంటి
ముఖ్యంగా ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్లో అధ్యక్ష మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాధారమైనటువంటి పోలవరం జీవనాడు లాంటిది అధ్యక్ష. అది 2027 కల్లా కంప్లీట్ చేయాలనే కృతనిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఈ జలవనరుల శాఖకు ముఖ్యంగా అత్యధికంగా నిధులు కేటాయించేందుకు చాలా చాలా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక అమరావతి నిర్మాణం అనేది మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష. ఆ స్టేట్ క్యాపిటల్ నిర్మాణంలో భాగంగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కూడా నిధులు పుష్కలంగా కేటాయించినందుకు నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక ఈ బడ్జెట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా గుర్తించింది అధ్యక్ష మా స్టేట్ను. ఇకపోతే అధ్యక్ష మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైనటువంటి గౌరవనీయ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క దూరదృష్టి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ కేటాయింపులు అన్నటివి వేగవంతమైన అభివృద్ధిగా మార్చగలవు. ఈ పెట్టుబడులను ముఖ్యంగా పరిశ్రమలకు మరియు ఏపీ యొక్క భవిష్యత్తును మార్చగలని చెప్పేసి భావిస్తున్నాము అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ఫైనల్గా ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గం కర్నూలు పార్లమెంట్ గురించి 2 విషయాలు తెలియజేయాలని తెలుసు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్లో నా కర్నూలు పార్లమెంటుకు హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కారిడార్లో భాగంగా కర్నూలు పార్లమెంట్ అనేది మధ్య ప్రాంతంలో వస్తుంది అధ్యక్ష. మాకు చాలా సునాయాసంగా 2 రాష్ట్రాల మధ్యన 2 మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మధ్యన మా కర్నూలు పార్లమెంటుకు ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తున్నందుకు చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతేగాక ఈ రోడ్ మినిస్ట్రీలో భాగంగా ఈ రోడ్ మినిస్ట్రీకి అత్యధికంగా డబ్బులు కేటాయింపులు జరిగినాయి అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్లో. అందులో భాగంగా మా కర్నూలు బళ్ళారి నేషనల్ హైవే వేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా అధ్యక్ష గత బడ్జెట్లో మా కర్నూలు ప్రాంతంలో ఓర్వకల్కు ఇండస్ట్రియల్ నోడ్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా ఎన్డీఏ కూటమి అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా మాకు పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద ఆ ఓర్వకల్ హబ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ హబ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మా అంతా వెనుకబడిన ప్రాంతం అధ్యక్ష. ఈ పూర్వోదయ స్కీమ్లో భాగంగా మంత్రాలయం రైల్వే కనెక్టివిటీ కూడా వేయాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా అధ్యక్ష అటల్ భుజన్ యోజన కింద, ఎందుకంటే మా రాయలసీమ ప్రాంతం అంతా చాలా డ్రాట్ ఏరియా, ఆ ప్రాంతంలో గ్రౌండ్ వాటర్ డెవలప్ చేయాలంటే అటల్ భుజన్ యోజన పథకం కింద సెలెక్టెడ్ కాబట్టి మా జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. రెస్పెక్టెడ్ స్పీకర్ సార్, చివరిగా ముఖ్యంగా మా గౌరవనీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల యొక్క నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పరిపాలనా సామర్థ్యం మరియు సాంకేతిక దృష్టి మరియు సంస్కరణాత్మక పాలనలో నిరంతరం ముందంజలో నిలిచి ఉంది అధ్యక్ష. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయం ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ప్రజలకు స్పష్టమైన ఫలితాలని అందిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్పీకర్ గారికి మరియు నా కర్నూలు పార్లమెంట్ ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. నమస్కారం అధ్యక్ష. Thank you very much. Next speaker, Sri Anil Desai ji. Thank you, Deputy Chair, sir. Sir, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 26-27 in this House on auspicious day of Maghi Purnima. Lot of expectations were there from the Indian population, common people, and all alike. The total expenditure estimate of 53.47 lakh crore, that is 7.7% higher than revised estimates of 25-26 that was presented. In this, interest payments account for 26% of the total expenditure, and which is 40% of the revenue receipts. Whereas the total receipts other than borrowings are estimated to be 36.51 lakh crores, which is 7.2 higher than the revised estimates of 25-26. Revenue deficit in 26-27 is targeted at 1.5% of the GDP, which is the same like revised estimate of 25-26. It is unchanged. Fiscal deficit of 26-27 is targeted at 4.3% of the GDP, which is lower than the revised estimates of 4.4 of GDP of 25-26. So as far as debt is concerned, government aims to reduce its outstanding liabilities to around 50% of the GDP by 2031, that is in 5 years. In 26-27, outstanding liabilities are estimated to be around 55.6% of the GDP.
This budget 26-27 emphasized the need for fiscal consolidation, targeting a reduction of debt to GDP ratio to 50% plus or minus 1% by year 2030, that is in 5 years, which is now 55.6% of the GDP. So fiscal consolidation is being pursued by cutting total expenditure by 5%, but no significant growth momentum is expected, with only 10.9% of the growth in capital expenditure in terms of GDP. There is no corresponding increase in capital expenditure. So there is marginal increase in union government revenue expenditure, which shows at 39.44 lakh from 25-26 revised estimate to 41.25 lakh crores in 26-27. That is a growth of around 4.5%. There is only a marginal increase in transfer towards centrally sponsored schemes, rising from 5.42 lakh crore in 25-26 to 5.49 lakh crore in 26-27. That is just an increase of 1.28%. Sir, it is to be noted that Finance Commission grants have declined from 1.32 lakh crore in 25-26 budget estimates to 1.29 lakh crore in 26-27 budget estimates. So as far as revenue receipts are concerned, only marginal increase is there in revenue receipts of from 34.30 lakh crore in 25-26 to 35.33 lakh crores in 26-27. That is rise of around 2.90%. There is no estimate of GST compensation cess collection, and budget is silent about the future of GST compensation cess. I think I would request Honorable Finance Minister to shed some light on this aspect, because we would like to know how the compensation cess stands and what is the future course of it. The share of the states has fallen from 14.22 lakh crore in 25-26 to 14.22 lakh crore in 25-26 to 13.93 in 25-26 RA, which is decline of minus 2.07 for year 26-27. The estimated tax share to states in rupees 15.26 lakhs crore, which is only 7.3 higher than the previous year. Even after considering the 16th Finance Commission tax devolution, the centre's tax share to states amounts to 34.65 instead of which is mandated of 41%. 16th Finance Commission recommended state share in divisible pool at its present level of 41%. For horizontal devolution, there is a change in the criteria and weights from 15th Finance Commission. The major change is the criteria inclusion of contribution to GDP, that is 10% weightage is given, and demographic performance by each state. With regard to revenue deficit grants, the 16th Finance Commission has not recommended that the same be granted to the states. When states fall of revenue deficit, they try to get revenue deficit from something from the center to carry on with their projects like development or wherever it is needed. But this time around, Finance Commission has regretted, it has negatived the recommendation, which will put the stress on the states, because states are not able to generate any kind of significant revenue, as GST has already subsumed all taxes and there are hardly any avenues left for the center to generate a revenue of its kind. My state of Maharashtra contributes the maximum to the central exchequer. In recent years, we've seen, sir, that we've been contributing more than 5 lakh crore, 5 to 5.5 lakh crore to the central exchequer, but what we get in return is hardly around 3 lakh crore. Though Maharashtra CM, Sri Fadnavis, has said, and he has praised the entire budget, substantiating the facts that around 1 lakh crore will come to the state of Maharashtra, out of which 98,000 crores will be in the form of devolution or the tax returns what we'll be getting by of it.
and 12,000 crores for various projects which are there in Maharashtra, which have come up, that 26, 27 allocations have been made for different projects. Now, Maharashtra is expected to receive close to ₹1 lakh, but the basic thing, if we go by the budget, whatever has been stated by the CM and whatever has been praised, I mean, the reality is far from what the picture exists on the ground. The projects which have been funded or projects which have been allocated, good amount of, as far as infrastructure is concerned or urban projects are agenda, urban development projects are concerned, the projects which have been there in the pipeline, projects which have been initiated and which are in progress, they have been exorbitantly cost escalation has taken place. The overvaluation is being done, and it is favoring the contractors, which comes from the to the government, and it gives suspicion for a lie or for suspicion to raise our doubts as far as corruption is concerned in Maharashtra. So whatever projects which are there, Mumbai-Aurangabad high-speed rail, that is 6,103 crore has been provided for that corridor. Mumbai metro projects, 1,702 crore has been provided for that. Mumbai urban transport project, MUTP 3, 462 crores have been allocated. Now, green mobility projects in MMR region, that is Mumbai metropolitan region, 155 crores have been allocated. Intelligent transport system ITS on Samriddhi Mahamarga, that is 680 crores. Now these are, and Pune Metro Rail project, that is 517 crores. These projects which ought to have been completed by now, but it is not yet completed, that escalation is on, overvaluation is being done, and this non-completion is not only proving inconvenient to the people, but it comes as a hindrance in the progress of Maharashtra. And who is benefiting out of it? Only contractors are benefiting out of it, and that is in connivance with the government officials or the politicians who are there and the treasury benches of Maharashtra. So these are the things, I mean, not leveling the charges, but this is what is seen by the people, felt by the people, and people feel that progressive state like Maharashtra, why it is taken backseat. Now, sir, finance and economy is concerned, as far as this budget is concerned, high-level committee on banking for Vikasit Bharat is been proposed. Now, banking sector, that is the backbone of Indian economy. Now, this public sector, which had the strength, yesterday only or today only in the papers it has come, that State Bank of India has registered a 31,000 crore profit in the last quarter. So that is the strength and that is the capacity potential what our public sector banks, insurance or whatever public sector units are there. Instead of strengthening them, the government steps are going in the direction of weakening them. Why are we going for disinvestment? Why are we coming with the disinvestment plan? Every year we present a budget. Last year's, I think 75 to 80,000 crores were meant to be recovered in the revenue was to be received by way of disinvestment. But what has happened? Not even 40,000 crores came our way. And today, banks like IDBI, which is just, IDBI employees are worried that why it is being thought or why it is being put on the panel that it will be privatized. Private banks are not going for the people, they are not going for the employment, they are not going to help you. Now in the banks, instead of having where the potential is so large, when you have good profits, banks which were shouldering the responsibility of addressing the unemployment issue in the country, now they are not, because government has tied their hands. Whenever we talk to managements, they are saying we are not getting clearance from the finance ministry. So if this be the case, where would the people go? When we call that brain drain is happening day in, day out from India, where the youth would go if they are not finding, despite having good qualifications, they are not having any chances to get employment into banks or public sector, this thing where they would make their future. If that is so, they have no alternative but to leave the country. And this is a sad situation when we talk of creating employment. On one side, wherever employment opportunity, capacity is there, employment is not given. Even this is happening in case of insurance companies also. Insurance companies who were doubted
that one day all three general insurance companies were to be made one, or they were to be disabled by way of disinvestment, they were to be decided. But now that, their solvency ratio and everything which has come up with the employees' hard work, now the government's stance is, fortunately, it has changed. But these are the things, which we need to look. Labor and employment, what has happened to the labor code? Labor code has given, enough of opportunity, or it is one lopsided labor code is being developed, which is benefiting the employers, and there is absolutely no say for the employee, no say for the labor. Today, what is the situation? When we have started saying that gig economy, why it has come? In this gig economy, people who are working, those poor who are working there, they are slogging day in, day out, all 24/7. Who are they? They are engineers, they are chartered accountants, they are lawyers. They are not getting that kind of employment. Self-profession is easy to say that you can give jobs to others. You have the capacity to give jobs to others, but when the question comes of sustenance, the job is required for the people who have gained some kind of qualification, which is not so. Where policy is going wrong, government needs to think over this and really think for the youth of the people. Now, skill training, many things are coming up, but where the things are going. So 2 minutes. Education. Now, government, the new national education, new education policy, it has a lot of flaws. What about the teachers? What about the students? There is a wide gap between urban and rural teaching, rural institutions, where you don't get teachers, and teachers also are facing that problem is not yet addressed. That TET, Teachers Education Eligibility Test, those who joined as a teacher long back when this law wasn't there, even they are made to appear for that TET, Teachers Education Test. So this flaws should be removed so that a society is built, because teachers we look up to, that they educate the society. So as far as health is concerned, whatever provisions and allocations are there, they're not up to 2.5% as declared by the government, not provision of 2.5% to the GDP. Now, what is the situation in the state, my state of Maharashtra? If you see the plight of the government hospitals, no one would dare to go, no doctors, there is no medicine, patients are lying there are no beds for patients to accommodate on the beds, they are lying on the corridors. And this kind of things which is happening not only in rural areas in the city like Mumbai also. Now, please try to conclude. One. And agriculture, we are giving a 10,000 crore credit line. Everything is spelled out. Everything is there on the paper. But what is the reality? The suicides which are becoming suicides has become a pattern. By the day, numbers are increasing in the state of Maharashtra. What is happening? Why it is happening? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, really is it working? It is on the paper. Why, when a farmer is paid a claim of rupees 3 and 6, you can imagine how that working is, what the formula is, who is formulated that, and what is the agency is doing, what are the people doing. And a poor farmer his dreams are finished. He has nothing to look up to, and they are finishing their lives because there is no tomorrow for them. So last but not the least, the main is Manrega. Now it is renamed as VBG Ramji. But what is the basic character of this scheme itself is changed. Now it is the government, if needed, the central government was funding 90% of it, 100% of it. But now if it is needed by the state would request the guarantee of days. We've shown that it is 108, it is extended from 100 to 125 days. What is the use of it? You have changed the character, killing the Manrega, killing the poor labor in the country. Yes, and thank you. To conclude, I'm just concluding, I would say that when we think that robots and AIs will be the future of tomorrow, Viksit Bharat, but see, government should ensure that people who are living human beings in India, they are taken care of before the AIs rule over. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Dileshwar Kameti. Please. Dileshwar Kameti. ये वर्ष 2026-27 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री
मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। महोदय, समावेशी विकास का यह आम बजट वाकई में राष्ट्रहित और जनहित के लिए अमृत एवं संजीवनी के रूप में कार्य करेगी। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाओं जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह बजट भारत के किसानों, युवाओं एवं महिलाओं तथा सभी वर्गों के उत्थान तथा विकास के लिए है, किंतु हमारे साथी को यह सब दिखाई नहीं पड़ता है। न जाने उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, उनके चश्मे में इस तरह दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। महोदय, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए रोजगार पाने वाले विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं नियोक्ताओं की सहायता जैसी योजनाएं शामिल किया है। महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समावेशिता के मार्गदर्शन प्रेरणा से ईंधन के रूप में हमारे सुधार का उपयोग कर कृषि, एमएसए, एमई, निवेश और निर्यात जैसी 4 शक्तियां इंजन गति प्रदान कर रही है। यह बजट कृषि क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर समृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। युवाओं का सशक्तिकरण हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। एनडीए की सरकार ने विकास के प्रति मानवोचित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया, जो पिछले 11 वर्षों में इन विकास कार्यक्रमों ने रिकॉर्ड समय में सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस, सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए सेवाएं सुलभ कराई है। वहीं करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर गरीबी की चिंता समाप्त कर दी है और रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और उन्हें सशक्त बनाना होगा। गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की प्रगति होती है जब वे प्रगति करते हैं। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल सहित बिहार के सभी किसान भाइयों के हित से संबंधित मुख्य अति आवश्यक मांगों के लिए आग्रह करता हूं। वर्ष 2008 के प्रलयकारी बाढ़ की तबाही के बाद कोसी क्षेत्र के किसान भाइयों ने बहुत ही कष्ट सहन कर मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खेती करना शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा मखान बोर्ड की स्थापना की गई है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के साथ बिहार के सीमावर्ती कोसी एवं मिथिला क्षेत्र में देश के कोने कोने से मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खरीदारी हेतु व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है, जिसके लिए बड़े स्तर पर व्यापार केंद्र अति आवश्यक एवं अपेक्षित है, जिसमें चौड़ी सड़क, रेलवे का कंटेनर डिपो, देश के सभी महानगरों के साथ रेल कनेक्टिविटी, भारी वाहन पार्किंग, उच्च क्षमता का भंडार
कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीयकृत बैंक, भोजनालय, शौचालय के साथ अतिथि गृह का निर्माण हो, जिससे किसानों एवं व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल एवं बिहार के कोसी मिथिला वासियों के लिए एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक एवं उपेक्षित है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण संबंधी सभी विषयों का पठन पाठन हो सके। आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना की जाए। रेलवे बनी बिहार के विकास की धुरी है। 2019 से 2014 रेलवे बजट में औसतम 1132 करोड़ बजट था, जबकि 2026-27 में रेलवे बजट बढ़कर 10,370 करोड़ हुआ। बढ़ा हुआ बजट सीधे सीधे परियोजनाओं, रोजगार और बेहतर सेवाओं में तब्दील होता दिख रहा है, जिसका सीधे लाभ बिहार को मिल रहा है। महोदय, अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में रेलवे संबंधी मुख्य अति आवश्यक समस्याओं का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सीतामढ़ी जयनगर भाया निर्मली तथा ललितग्राम वीरपुर नई रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास कर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुभारंभ कर तथा रेल परिचालन करने की कृपा की जाए। गाड़ी संख्या 15949 और 15950 डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन गलगलिया अररिया रेलखंड होकर फारबिसगंज सरायगढ़ दरभंगा के रास्ते करने की कृपा की जाए। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली भाया कटिहार, बरौनी एवं भाया कटिहार हाजीपुर होकर 3 राजधानी ट्रेन का परिचालन किया जाता है। उन तीनों में से किसी एक राजधानी ट्रेन को नवनिर्मित गलगलिया अररिया रेलखंड होते हुए फारबिसगंज राघोपुर तथा दरभंगा के रूट से परिचालन करने की कृपा की जाए, जिससे बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ मिल सके तथा समय एवं दूरी भी कम होगी। छात्रों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, कोर्ट कचहरी की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के त्रिवेणीगंज से पटना भाया सरायगढ़ दरभंगा होते एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रात्रि में दोनों तरफ से किया जाए। साथ ही सुपौल से सियालदह कलकत्ता के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिसे क्षेत्र के व्यापारियों तथा उस क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत NH 387 सुपौल से बरिया मंच होते हुए भाया मरौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क एवं उप सड़क के मध्य कोसी नदी में पुल का निर्माण करने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 2026-27 के आम बजट का समर्थन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बजरंग सोनेवानी जी। मुझे आपने बोलने का मौका दे दिया। मैं एनसीपी शरद पवार पार्टी से हूं। आदरणीय शरद पवार साहब से कृपा से मैं ये सभागृह में हूँ। मुझे बहुत खेदजनक बात या बजट पे बात करते टाइम पे बोलना है कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जो डेप्यूटी सीएम थे, उनका निधन 14 दिन पहले हो गया। इस सभागृह में सदस्य थे। पहले मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सन 2026-27 या अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभारी आहे। महोदय, यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारचा कोणता स्पष्ट दृष्टिकोन, ठोस धोरण किंवा देशवासियांसाठी काहीतरी करण्याची ठाम इच्छाशक्ती दिसून येत नाही। हा अर्थसंकल्प घाईघाईत कोणताही सखोल विचार न करता जमिनीवरील वास्तव्यानं समजून तयार करण्यात आलेला नाही। नेहमीप्रमाणे यालाही अर्थसंकल्पना म्हणता। सरकारचा आणखी एक जुमला बजेट म्हणणे अधिक योग्य होईल। महोदय, मी या सभागृहापूर्वी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडू इच्छितो। मागील अर्थसंकल्पात
मांडलेले मुद्दे यावेळेस केवळ रंगरंगटी करून नव्या स्वरूपात पुन्हा सादर करण्यात आलेले आहेत. महोदय, माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी सुधार एक्सप्रेस या संकल्पनेची मोठ्या गाजावाजात घोषणा केली आणि सरकारने 350हून अधिक सुधारणा केल्याचे सांगितले. मात्र 350 सुधारणा नेमक्या कोणत्या याचा तपशील देण्यात आलेला नाही. जीएसटी सोडल्यास कोणताही ठोस सुधारणा झाली हे स्पष्ट होत नाही. जीएसटी सारखा विषय गोरगरिबांना लुटण्याचा विषय जीएसटी मध्ये होतो. जीएसटी मध्ये बरेच काही बदल केले, हे बदल सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने आहेत असं माझं मत आहे. महोदय, जीएसटी बाबत सांगायचे झाले तर हा कर घाईघाईत रात्री 12 वाजता घंटानाद करत लागू करण्यात आला. विरोधकांनी वारंवार सूचित केले ही सर्व संबंधित चर्चा करून विचारपूर्वक हा कर लागू करावा, पण सरकारने कोणतीही सूचना मान्य केली नाही. आज सरकार स्वतःच्या चुकीच्या निर्णयामुळे निर्णय झालेल्या अडचणी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुधार एक्सप्रेस या नावाखाली करत आहे. माझा सरकारला थेट प्रश्न आहे की तुमच्या चुकीच्या जीएसटी धोरणामुळे ज्या व्यापाऱ्यांचं, उद्योजकांचं आणि सामान्य नागरिकांचं नुकसान झालं त्या सर्व लोकांना सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे का? महोदय, एमएसएमई क्षेत्रासाठी दरवर्षी आश्वासने दिली जातात, पण वास्तव्य असे आहे की काही सरकारच्या काळात लघु मध्यम उद्योग दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत आहेत. अनेक छोट्या उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारकडे कोणते स्पष्ट धोरण नाही. सरकार याच्यासाठी कुठलीही पावले उचलत नाही. त्याच्यामुळे उद्योजक अडचणीत येत आहेत. आपल्या देशातील उद्योजक सक्षम आहेत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ते आज अडचणीत सापडलेले आहेत. उत्पादन क्षमता असूनही बाजार व्यवस्थेसाठी ठोस धोरण नसल्यामुळे देशाची उत्पादकता कमी होत आहे आणि परिणाम भारत हा फक्त एक मोठा उपभोक्ता देश होत आहे आणि याचा फायदा परदेशी देश घेत आहेत. हीच सरकारची नीती आणि नियत म्हणावी लागेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारने बरेच काही धोरणं राबवले. मागच्या काळामध्ये सरकारने या देशामध्ये साखर उद्योगासाठी इथेनॉल प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम राबवली आणली. इंटरेस्ट सबमिशन या नावाखाली करोडो रुपयाचे प्रोजेक्ट उद्योजकांनी उभे केले, साखर कारखानदारांनी उभे केले आणि त्याचा परिणाम काय झाला तर मागच्या 2 वर्षापूर्वी 7 डिसेंबर 2023 ला रातोरात एक 2 वळीचं पत्र काढलं आणि सांगितलं इथेनॉल प्रोडक्शन बंद करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अर्थ मंत्री जी के कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष अर्थ मंत्री जी ने ये करने से जो उद्योजक है उनका कितना घाटा हो गया, ये कभी सभागृह को बोलना चाहिए, देशवासियों को बोलना चाहिए. परिणाम क्या हो गया तो ये देश के जो किसान है, किसान का जो माल पैसा मिलने वाला था, किसान का पैसा उनको कम मिल गया क्योंकि ये रातों रात बंद कर दिया. ये बहुत बड़ी बात है. इथेनॉल प्रोजेक्ट 200, 400, 500 करोडचे उभे केले आणि 500 करोडचे इथेनॉल प्रोजेक्ट उभे केले तर त्याचा इंटरेस्ट सबमिशनची जी स्कीम आहे त्याच्या ती बंद तर झालीच, पण त्यांचं जे इंटरेस्ट सबमिशनचं जे पैसे आहेत जे सरकारनं वाटायची हमी दिली 2-2, 3-3 वर्ष त्यांचे पैसे मिळत नाहीत. ही सरकारची नियत उद्योजक संपवायची आहे असं माझं मत आहे. त्याच्यामुळे सरकारने त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी ठोस पाऊल उचलला पाहिजे. एवढंच नाही तर किसान जे ऊसाचे शेतकरी आहेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखरला MSP लागू करायची. दरवर्षी FRP वाढली जाते पण MSP वाढत नाहीये. जर FRP तुम्ही दरवर्षी वाढवता खूप आनंदाची गोष्ट आहे की शेतकऱ्याला FRP पण पैसा मिळाला पाहिजे, पण साखरेची MSP कोण वाढवणार? सरकारला आपल्या माध्यमातून मी एवढीच विनंती करणार आहे की तुम्ही MSP पण वाढवा. आज या कृषी प्रधान देशामध्ये ऊसाची शेती असो, आलूची शेती असो, गव्हाची शेती असो, बटाटा असो, सगळ्या शेतकऱ्यांना MSP दिली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे, पण हे सरकार MSP देत नाही. ही दुर्दैव आहे. आणि सरकारने सांगितलं कृषी प्रधान देशामध्ये की आम्ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, पण शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट न होता निमपटीवर येते. याच्यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे अशी माझी सरकारला विनंती. महोदय, या अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. याचा अर्थ
सरकारला प्रत्येक व्यापारी कायम कर्जाच्या ओझ्याखाली राहावा असं वाटतंय. महोदय, बनारस पाटणा येथे जलमार्गावरील जहाज दुरुस्ती कारखान्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र नद्यामधील पाण्याची पातळी कमी असल्याने हे जलमार्ग प्रकल्प आधीच अपयशी ठरत असताना अशा घोषणा कितपत व्यावहारिक आहेत, यात हाच प्रश्न मला पडतो. महोदय, आरोग्य क्षेत्रावर बोलताना आरोग्य क्षेत्राबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण आजही देशातील अनेक रुग्णालयामध्ये पुरेसे डॉक्टर नाहीत, नर्सेस नाहीत, कर्मचारी नाहीत आणि आवश्यक उपकरणाची कमतरता आहे. विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधाकडे सरकारचे लक्ष आहे असं वाटत नाही. कारण माझ्याच मतदारसंघातील बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालय हे 5 ते 6 जिल्ह्यांमध्ये एकमेव आधार आहे. दररोज जिथं 2,500 ते 3,000 रुग्ण ओपीडी साठी येतात, पण तिथे आजही डॉक्टर, स्टाफ, नर्सर, कर्मचारी यांची आवश्यकता असून व उपकरणे तीव्र कमतरता आहे. त्याच्यामुळे सरकारने नवीन घोषणा करण्याऐवजी आधी उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सुविधा सक्षम कराव्यात अशी मागणी मी या सभागृहाच्या माध्यमातून माननीय अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की माझ्याकडं हे जे माझ्या जिल्ह्यामधलं रुग्णालय आहे, या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ज्या पूर्वी 50 विद्यार्थ्यांचा स्टाफ होता त्याची मर्यादा वाढवली, 50चे 100 केले, 100चे 150 झाले, पण स्टाफ मात्र जे नर्सेस जे डॉक्टर्स जे आहेत ते फक्त 50 प्रमाण आहेत. आज 150 संख्या जर झाली असली विद्यार्थ्याची आणि ओपीडी पहिली जिथं 500 होती तिथं आता 5,000 ओपीडी झाली, पण तिथला तुमचा जो स्टाफ आहे ते वाढत नाही. त्याच्यामुळे औषधाची कमतरता आहे. त्या समितीचा अध्यक्ष पण मी जिल्ह्यात आहे, पण त्या समितीचा अध्यक्ष असताना सुद्धा मला तिथं सांगितलं जातं की औषधं नाहीत. याच्यासाठी सुद्धा सरकारनं गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे असं मी सरकारला विनंती करतो. या अर्थसंकल्पातील सर्वात हास्यास्पद बाब म्हणजे शहरी आर्थिक क्षेत्र क्रमांक 39 तब्बल 11 वर्षांनंतर सरकारला टियर 2 व टियर 3 शहरी देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकतात हे कळले. याचा अर्थ गेली 11 वर्ष नागरिकांना शहरी नागरिकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्यात आली, हीच सरकारची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. महोदय, माझा जिल्हा तसा विचार केला किंवा मी ज्या जिल्ह्यातून येतो तो जिल्हा ग्रामीण भागात आहे. महोदय, माझ्याकडे माझी जी ओळख आहे की किसान का बेटा बोल के मेरी पहचान है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर की शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. कृषी प्रधान देशामधल्या माझ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही माझी मागणी. काजू आणि चंदन अशा सर्व चर्चेला उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला. काजू आज सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे आणि चंदन उत्पादक दक्षिण भारतातील शेतकरी आपल्या मालाच्या विक्रीसाठी त्रस्त आहेत. ही किती लाजिरवाणी घटना आहे की आपल्याला जे तुम्ही लावायला सांगताय, प्रोत्साहन देताय आणि परत पुन्हा माल विक्रीला तुम्ही चालना देत नाही किंवा माल घेत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. माननीय महोदय, माझा जिल्हा ग्रामीण आहे, माझा मतदारसंघ ग्रामीण भागाचा येतो. ग्रामीण भागाच्या ह्याच्यासाठी आपण जर विचार करायचा झाला तर आमच्याकडे आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महोदयांनी 14 ते 19 या काळामध्ये सरकार होतं त्यांचं, त्यावेळेस त्यांनी वॉटर ग्रेड ही योजना मी माझ्या बीड जिल्ह्यासाठी आणेल अशी एक घोषणा केली. पण आज तब्बल 11 वर्ष झालं तरी पण काहीही नाही. माझ्या या जिल्ह्यासाठी वॉटर ग्रेड नाही, पण आहे त्या प्रोजेक्टमधून पाणी द्या, गावोगाव ते पाणी आलं पाहिजे. माझं उजनी धरणातलं पाणी आमच्या मांजरा धरणात आला पाहिजे, मांजरा धरणाचं पाणी जिल्ह्यात फिरलं पाहिजे. याच्यासाठी लागणारा निधी माननीय अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये माझ्या जिल्ह्याला द्यावा ही माझी विनंती आहे. महाराज अध्यक्ष महोदय, लखपती दीदी योजना केवळ निवडणुकीपुरती केंद्रीय घोषणा ठरली आहे. देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मात्र अजूनही त्यासाठी सरकारचं कोणतंही ठोस पाऊल नाहीये, कुठलं धोरण नाही. महिलांसाठी अन्याय, महिलांसाठी अत्याचार, दर दिवस रेप्स एवढे प्रकार घडतात, सरकार त्यांना कुठं ठोस असा निर्णय घेऊन त्यांना संरक्षण देत नाही. महोदय, एवढेच नाही तर सरकारच्या बऱ्याच योजना आहेत. आता अर्थमंत्री गेलेत, मला त्यांना विचारायचं आपल्या माध्यमातून की सरकारची PMGSY म्हणजे ग्रामीण विकास या अर्थसंकल्पात प्रचंड कमतरता आहे. सर 2 मिनिट में कंक्लूड करता हूं प्लीज. PMGSY नावाची योजना जी सरकारची आहे, या PMGSY योजनेचा टप्पा 3 एकाही कामाला मंजुरी नाही आहे. आज 2 वर्ष मी खासदार होऊन झाले, एकाही कामाला मंजुरी नाही. 1 सिंगल वर्क, नो सैंक्शन. सर इसलिए मैं कहता हूं कि सब जल्द से जल्द ये देना चाहिए. सर सरकार की और एक घोषणा है
हर घर घर जल और नल, ये योजना के अंदर 50 करोड़ रुपया पिछले बजट में से खर्चा नहीं हुआ और मेरे जिले के अंदर 1 रुपया ही नहीं दिया। सर क्यों? अगर 50,000 करोड़ तुम्हारा टैक्स होता है और मुझे 1 रुपया ही नहीं मिलता, ये खेदजनक बात है, क्योंकि अपोजिशन वाला एमपी है बोल के नहीं दिया है क्या? ऐसा मेरा सवाल सरकार से, मेरा रिक्वेस्ट है सर 2 मिनट में समय है मेरे पार्टी का, उतना दे दीजिए प्लीज। और सर मेरे जिले के अंदर टेक्नोलॉजी पे आप बोल रहे 21 भारत, अभी क्या क्या करना है? भारत 1 नंबर पे लाना है, कौन से टाइप पे लाना है सर? ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेरे अर्थ संकल्प है, इसमें मेरा जो जिला है, जिले के अंदर सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट। मैं जो मेरे 400 गांव खेड़े हैं वहां अभी भी बीएसएनएल का टावर नहीं है और दूसरे कौन से के कंपनी का टावर नहीं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जिले के अंदर वो देना चाहिए। रेल के बारे में बहुत जिक्र किया सर, रेल बुलेट ट्रेन ले लिया, बुलेट ट्रेन 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बजट 2 लाख करोड़ कर दिया, क्यों? और मेरे इधर कुछ क्या किया है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर खाली अर्बन के लिए सरकार चलती है, रूरल के लिए क्यों नहीं है? मेरे जिले के अंदर जो मेरा एक सेकंड, मेरे जिले के अंदर एक ही प्रोजेक्ट की मांग थी मेरी, और सरकार से, अर्थ मंत्री से मेरे रिक्वेस्ट है, मेरा जो धाराशिव से लेके बीड़ से लेकर संभाजीनगर का रेल मार्ग, इसी के लिए कुछ ना कुछ बजट की तरतूद होना चाहिए। और ये गरीब के किसान के बेटे के जो मतदार संघ है उसी के लिए अर्थ मंत्री दे देंगे। सर लास्ट सेकंड, लास्ट सर, ये अर्थसंकल्प देशाचा, मी लास्ट बोल रहा हूँ, शेवटी एवढंच म्हणेन की या अर्थसंकल्पात देशातील जनतेला पूर्णपणे निराश करणारा आहे। जुन्या घोषणाचे मिश्रण करून घाईघाईत तयार करण्यात आलेला आहे अर्थसंकल्प। आम्हाला या गोष्टीतून काहीच मिळणार नाही। मी माझ्या सर एक लफ्ज खाली एक सरकार के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, तथ्यों के साथ खड़ा हुआ हूं, सुर्खियों के साथ नहीं। सरकार के अपने ऑडिट खाते, बजट, व्यक्तित्वों और संसदीय उत्तरकों के साथ जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि घोषणाएं आगे दौड़ती हैं, नतीजे पीछे रह जाते हैं और जवाबदेही सदे हुए शब्दों की ओट में गायब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यूनियन बजट 2025-26 में आकर समाप्त होते होते हम सरकार ने फ्लैगशिप स्कीमें, बड़ी बड़ी हेडलाइंस एलोकेशन के जरिए बार बार बेचने की कोशिश करी। पिछले कितने बजटों को चेक करेंगे तो हर बार कुछ न कुछ बजट में नया आता है, पर कोई कंपैरेटिव उसका कोई चार्ट नए पार्लियामेंट में कभी पेश हो पाता है कि क्या स्कीमें लॉन्च हुई और उनका आज पब्लिक एट लार्ज में, फील्ड में उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। लेकिन मैं आपको एक स्टार्टिंग शुरुआत करनी चाहूँगा पीएम पोषण स्कीम के साथ में। एक भारत सरकार की बेहतरीन प्रोग्राम ना, अच्छा है, पोषण को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छा एक जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल अगर आप डैशबोर्ड भी चेक करो तो 21-22 के अंदर इस प्रोजेक्ट के इस स्कीम के लिए जो बजट एस्टीमेट थे वो 11,500 करोड़ पे थे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के आसपास ही हुआ। फिर 23-24 में ये 11,600 करोड़ बढ़ा दिया गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8,400 करोड़ हुआ। 24-25 में 12,500 करोड़ कर दिया गया, एक्चुअल रिलीज 9,900 करोड़ हुआ। और 25-26 में बजट एस्टीमेट 12,500 करोड़ हुआ और एक्चुअल रिलीज 6,170 करोड़ पे हुआ। सर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार स्कीमों के साथ में जब बजट एस्टीमेट अनाउंस करती है, रिवाइज एस्टीमेट होते हैं मिड ऑफ द ईयर के अंदर, वहां आधा दम तोड़ जाता है और जब ये एक्चुअल में लागू होती हैं तो इनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। और ऐसा ये नहीं कि किसी एक स्कीम के साथ है, अनेकों स्कीम के साथ में है। आज की तारीख में भी जो हम डेटा देते हैं एनएफएचएसए का जो डेटा देखेंगे तो हमारी कितनी ही बच्चियां आज की तारीख में हम स्कूलों के अंदर आयरन जिंक की टैबलेट्स दे रहे हैं, एनेमिक बच्चियां हैं। और पीएम पोषण प्रोग्राम की रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट भी पूरा अपना स्पेंड नहीं हो पा रहा। ऐसे ही आप देखेंगे अनेकों स्कीमें। अभी स्कूल शिक्षा के बारे में बात करते हैं, समग्र शिक्षा एक अभियान चला, उसके अंदर 31,000 करोड़ पे 21-22 में सैंक्शन किए गए, 30,000 भी खर्च नहीं हुए। 23-24 में 37,400 करोड़ सैंक्शन हुए और वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। हालत ये है कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर एक अपना राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना वक्तव्य दिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 56% ऑफ स्कूल्स के जो रूम्स हैं वो जर्जर हालत में हैं, अनयूजेबल हैं और मेजर रिपेयर्स मांगते हैं।
राजस्थान के अंदर एक स्कूल के अंदर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हुई। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आनन फानन के अंदर पूरे स्कूल के राजस्थान के स्कूल्स का डेटा कलेक्ट करवाया और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये मालूम पड़ा कि स्कूल के अंदर 2,83,780 रूम तो ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और उनके पास में उनमें कमरों में बैठने की बच्चों की स्थिति नहीं है और 2,19,000 ऐसे कमरे हैं जिनको मेजर रिपेयर वर्क्स चाहिए। और गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा और एक रिपोर्ट जो सामने आई कि गर्ल्स राजस्थान के स्कूलों में पानी कम इसलिए पीती हैं क्योंकि राजस्थान में वर्किंग टॉयलेट्स तक नहीं और समग्र शिक्षा अभियान की हालत यह है कि उसके लिए बजट नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले में 1600 से ऊपर कमरों की रिक्वायरमेंट्स है सर, पर गवर्नमेंट के पास में कहीं कोई पैसा नहीं। स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर बात घूमती रह जाती है। ऐसे कितने स्कूल हैं सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, 50 डिग्री का टेम्परेचर टच करता है, आज भी बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, पर सरकार के पास में विकसित भारत का विजन के अंदर बच्चों के लिए कोई विजन नजर नहीं आता कि कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे, कैसे ये बच्चों के स्कूल की प्रॉपर रूम्स मिलेंगी। ये हालत समग्र शिक्षा अभियान की है। अभी सरकार ने बहुत अच्छा एक नया अनाउंसमेंट किया है, हर बार अनाउंसमेंट होता है। अभी इस बार के बजट में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी, एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स की लैब्स खोली जाएंगी, 15,000 लैब्स खोली जाएंगी। बड़ी अच्छी उम्मीद है, पर कहां से इनकी हम ट्रेनर्स कहां से लेके आएंगे, ट्रेनर्स को हम स्किलिंग कैसे देंगे, कैसे इनके इक्विपमेंट्स आएंगे, कौन रख रखाव करेगा। अटल टिंकरिंग लैब्स खुली, आज उनका असेसमेंट कहीं हमारे पास में नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद में अनाउंसमेंट है, पर कहीं भी ये चीज समझ में नहीं आता कि कैसे स्कूली शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। सर राजस्थान के अंदर हालत तो ये है कि आज की तारीख में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 83% स्कूल्स में हम बच्चों को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, मात्र 17% ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ साइंस और कॉमर्स है। उन 17% स्कूलों में से 53% स्कूलों के पास में कोई वर्किंग लेबोरेटरीज नहीं है। कौन सा बच्चा डिजिटल एज की हम बात करते हैं, हम AI टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे बच्चे तैयार होंगे। शिक्षा के प्रति सरकार की इतनी जबरदस्त उदासीनता है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर 1960s में एक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इनकी सक्सेस रेट आज भी 95-97% से ऊपर जाती है, पर इस सरकार की उदासीनता के कारण आप देखो कि पिछले अभी ऑफिशियल डेटा के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में 12,000 से अधिक टेक्निकल पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। बच्चों के एडमिशन्स घटते जा रहे हैं, जहां 1,95,000 2021 के अंदर बच्चे केवी में एडमिशन लेके बैठे हुए थे, आज वो फिगर घटते घटते हमारा 1,39,000 के ऊपर आ गया है। यही हालत हमारे नवोदय स्कूल्स की है। मेरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात करी, उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल खत्म होने की पोजीशन के ऊपर सेंटर्स आगे हैं। सिर्फ और सिर्फ न तो कोई एक डेटा के अनुसार 41% बच्चों को, ट्रेन बच्चों को गवर्नमेंट प्लेसमेंट दिला पाई, और प्लेसमेंट होने के बाद में इन बच्चों के साथ में आज की तारीख में सिर्फ ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रह गया है। अनेकों ऐसी समस्या। अभी PM इंटर्नशिप की बात कर लीजिए, तो पिछली बार बहुत हा हुल्ला के साथ में स्कीम लॉन्च करी गई और 10,831 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया, पर रिवाइज एस्टीमेट देखिए 526 करोड़। 10,000 की अनाउंसमेंट के बाद में 526 करोड़ रुपए का ही बजट सैंक्शन हुआ और इस साल 4788 करोड़ रुपए की बात करी गई है। यही हालत AI मिशन की है। 2000 का बजट एस्टीमेट 800 करोड़, रिवाइज एस्टीमेट इस बार फिर 1000 करोड़। तो शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता, और मैं ये मानता हूं कि मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूँ, वित्त मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, मैम स्कूल एजुकेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज राजस्थान जैसे में बहुत समय बाद में एनरोलमेंट्स बहुत बड़े हैं, बट वी आर लैकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू बी फंडेड बाय समवन। एज अ मैं पार्लियामेंट्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा हूं, तो एक ही डिमांड है स्कूल में रूम्स की। रूम्स लाए कहां से? 1800 रूम्स की रिक्वायरमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, पर देयर इज नो वे आउट। स्टेट के पास पैसा नहीं, सेंटर पे आते तो स्कीम नहीं। कुछ अलॉटमेंट्स होती हैं, आई कांट डिनाई दैट, बट द अलॉटमेंट हैज टू बी इंक्रीज टू अ सब्सटेंशियल नंबर वेयर द पीपल स्टूडेंट्स कैन एटलीस्ट सिट इन द क्लास। That is my point to you, I would like to address for the education. किसके बारे में? सर वहां पर भी नहीं बोलने दे रहे थे, यहाँ पे भी नहीं बोलने दे रहे हो, कहीं तो बोलने दो। सर जल जीवन मिशन के बारे में बात चली है। 67,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट एस्टीमेट में था हमारे BE 25-26 के अंदर। रिवाइज एस्टीमेट 17,000 करोड़ रुपए को।
इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपए का हम जो बजट खर्च ही नहीं कर पाए या बजट को हमने चेंज करने की कोशिश करी। हालत राजस्थान की ये है कि राजस्थान के अंदर आज भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी या राजस्थान में ऐसे कितने ही टेंडर्स हैं जो जल जीवन मिशन के ओपन तक नहीं हो पाए हैं। आज की तारीख में अवार्ड हुए वर्क 2021 के अंदर और उनका डेविएशन आ गया 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 करोड़ रुपए का डेविएशन आ गया और उस डेविएशन के अंदर आज सरकार के पास 2 साल से फाइल पड़ी हुई है, पर सरकार के पास 70 करोड़ रुपए नहीं है। अभी किसान हमारे रतनपुरा के धरने पे बैठे हुए थे और उनको पीने के पानी के सरकार के पास में कोई सिस्टम नहीं। जल जीवन मिशन को बंद करने का काम कर दिया गया है। कहीं सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, पानी के लिए पैसा देने के पास सरकार के पास कोई विजन नहीं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे अभी तक उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शनिंग करने के लिए फाइल 2 साल से ऑफिसर्स के पास पड़ी है। निशिकांत जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी बोलिए कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट को जो 21 से स्टार्ट हुए आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। मैं सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करता हूं। 19,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन की थी, कर 11,000 रुपए बजट एस्टीमेट को रिवाइज करके रिवाइज एस्टीमेट में 11,000 करोड़ रुपए लेके आ गए। आज भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फोर्थ फेज चल रहा है उसमें सिर्फ बचे हुए गांवों की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। मंत्री महोदय, गांव की रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आज पंचायतें इतनी बन गई कि पंचायत से गांव जुड़े कैसे। राजस्थान के अंदर गांवों की, हिंदुस्तान में भी मैं मानता हूं कि एक गांव से दूसरे गांव, एटलीस्ट अपने गांव से पंचायत हेडक्वार्टर तक जोड़ने का भी प्रावधान होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग रोड्स पहले बनी हुई थी, जो फेज 3 में थी, जहां पे आप रोड का चौड़ाईकरण कर रहे थे, उन रोड्स को भी शामिल करने की बात करिए। मैं मनरेगा के बारे में बात करूंगा। मनरेगा के अंदर आपने ये बात कही है कि 40% शेयर वीबीजी रामजी बिल के अंदर 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने पिछले साल 4800 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च करे। राजस्थान गवर्नमेंट अपने बेसिक डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्या राजस्थान की सरकार 2000 करोड़ रुपए अपनी जेब से दे पाएगी? मनरेगा की शुरुआत, खात्मे की शुरुआत हुई है इस नए बिल के साथ में। जो एक आखिरी व्यक्ति गांव में बैठा हुआ था, उसको पीने की, उसको जो काम हो, उसको रोजगार मिलता था, उस रोजगार को छीनने का काम एक सरकार करने जा रही है। मैं जल जीवन मिशन के साथ में सिंचाई के पानी की बात करता हूं। आज की तारीख में भी एक हाल ही में जो रिपोर्ट नहीं आई है, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक इंडिपेंडेंट स्टडी के अनुसार इंडिया की ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर रेस्क्यू कैपेसिटी अभी बहुत कम है और सिर्फ 10 स्टेट्स के पास फॉर्मल रीयूज पॉलिसी है, जबकि ट्रीटेड वेस्ट वाटर 2050 तक दिल्ली के क्षेत्रफल के 26 गुना के बराबर की क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है और वास्तविक आर्थिक मूल्य पैदा कर सकता है। फिर भी इस सदन का कोई नेशनल प्लान नहीं दिखाई गया, न टाइमलाइन, न बजट, न टारगेट्स, ताकि वेस्ट वाटर को भी कैसे रीयूज किया जाए, वाटर स्कैरिसिटी को केंद्रीय स्तंभ बनाया जा सके। क्यों नहीं हम वेस्ट वाटर जो सचमुच बहकर बर्बाद हो रहा है का उपयोग करें? क्यों नहीं कर सकते, जबकि वह खेतों की सिंचाई कर सकता है? राहुल जी, I was allotted 10 minutes, sir. Only 3 minutes, sir. Already 11 minutes over. Sir, another 2 minutes, sir. Sir, मेरा सरकार से ये कहना है, हम ईस्टर्न, हमारा जो पानी है, जो आज की तारीख में हरीके बराज से हमारी तीनों नदियों का पानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, 2 MAF पानी, जिसकी कैपेसिटी 10 से 15 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की है, उसके ऊपर सरकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन के ऊपर अनाउंसमेंट होती, हम एक तरफ 50 लाख टन दलहन और तिलहन विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ हमने इरिगेशन के लिए कोई भी बजट सैंक्शन नहीं किया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, जहां पे हमारा नागौर, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर, बीकानेर से क्षेत्र, जहां पे इतना बड़ा लैंड मास पड़ा हुआ है, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो उनके बहुत बड़ा उसका फायदा मिलेगा और इरिगेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस करना। सर लास्ट 2 पॉइंट करना चाहूंगा सर। यस सर 2 मिनट सर, मैं वहीं से आ रहा हूं सर जहां से आप बोल रहे हो। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूंगा सर, नेशनल हाईवे के अंदर हर साल बजट बढ़ रहा है, पर सर हम हमारे स्टेट्स जो हाईवेज हैं उनकी ओवर कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन हो रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। सर डिजाइन जो हाईवे की, सर एक एग्जांपल देता हूं, जयपुर से लेकर किशनगढ़ का हाईवे राजस्थान के अंदर है सर, 50,000 PCU के लिए डिजाइन हाईवे आज 1,26,000 PCU पे वो कर रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी पिछली बार इलीगल कट्स पे एक्सीडेंट होने पर 100 से ऊपर लोगों की जान गई। सर सरकार के पास में नए हाईवेज के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। राजस्थान को सर
इस बजट में राजस्थान का नाम तक भी नहीं लिया गया। सर रेलवेज के लिए कहना चाहूंगा, न्यू रेलवे लाइंस के लिए बजट एस्टिमेट 32,000 करोड़ रुपए का था, 30,000 करोड़ खर्च करे। सर मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चूरू के अंदर सर सीकर से नोखा, खाटू श्याम जी से करनी माता वाया मुकाम नोखा बिदासर होते हुए सरदार शहर से नौहर, सरदार शहर से हनुमानगढ़ और सादुलपुर तारानगर गजसिंहपुर की रेलवे की लाइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैम हर बार जब हम सर्वे करवाते हैं आरओआई नेगेटिव आती है, राजस्थान में फ्रेट नहीं है, सो देयर हैज टू बी सम वायबिलिटी गैप फंडिंग काइंड ऑफ स्टफ राहुल जी। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती मैं आखिर में लास्ट सेंटेंस सर प्लीज सर, आपने बिल्कुल बोलने नहीं दिया सर। बोल दे भाई, अब बोलिए ना सर निशिकांत जी हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, सर सभी को करते हैं, आप मुझे भी कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए। सर वादों की दुकान सस्ती रही हर साल, पर गरीब की थाली रही खाली की खाली। कागज पर चमकते हजार, कागज पर सपने चमकते हजार, जमीन पर मगर सिसकता परिवार। पिछले बजट के हिसाब नहीं और इस बजट पर विश्वास नहीं, राजस्थान का हिस्सा नहीं तो विकसित भारत सिर्फ एक नारा है और एक नारा ही रहेगा। धन्यवाद। मैडम जी पुरंदेश्वरी जी। Thank you, Chair, for giving me the opportunity to participate in this very important discussion on the budget that was presented by the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I would first like to begin by congratulating her on her 9th consecutive budget that she had presented in the Parliament. Sir, the budget gives us a clear message about India's long-term priorities, and it also emphatically states, sir, where India intends to position herself in the unfurling global economic scenario. Sir, it also clearly states that the budget intends to balance growth and macro stability. So the challenge before the Honorable Finance Minister, as she was charting out the budget, was that she had to ensure momentum alongside building resilience. Sir, we had a growth of around a GDP of around 7%, inflation being low, and a fiscal deficit in the right direction. This was the momentum that was there in the country, sir, but we needed to build our resilience against the global trade, which was in a flux. Sir, the fiscal deficit of 4.3%, which is marginally lower than the 4.4%, only emphasizes that the focus of the finance minister has been on continuity rather than ambition. Sir, since the pandemic, the slow rate of fiscal deficit reduction, sir, it only highlights that the focus has been on stability rather than dramatic consolidation. With the global uncertainty looming large and also the rupee under pressure, the budget, sir, that was presented is nothing short of prudent macro economics. Sir, above all of this, the real story is in the increase of allocation for capex at 12.2 lakh crores as against the 11.2 lakh crore, which is about 4.4% of the GDP. And this clearly underlines, sir, that the focus is on investments rather than consumption subsidies. This is what we would call fiscal prudence over populism. Sir, the EU trade or the European Union Free Trade Agreement would most probably come into operation by 2027, and we also have the US tariff uncertainties looming large. Sir, under these circumstances, we need to build our domestic capacities to protect our country from from supply chain disruptions. Sir, against this backdrop, the industrial strategy that has been spelt out in the budget, sir, reveals a resolve to move up the value chain. It could be the 10,000 crore allocation for the Biopharma Shakti initiative, or the 40,000 crore allocation for the electronic component manufacturing, or this India's semiconductor mission 2.0, they together emphasize, sir, that India would want to become Atmanirbhar or self-reliant in these strategic sectors on which India was until now import dependent. Sir, there is also renewed emphasis on service sector
And we know that the contribution of service sector to our GDP is around 55%, and it dominates our exports as well. So common safe harbor margins of 15.5% and the threshold enhancement from 300 to 2,000 crores only emphasizes that India's software, they still remain a reliable foreign exchange earners. So the proposed Education to Employment and Enterprise Standing Committee aiming at 10% of the global service market underscores this, and the expansion of Ayush and Khelo India mission only reveal the intent of extending or diversifying service exports beyond technology. Sir, there has also been emphasis on rare earth mineral corridors. Today, sir, we are faced with an external environment in which trade as well as multilateralism is in danger and access to supply chains are being disrupted. Hence, sir, we need to strengthen, if not protect ourselves against these external shocks. Therefore, the manufacturing of rare earth permanent magnets or REPM is vital to meet our upstream industries, growing demands of the upstream industries like electronics, electric vehicles, aerospace, defense, and the likes. So the need for securing our supply chain arose when China, the world's largest, if not the only supplier of REPM, curbed its exports, giving rise to global shortage and disrupting industries. So this shock not only emphasized the need for indigenization. And today, by indigenizing REPM, India could position herself as a global hub of sustainable manufacturing. So the proposed scrapping of custom duty on monazite from the present 2.5% is a welcome measure, because this would only attract more investments in REPM and also improve the employment opportunities for our own children. So the states in which monazite is largely found is Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand, Maharashtra, Gujarat and West Bengal, with Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Orissa contributing 89% of the 12.73 million ton monazite reserves in our country. Sir, I would only request the Honorable Finance Minister here, sir, that we would need to work closely with the states for the single window clearances as well as land subsidies, because this is largely in the control of the states, and this would also hasten and quicken investments into our country in REPM. Alongside, sir, I would also request the Honorable Finance Minister to consider applying PLI or performance-linked incentives for the mining of rare earth minerals, because as the very name states, sir, they are rare earth minerals, and we need our efficacy to improve in mining of rare earth minerals, and also apply PLI to REPMs too. Sir, the budget further, sir, it simplifies customs tariff by rationalizing exemptions and focusing on effective rates. So the ripple effect of this would be that our domestic manufacturing sector would be strengthened and our exports would improve. So customs today are moving towards trust-based, digitally AI-assisted framework, marking a significant stride towards ease of doing business. So the targeted exemptions, sir, and process reforms, they aim at reducing the input costs that would improve certainty for long gestation and capital incentive projects. So manufacturing is the central pillar of our Indian economic growth, and its contribution to the GDP is around 16 to 17%. So it is much lower than what many of the other countries, for example, China has. However, sir, the duty-free imports for leather and footwear industry, the extension of export obligation period under the advance authorization scheme from 6 months to 1 year, the announcement of the scheme to support production of high-value, technologically advanced construction and infra components, and for the MSMEs, the removal of the rupees 10 lakh per consignment cap on courier exports would not only improve our access to foreign markets, but would also
also strengthen our local manufacturing sector as well. So in the health sector, the customs duty exemption on 17 additional drugs, so this is over and above the exemption that was given for the cancer drugs earlier in her earlier budget, and medicines as well as on key diagnostic components. It only indicates the commitment of the NDA government to the well-being of its citizens. So this reduction in customs duty would provide immediate relief to patients who are suffering with cancer and rare diseases, signaling a policy towards affordable health care. So this is alongside the Ayushman Bharat, the Jan Aushadhi Kendras, which are already in place in our country. So the PLI allocation for the auto sector has been increased, which is a very welcome measure. But I would also appeal to the Honorable FM to reconsider the 45% increase, reduction in the PLI for the lithium-ion cells, because this is rather important. So the exclusive economic zones, or the EEZ, they span about 2.3 million kilometers in the Indian Ocean, and making fish caught in the EEZ duty-free will not only reduce operational costs, but would also recognize the fish catch as Indian catch, and if it lands on other shores, then it would be considered as exports. Many countries, sir, like US and China, they actually follow this route, and this would actually unlock the economic potential of our country's marine resources. So this would also, beyond boosting deep sea fishing, facilitate harvesting high-value fish like tuna, marlin, sailfish, and the likes. Presently, sir, Indian fishing vessels, they are not well equipped for long-distance operations, and this would actually call for investments in vessels with onboard freezing facilities as well, opening up a sea of opportunity for our fisher folk. Sir, the limit for duty-free imports on specified inputs used for processing seafoods has been increased from 1% to 3%, sir, over the previous year's export turnover, and this would actually ease the pressure on the marine sector by bringing down the cost of production at a time when one of our largest export earners is actually facing a crisis of the high US tariffs, which have now been, of course, reduced. Sir, the budget thrust on high-value farm produce and allied sectors. So this would also help in reducing our import cost dependency, modernize agricultural practices, and also improve farm incomes. So production of coconut oil has reduced drastically in the past 1 decade. So the production of coconuts in our country is around 600,000 tons, and coconut oil is around 450 tons. So oil production has now reduced to 4 lakh tons, and this, one of the reasons, if not the sole reason, one of the reasons is that our plantations are aging and we need to replace them. Therefore, the Honorable Finance Minister coming forward, shouldering the coconut farmers and assuring them that their trees would be replaced by new saplings, sir, is a welcome measure. Sir, export on coconuts have actually risen to 1.88 lakh tons in 2025 as against the 1.76 lakh tons in 2024, which is a 7% hike. Sir, none of us have actually forgotten the success story of Araku coffee. Sir, when it was initiated, there were many people who did not believe that it would succeed. But today, Araku coffee has become a global brand. So, riding on the success of Araku coffee, to emulate it in cashew nuts and coconuts, sir, this would actually reduce our dependency on imports. Sir, exports of coconut and cocoa and related products, sir, they have increased 26%, sir, touching 4.54 lakh tons in 2025, up from 36.86 lakh tons. So therefore, I think this is a very welcome measure. Sandalwood is an integral part of our culture. Therefore, the support that is being given to sandalwood farming as well as post-harvest processing would only help us in restoring the past glory of sandalwood. Alongside this, sir, the AI initiative called the Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources of Vistar, sir, would educate the farmers in every detail of agriculture economics, sir. And this is very important for us because 80% of our farmers are small and marginal farmers who have land
holdings which are less than 5 acres, sir. Therefore, this technical assistance would help farmers in innovative practices, thereby enhancing their incomes. Sir, India's 7.4 million MSMEs, they would stand to benefit from the 10,000 crore SME growth fund that has been allocated. This is over and above the 2,000 crore self-reliant India fund that has already been allocated, sir. And this provides access to risk capital for MSMEs. Sir, MSMEs largely supply to PSUs and other large houses, but payments are quite often delayed, which leads to financial crunch and thereby the ill health of the MSME. Therefore, TREDs are being made mandatory, where the invoice has to be settled via the platform with no excuses, sir, is a big help for the MSMEs. The chronic problem that MSMEs face, sir, which even our economic survey has emphasized, is that their lack of accessibility to capital. Therefore, these initiatives, sir, would surely enhance the proximity to capital for the MSMEs, who are one of the largest employment generators after agriculture. So, urbanization is happening at a great speed, and the focus on Tier 2 and Tier 3 and temple cities, sir, is a welcome measure, because it is here the infrastructure would definitely be upgraded and modernized, making life for migrants who actually come into these cities much better, safer, and they would not have to live in deplorable conditions as they are doing now. So today, recognizing cities and towns as growth hubs is the need of the hour. Therefore, I would surely like to welcome this measure. Sir, having said that, a nation's progress, sir, is impossible without the empowerment of its women. Building on the success of Lakpati Didi, the most important initiative that has been, sir, just 5 minutes, sir, that has been introduced in the budget is the establishment of the self-help entrepreneur marts, or the She Marts, sir, which will provide women entrepreneurs direct market access and business opportunities. In addition, sir, credit-linked support for women-led fisheries and aquaculture enterprises encourages economic independence in coastal and rural regions. So these initiatives are designed to convert small-scale participation into scalable enterprise. Another landmark initiative, sir, in this budget is the establishment of one hostel for girls in every district, especially near the STEM institutions. So this step ensures that talented young women from rural and semi-urban areas would not have to discontinue education for lack of accommodation barriers. So these initiatives collectively strengthen financial inclusion, education access, and entrepreneurial growth for women, converting empowerment into leadership. Beyond economic and educational support, sir, the budget also gives a strong social message that women are partners in nation building and not mere beneficiaries of welfare. Therefore, it is no longer women's development, sir, but it is now, the new story is women-led development. Sir, having said that, I would only like to conclude by saying that the budget has been crafted and presented amidst unique circumstances in an increasingly turbulent world. In such circumstances, sir, this budget is a coherent framework that laid emphasis on financial prudence, infrastructure-led growth, and human development, preparing India for the Viksit Bharat of 2047 in a volatile and an unpredictable world. Thank you, sir. Thank you very much. You didn't take 5 minutes further. Next speaker, Sri Y.S. Avinash Reddy ji. Sir, thank you, sir. Sir, I congratulate Honorable Finance Minister for presenting the budget 9th consecutive time, sir. Sir, and we appreciate the central government for enhancing the capex budget for the year 2026-27 to 12,21,821 crores, sir. 11.5% higher allocation than the revised budget for the current financial year 2025-26, sir. Sir, coming to the allocations for our state, Andhra Pradesh, sir, we all know that Polavaram is a national project with 194 TMC storage capacity, 45.72 meters height, and an estimated cost of 55,000 crores, sir, which has to be spent by way of 100% central grants, sir.
Sir, in the 2026-27 budget, an amount of 3,320 crores is allocated. There is a specific mention in the budget presentation that the revised cost of project is 30,436 crores for completion up to MDDL of 41.15 meters, and the balance central grant for the project is limited to 12,157 crores. Sir, at 41.15 meters, only 75 TMC of water can be stored. The objectives envisaged cannot be achieved if the project is restricted only to 41.15 meters height with only 75 TMC storage, sir. Sir, we on behalf of ISRCP bring to the notice of Government of India that this national project should be constructed up to 45.72 meters height, 194 storage capacity, 194 TMC storage capacity with an estimated and sanctioned amount of 55,000 crores, sir. Any change, any reduction to the sanctioned amount will severely affect the interests of crores of farmers across the state, sir. And we also request the Government of India to revisit and issue environmental clearance to Rayalaseema lift irrigation scheme. Earlier in March 2025, it was rejected. EC was rejected due to lack of persuasion by the present state government, sir. Sir, I seek to draw your attention regarding the borrowings of our state Andhra Pradesh, sir. During 2019 to 2024, YSRCP tenure, considering all forms of liabilities, an amount of 3,32,000 crores was borrowed, sir. Whereas in the present tenure, in a span of just 20 months, an amount of 3,20,000 crores is contracted for borrowing so far, sir. Sir, generally all kinds of borrowing put together should not exceed 3.5% of state's GDP, sir. For instance, during 2014 to 19, the then state government borrowed 17,000 crores beyond their limit, and this excess borrowing was deducted from the borrowing limit of the next government during 2019 to 2024, sir. Sir, if the present pace of borrowing is continued, just like the President stated above, the borrowing limits of the next government will be deducted due to the present government's over excess borrowings, sir. The next government will not be in a position to pay even salaries and pensions if this abnormal pace of borrowings is permitted. Sir, our state government is raising off-budget borrowings, sir. In May 2025, an amount of 9,000 crores was borrowed by way of APMDC NCD issuances. The worst part here is private lender was given direct access to draw his servicing amount from the consolidated fund of Andhra Pradesh, sir, which is highly unconstitutional and unprecedented, sir. Sir, in December 2025, 5,750 crores was borrowed by way of APSBCL bonds. Sir, and recently, State Cabinet cleared a borrowing of additional 11,850 crores by way of APSBCL NCD issuances, sir. Sir, during financial year 2022 and 23, when the previous government tried for similar off-budget borrowing through APSBCL NCD issuances, the central government objected such borrowings, and the Ministry of Finance, it has issued circular, sir. Ministry of Finance has issued circular, wrote a letter to the Special CS of Andhra Pradesh Finance Department dated 27th March 2023 and stopped the state from taking such an off-budget borrowing. Sir, this kind of off-budget borrowings will have long-lasting ramifications. The next governments will have to pay their entire budget amount for repaying the interest, duly sacrificing salaries and pensions for employees and welfare schemes for the poor people. I request the Honorable FM to give clarity on this issue during her reply, sir. Sir, as I mentioned above, our state in a span of just 20 months borrowed 3,20,000 crores, but it could not allocate mere 5,000 crores for completing the 10 medical colleges out of the 17 new medical colleges taken up during the tenure of Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu. Sir, bids are called for privatization the government medical colleges and hospitals, which will directly impact the poor, as they will not be in a position to afford costly treatment in these privatized hospitals, sir. Sir, an allocation of 96,000 crores is made for VBG Ramji scheme, which is new MGNREGS scheme, sir. Sir, state share is increased from 10% to 40%, because of which it is highly unlikely that the allocated amount is completely spent in the year 2026-27. We request the Government of India
to implement the new scheme VBG Ramji with 90:10 ratio for our state Andhra Pradesh, on par with other northeastern states, as our state's financial condition is very, very weak, sir. Sir, we request the government of India to set up steel plant at Kadapa, which is part of assurance given to the Andhra Pradesh as part of AP Bifurcation Act 2014, sir. We brought this issue to the notice of this August House several times, and we once again request government to fulfill its promise, sir. Sir, we request the government of India to stop privatization of Vizag steel plant, and also request to allocate grant to clear the present dues of Vizag steel plant, sir. Sir, Kadapa to Bangalore railway line was sanctioned in 2010 with an outlay of 2,700 crores, sir. Sir, till date, only 10% of the work is completed, sir. We request the government of India to allocate sufficient funds for completion of this project. Initially, this project was sanctioned on 50:50 cost-sharing basis between central and state governments, sir. Sir, post-bifurcation, AP is not in a position to contribute its 50% share, sir. So, AP government has already requested the government of India to complete this project with 100% central funds. Sir, we request the government of India to consider the same and expedite construction of this new railway line between Kadapa to Bangalore, sir. With these submissions, I conclude my speech on discussion on union budget. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Sri Lalji Vamaji. धन्यवाद मान्यवर, आपने अवसर दिया सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट प्रस्तुत किया। हम लोगों की अपेक्षा थी कि देश और प्रदेशों के लिए बहुत कुछ इस बजट में आएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मान्यवर, ये बजट माननीय मंत्री जी ने बताया विकासोन्मुख, समावेशी और भविष्यवादी बता रही हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई से यह है कि यह बजट महंगाई से त्रस्त जनता को राहत नहीं देता, बेरोजगार युवाओं को आशा नहीं देता, किसानों को सुरक्षा नहीं देता और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूल क्षेत्रों में निवेश से कतराता है। यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी है, जनता की ज़रूरतों का समाधान नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सुधार एक्सप्रेस कहा, सुधार एक्सप्रेस नहीं, उधार एक्सप्रेस है। ब्याज पर 26.25% इस बजट का 53,47,315 करोड़ में से करीब 26.25% केवल ब्याज पर खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, बजट पहले बड़ा बनाया जाता है और फिर खर्च नहीं हो पाता। अभी 9 महीने बीत गए, 41% से ज़्यादा पिछले इस वित्तीय वर्ष का बजट का खर्च नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जो संशोधित बजट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात का जो जिक्र किया है कि ये विकसित भारत का सबका साथ सबका विकास का बजट है, परंतु ये बजट सबका साथ नहीं देता। मान्यवर, इस प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी का है, एसटी एससी का है, एसटी का। उसके हितों को अनदेखी करने का काम इस बजट में करने का काम किया गया है। आज रोजगार देने का सवाल है। देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 38 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सवर्ण है, एससी एसटी का उसमें नहीं दिया है। सारे जो केंद्रीय संस्थान है उसमें 80 से 64% पद पिछड़े और दलितों के खाली हैं। लगभग 10 लाख पद खाली हैं, उसके भर्ती का कोई इसमें खाका देने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। माननीय, इसके साथ साथ आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की है। गरीब आदमी बीमार होता है, हृदय रोग से बीमार होता है, कैंसर से बीमार होता है, उसके लिए धन की व्यवस्था जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें भी कोई एक पैसे की इजाफा करने का काम नहीं किया गया है, उसमें भी खर्च कम हुआ है। पिछला जितना बजट था उसमें भी खर्च करने का काम कम किया गया। दूसरी तरफ मान्यवर, इसी तरह से पिछड़े वर्गों का जो किसान है, किसान के ऊपर इस बजट का
जहां 70% लगभग कृषि से संबंधित लोग गांव में हैं, उस पे केवल 3.04% बजट है। शिक्षा पर 2.60% बजट है। स्वास्थ्य पर केवल 1.95% टोटल बजट का हिस्सा आता है। हमने एक संकल्प लिया था कि जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य का बजट होगा, लेकिन ये बजट 0.5% भी जीडीपी का नहीं है स्वास्थ्य पर, जिसके कारण देश के तमाम लोग बीमारी के शिकार होते हैं, उनका इलाज नहीं होता, उनका घर बार भी बिकने का काम होता है। इसी तरह से किसान का जब समय आता है बुआई का, खाद की जरूरत पड़ती है, तो उस खाद में उसके उर्वरक की जरूरत है। उस उर्वरक के बजट में पिछले बार जो खर्च किया था, जो संशोधित बजट है, उससे 7.5% कम इस बार माननीय मंत्री जी ने रसायन और उर्वरक पर रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये किसान के हितों को संरक्षित नहीं करता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि आज अमेरिका से डील हुआ, हमारा मार्केट अमेरिका कैप्चर करेगा, किसान और तबाह होगा। हमें उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का देने की आवश्यकता थी, उस पर भी ये बजट मौन है, उनको भी गारंटी देने का काम नहीं करता। मान्यवर, हम लोगों ने बड़ी अपेक्षा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अयोध्या के नाम पर बनाने का काम किया गया और उस अयोध्या के इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किया गया। अयोध्या के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कम से कम एक एम्स तो बना दीजिए, जिससे आपका उनके साथ जो भेदभाव है उससे छुटकारा मिलने का काम हो सके। दूसरे पिछड़ी जातियों का, मान्यवर, सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ है कि परीक्षा में जहां भर्ती होती है, प्रवक्ता अंग्रेजी का अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है 64 और ओबीसी का कट ऑफ है 87, उसको उसमें माइग्रेट नहीं करने का काम किया। जबकि माननीय हमारे नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के आधार पर अगर पिछड़ी जात का व्यक्ति किसी लाभ को नहीं लिया है, न उम्र में न अटेम्प्ट में, तो निश्चित रूप से उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर उसका मार्क ज्यादा है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसमें वो शामिल करने का काम नहीं किया गया। इस माइग्रेशन न होने के कारण तमाम मान्यवर इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मेरी ये मांग है कि माइग्रेशन को करके सबका साथ, जो सबका विकास का नारा है, उस पर धरातल पर लाने का प्रयास करें। दूसरा मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, महंगाई बढ़ रही है 6-7% से ज्यादा, ये बजट 5.5% का पिछले बार के बजट से वृद्धि है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, यानी बजट पिछले बार से भी समझिए कम है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अपेक्षाएं थी कि माननीय मंत्री जी 9वां बजट प्रस्तुत कर रही हैं, विकास मुखी बजट होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के लिए ज्यादा धन दिया जाएगा, उसके लिए स्कीमें जो बनाने का है, जो उसका मानक तय किया गया है, उस मानक में सुधार किया जाएगा। हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के प्रस्ताव पर सड़कें ली जाएगी, उसका कोई इसमें समाधान नहीं है। दूसरी तरफ जो सांसद निधि है, सारे सांसदों को मान्यवर 5 करोड़ लंबे समय से चली आ रही, महंगाई 10 गुना बढ़ गया, निधि 5 करोड़ है, 1 किलोमीटर सड़क बनने में 1 करोड़ रुपया लगता है। हमारी ये मांग है माननीय मंत्री जी, अगर आप विकास के तरफ जाना चाहती हैं, सभी क्षेत्रों को आप विकास के तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सांसद निधि कम से कम 25 करोड़ रुपया अनिवार्य रूप से करने का काम किया जाए। हम लोगों की अपेक्षा थी कि इसमें किया जाए। दूसरा हमारी मांग है, मान्यवर, गरीब आदमी कैंसर से बीमार होता है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम और बीमारियों को छोड़ दें, कैंसर जैसी बीमारी को पूरी तरह से फ्री कर दें। सरकार उसके लिए संपूर्ण धन देने का काम करे, जिससे आम नागरिक की सुरक्षा हो सके। ऐसा मेरा आपके माध्यम से मांग है। मान्यवर,
एक निवेदन और करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मान्यवर, महंगाई, ये बजट महंगाई से राहत नहीं देता, रोजगार की गारंटी नहीं देता। रोजगार कहा, आउटसोर्सिंग को रोजगार माना है। इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार निवेश नहीं करता, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं करता। बैठे। Now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House till 8 p.m. Yes, House is extended up to 8 p.m. Now please conclude the last sentence. जीडीपी का कम से कम 2.5% हो, रोजगार के लिए स्पष्ट भर्ती कैलेंडर किया जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, शिक्षा स्वास्थ्य में वास्तविक निवेश हो। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जिससे और सांसद निधि 25 करोड़ कम से कम किया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन। Thank you, sir. At the outset, I'd like to congratulate the Finance Minister for presenting 9 consecutive budgets. It's not a mean feat, Balthakal. Especially it's commendable because she represents a party which draws its inspiration and its genesis from an all-male organization. In that background, Finance Minister, a lady from my state, presenting 9 budgets is remarkable. Meendum Valthakal. Sir, this budget is in the backdrop of the much touted trade deal. To my understanding, this trade deal is nothing but borrow the words of Winston Churchill, a riddle wrapped in a mystery and inside an enigma. I hope the Finance Minister, when she addresses the House, will shed some light into this trade deal. Whether India is obligated to buy $500 billion worth of goods from the United States. Are we allowed to buy oil from our long-standing friend Russia? Are we allowed to buy oil from Iran, with whom we have a long-standing relationship? Will these decisions be taken sovereignly in India, or will it be taken by the White House? Are we obligated to buy oil from the new colony of America, Venezuela? And most importantly, are we going to allow agricultural products of America into India in zero tariff? If so, what products? The Finance Minister must tell the House and the nation, because we are none the wiser from the statement of the Commerce Minister, because every time he comes and says it's only, he points the finger at the Foreign Minister, the Foreign Minister is pointing the finger back to him, and the Agriculture Minister is completely absent. I hope the Finance Minister will fill this gap and answer on behalf of her cabinet and all her colleagues on what this trade deal actually means. Sir, that if you look at the attendance here in the House, it's quite sparse. This is quite indicative of the mood about a budget. Budgets are losing relevance, sir. People are losing interest in budgets. And this is a reflection of that. And if members are not interested, it also means that their constituents are less interested. There is a reason for this, sir. Before I get into the specifics of this budget, I'd like to go down memory lane and recollect some of the landmark schemes our Honorable Finance Minister has announced in the last 9 years. Amrut, Sankalp, DigiGon, National Nutrition Mission, National Infrastructure Pipelines, Startup India, Seed Fund, PM Garib Kalyan Package, PM Internship Scheme, Mishti, National Monetization Pipeline, Operation Greens, Deep Ocean Mission. All these, when they were announced, were greatly lauded by the newspapers and the media. But if you actually look at the details to see where the implementation of all these schemes are, you will be very distressed. I hope the Finance Minister in her address will go back to the 9 years and recollect the scheme she has announced and give us a status report of each and every scheme and where it stands today. I'll give a few examples, sir. In 2021, the government launched the PM Formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme, PMFME, allocating 10,000 crores to supposedly to support 2 lakh micro food enterprises. But after 5 years, sir, only 60% of the funds are spent.
Then we have the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, which announced 15,000 crore for dairy and meat infrastructure. But after all these years, only 30% is utilized. Then we have the PM Mitra Parks, 7 mega textile parks with 4,445 crores was announced. But after 5 years, we only have 15% of the works done. I hope our officers are taking notes and they will give us the status reports of all these schemes which they announced in such great fanfare before. And in the same budget, they announced the PM, sir, these are all tongue twisters, sir. Atan Nirbhar Swasth Bharat Yojana. தமிழ்ல ஏதாவது ஒரு 2-3 பேரா வைங்கம்மா. ஏன்னா ஒன் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது, எல்லாம் ஹிந்தியிலே வைக்கிற பேர்ல. ஏதாவது ஒரு பேரா தமிழ்ல வைங்க வரும்போது. நடக்குதோ நடக்கலையோ தமிழ்ல ஒரு பேர் வச்சிருங்க. 64,180 crores has been announced to strengthen healthcare. But only construction is going on in most of these places, including AIIMS in Tamil Nadu. But there is no manpower in most of the places. There are no trained doctors, no trained nurses. So again, this is all bombastic announcements without actual implementation, anything on the ground. Then we have in 2020-23, they announced the PM Divine for the Northeast. 6,600 crores was allotted, but the fund utilization is not even 18% till date, sir. Then we have the Desh Stack e-portal. I mean, I don't even know what this portal does, which allotted 400 crores for skilling and job discovery. Failed dismally. The portal exists, but nobody trusts the portal. Then in 2023-24, through the Gobardhan scheme, 10,000 crores was allocated for 500 compressed biogas plants, out of which only 40 have been operational till now. The target was 500. Then in the Amrit Dharohar scheme for conservation of 75 wetlands, 3,000 crores was allotted, but barely 10 pilot sites are there, sir. And in 24-25, they announced this great internship scheme. They said that 1 crore people will get internships. Actual offers are only about 15%. Even among the people who got the offer, about 20% of them dropped out. So that scheme is again a failure, but they announced it as if it is going to transform the entire landscape of employment for young people in India. So then the PM Surya Ghar rooftop solar for 1 crore households, where only 24% of the target is still achieved, sir. Sir, again in 25-26, Urban Challenge Fund allotted 1 lakh crore to reform cities, but utilization stands at 2%. Then the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, 1.44 lakh crores over 6 years, sir, but still farmer support, whatever they were promised, is not got, sir. So if people are losing interest in budgets, it's because only bombastic announcements are made and nothing is implemented, so nobody takes it seriously. It's a clear reflection. Parliamentarians don't take it seriously, and the public don't trust any of these announcements made because there's hardly any implementation of these schemes. Sir, I will tell you another very shocking fact, sir. Last budget, Madam announced 100 crores for a Makana board establishment. I do not know which state was going for election. They announced this 100 crores. Not 1 rupee has been spent till date, sir. Not 1 rupee in that. Where is this board? Have you even formed it? This is the status of all these schemes, sir. So coming back to this year's budget, sir, she has announced integrated textile program with 5 subparts. Then when they renamed Manrega to VBG Ramji, there was a lot of pushback because they removed the name of Mahatma Gandhi. Now they have come up with another scheme in the name of Mahatma Gandhi called Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative. Then there is an infrastructure risk guarantee fund. Then they have announced 20 new national waterways. They have allocated 20,000 crores for city economic regions, dedicated rare earth corridors in Orissa, Kerala and Tamil Nadu, allied health professional institutions to be set up among countless others. So all these announcements, if you look at it 1 or 2 years later, will only be there on paper and nothing would have been implemented. Yes. This is the reason why budgets are becoming irrelevant and the announcements made in budgets are only bombastic and have no meaning at all, sir. Sir, forget about these bombastic announcements, sir. What hurts me the most about this budget, sir, it always lacks empathy. And again, the finance minister has shown the true colors of this government, sir. Disability pension, which the armed forces veterans were getting, was tax exempt. And in this budget, they have brought it under tax, sir. For soldiers.
who have laid their lives for India, for soldiers who had become disabled in fighting war. This government hides behind national security and patriotism all the time. But when it comes to action, this is a reality, sir. Thank you They very don't much. respect our soldiers. They are now going to tax disability pension. People who have been getting this pension for years will have to start paying income tax on it, sir. I wish the finance minister withdraws it, and when she replies, I hope she gives an account of all the grand schemes she has announced in the 9 years and show where the status of this is, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Karthik. Very good, Karthik. Next speaker, Sri Jagadish Sittarji. Thank you, Chairman, sir, giving me opportunity to speak on the budget. And I'm very much happy to congratulate our Honorable Finance Minister for her consecutive 9th budget presented. And according to me, it is a matured budget and perfect budget for the strongest base, creating a strongest base for the Vikasita Bharat, what Narendra Modi ji is a dream. And one thing, this was a budget of a mature economy. For an economically stable country and by a government that is confidently looking beyond today, Union Budget 26-27 signals a shift from crisis management to long-term nation building, aligning with Prime Minister Narendra Modi's vision of developed India by 2047. Rather than announcing flashy grave, as the government has focused on strengthening core systems, healthcare, education, manufacturing, infrastructure, and now explicitly energy security and cutting-edge technologies, including AI. It leaps to the eye that the Modi government is preparing India for sustained growth, for a march towards becoming a developed economy. What does it mean? It clearly signals faster connectivity between major economic centers, alongside city economic regions, new freight corridors, inland waterways, coastal cargo promotion, and support to the states. The Modi government is now thinking in terms of agglomeration economics. Cities, especially Tier 2, Tier 3, are being positioned as growth engines rather than mere population magnets. Manufacturing policy has been sharpened further. Semiconductor mission 2, biopharma, Shakti, rare earth magnets, container manufacturing, textile cluster revival, clinical parks, electronics, components, and construction equipment upgrades point to a deliberate effort to rebuild India's industrial base. These are not isolated announcements. And one thing that to this end, the government has brought about several structural reforms: the introduction of goods and service tax, the insolvency and bankruptcy code, the historic corporate tax cut 2019, the provisioning of massive subsidies in the form of production-linked incentive schemes. Logistic inefficiency is another major focus, with the plans for east-west dedicated freight corridors, the operationalization of 20 national waterways over 5 years, and the development of 7 high-speed rail corridors connecting major cities. The emphasis on urban development with a budget of 25,000 crore over 5 years acknowledges the economic power
of agglomeration and the role of cities play as an engine of growth. The establishment of 5 regional medical hubs will not only boost medical tourism, but also domestic health care capacity, complemented by plans to train 1.5 lakhs caregivers and 1 lakh allied health professionals over the next 5 years. And one thing, the proposal to create 5 inner city townships near industrial and logistic corridors is timely and strategic. If supplemented with an outreach to talented Indians abroad, particularly in the US, it could catalyze a reverse brain drain, an essential ingredient for true Atmanirbhar self-reliance. AI has been a focus, and cloud services data centers have been provided with a 22-year tax holiday. All these, so many things that is highlighted in the budget. I am not going to go details about it. And one thing that regarding this 7 high-speed rails corridors, Honorable Prime Minister declared, and I humbly request Honorable Finance Minister to declare another important railway corridor. Mr. Somanaji also here, Railway Minister, and Vaishnavi also declare. I request high-speed rail corridor from Bengal to Bombay. It will cover most of the part of the Karnataka. So I request humbly to announce 8th corridor also. This will help to the Karnataka. And regarding another important thing, yes, my chairman, that defense cluster to be established in the Belagavi, because it is a military base, Belagavi, and 1,000 acres of land is available. So defense cluster has to be declared. And another important thing, Kalsa Banduri drinking water project. Already Mahadevi Tribunal has awarded 3.5 to more than 3.5 TMC water for drinking water purpose. So it is implemented. Definitely it will help for the development of that area is concerned. And 2-3 minutes, sir. And one thing, Chairman Saab, that regarding this Madai issue is concerned, Environment Department and the Forest Department, it is pending. If the concerned ministers take an interest and even convince the Goa people, Goa government also, that will be clear. Definitely it will help to the drinking water project. It has to be cleared. And another thing, one thing that Karnataka government always, that CM of the Karnataka always critical about the Modi ji government, what are the steps taken, and every time he criticizes the budget, every time, no allocation, nothing. But the last so many years, what is happened to the Karnataka? 1,000 lakhs together railway project has been announced, national highways has been announced. I want to say that Karnataka CM has not at all taken interest for the land acquisition of for railway projects and national highway. Because of non-land acquisition, all the projects have held up last 5 to 6 years. Every time you are insisting, and unnecessarily he is criticizing the union government. And regarding looking into the budget, all the projects is concerned, if it is implemented, definitely it will help for the Karnataka, because Bengaluru regarding this is reflects Prime Minister Modi's strategic vision for the Karnataka. This vision priorities several key areas, including high-speed connectivity, frontier technologies, MSME liquidity support, green tourism development, agricultural renewal, and human capital. Union budget positions Karnataka as a national growth engine in semiconductors, biotech, IT, aerospace, clean energy, advanced manufacturing, tourism, and innovation with 12.2 lakhs crore potential capex sectoral mission, exercising 2 lakh crore
and policy. Certainly, the Modi government is scaling Karnataka's strength into a global leadership. He has to understand, Karnataka people, government has to understand. So, he has to clear all the projects. Acquisition has to be completed. Then see the Karnataka, what is the development will happen. What are the projects? Vande Bharat trains. Definitely, it will help to so many people in Karnataka, Vande Bharat. And Udan scheme, it is a very popular scheme. Because of Udan scheme implementation, Modi's dream that Tier 2, Tier 3 cities, airports have been developed. So many air connection to so many cities because of Udan. I request Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister that Udana scheme is only for the 3 years. After completion of 3 years, all the airlines, they are withdrawing. Even it is economically viable, they are withdrawing the airlines, air flights. So, for example, Belgaum has 16 air connections to so many cities. Now, after Udana period is completed, they withdraw, they shifted to other state. Even economically. Now only having 6 connections to some cities, only 6 airlines. So, for that purpose, some action has to be taken. No, please. And please at least it has to be extended to 5 years or 10 years. Definitely it will be helpful. For that purpose, thank you. Lastly, I conclude that this budget, the union budget, firmly positions Karnataka as a core engine of India's growth under the Modi government. The budget does not impose a one-size-fits-all approach. Instead, it builds directly on Karnataka's proven strength, electronics and semiconductors, biotechnology and pharma aerospace. By strengthening infrastructure, clean energy, leadership innovation and export, the Modi government is ensuring that Karnataka remains globally competitive while delivering inclusive growth of home. This budget enforces a clear message. Under the PM Modi, entire India, Karnataka is a growth engine of Vikasita Bharat. Thank you. Where innovation meets infrastructure and heritage meets high technology. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri Abhay Kumar Singhal. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने 9वां बजट पेश किया और हमें याद है महोदय कि जब ये सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि पुरानी सोच बदलेगी, प्राथमिकताएं बदलेगी और आम आदमी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आएगा। महोदय, यह 2026-27 के बजट को देखकर प्रश्न उठता है, क्या बदला और किसके लिए बदला? इस बजट में जहां एक ओर बड़े बड़े पूंजीगत आंकड़े दिखाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा, ग्रामीण विकास, राज्यों और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी अहम मदों में कटौती की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज बताते हैं कि बदलाव नहीं बल्कि कटौती, ठहराव और कुप्रबंधन हुआ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान महोदय हमारे बिहार जैसे राज्यों को उठाना पड़ता है। यह बजट विकास का विजन नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और छात्रों के लिए निराशा का दस्तावेज है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, बिहार के लिए अमृत काल कहां गए महोदय? मैं जानना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले चुनाव संपन्न हुई बिहार में, डबल इंजन की सरकार डबल डिजिट में, डबल सेंचुरी में 203 सीट पर जीत के आती है और जब चुनावी घोषणा में जब उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो जातीय गणना हम कराएंगे और इस बजट में जातीय गणना पर किसी प्रकार का कोई भी बजट प्रस्तुत नहीं करना, यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है महोदय। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा
कि डबल इंजन की सरकार जिसे आप कहते हैं, ये बिहार पर सबसे बड़ा असर, इस तरह के बजट से सबसे बड़ा असर बिहार जैसे राज्यों पर पड़ता है। और बिहार मैं बता दे रहा हूं, गरीबी में नंबर 1 बिहार, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, स्कूल ड्रॉप आउट में नंबर 1 बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार, देश में सबसे कम उद्योग धंधे बिहार में, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न में नंबर 1 बिहार, हत्या और बलात्कार में नंबर 1 बिहार। ये है डबल इंजन की सरकार। ताज्जुब की बात यह है महोदया, 1-2 पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं महोदया। केंद्र सरकार ने स्वयं एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी बिहार के लिए। उसके बाद क्या हुआ महोदया? सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी केंद्र ने बिहार के लिए, और हुआ क्या? बोले थे उद्योग लगेंगे, रोजगार पैदा होंगे और पलायन रुकेगा। बड़े पैमाने पर 2025-26 में बजट में तेल विपणन कंपनियों द्वारा बिहार की एथेनॉल इकाइयों का खरीद आवंटन लगभग 50% घटा दिया गया महोदया, जिससे 17 संयंत्र बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ ने उत्पादन भी रोक दिया है। परिणाम स्वरूप 25,000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी खतरे में है और 15 लाख मक्का किसानों को मिला सुनिश्चित बाजार टूट चुका है। इस तरह की नीति से ये केंद्र सरकार की बजट चलती है महोदय। मैं जरूर कहना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात आती है, ये जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम महंगाई को खत्म करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। और सत्ता में जब देश की जनता ने लाई तो बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, महंगाई भी चरम सीमा पार कर गई। हमें याद है 2014 में जब 386 रुपये सिलेंडर था, 386 रुपये सिलेंडर था, उस समय सत्ता पक्ष के ही तरफ से एक माननीय मंत्री हुआ करती थी, वो सिलेंडर माथे पे रख करके डांस किया करती थी। और इसी सरकार में 1100 रुपये सिलेंडर हुआ। सत्ता पक्ष के लोग कोई किसी प्रकार का उनके कान पर कोई जू नहीं रहेगा। ऐसे बहुत आंकड़े हैं महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के बारे में मैं एक थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की 2024 की रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करती है। कैग के अनुसार राज्य में WHO मानकों की तुलना में 53% डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 60% पद खाली हैं। अधिकांश जिला अस्पताल और CHC विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना संचालित हो रहे हैं, जबकि कई जगह ICU, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। पूरे मगध क्षेत्र का भार मगध मेडिकल कॉलेज पर रहता है महोदय, लेकिन वहां भी PG स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया अभी तक के धीमी चल रही है। हम 1-2 बातों का और जिक्र करना चाहेंगे महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने कहा कि हम 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके लाए हैं। वो आंकड़े कहां हैं महोदय? कैसे आप उठा करके लाए? आप पिछले बजट में आपने कहा कि 75 से 80 करोड़ BPL धारी परिवार को हम 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं, और इस बार आप 1 साल में 25 करोड़ BPL धारी परिवार को आप ऊपर उठा करके लाए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि राज्यभाई, इसका आंकड़ा भी पूरी तरह से प्रस्तुत आपको करना चाहिए महोदय। मैं तो जरूर कहना चाहिए। 1 मिनट महोदय, मैं एक मांग आपसे करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी, आप जिन्हें BPL को 5 किलो अनाज जो आप फ्री में आप देते हैं, आपके यहाँ डाटा है,
वैसे परिवारों से जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, उनसे जीएसटी टैक्स लेने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उस परिवार को जीएसटी फ्री का एक आप कार्ड निर्गत कर दीजिए। रियल में आप गरीबी उन्मूलन की अगर बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें जीएसटी फ्री का एक उन गरीब परिवारों को एक कार्ड निर्गत कर दीजिए। धन्यवाद। ये गरीबी उन्मूलन की बात होगी। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं समाप्त कीजिए। एक सेकंड महोदय, एक इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस पर चर्चा हुई थी। सुलभ और सुरक्षित यात्रा के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा कि जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं उसमें जनरल बोगी कम से कम 4-5 बढ़ाई जाए, और हुआ भी था कि बढ़ाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी उस पर किसी प्रकार का इस बजट में भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये इनकी गरीबी उन्मूलन है। हमारे देश के भी गरीब चाहते हैं कि सुलभ और सुरक्षित यात्रा हम कर सके। हमने कहा कि समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे तो गरीब रथ चलाने का काम किया था, और गरीब गुरुआ भी एसी में सफर करने का काम करते थे। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से एक आग्रह और करना चाहेंगे। ये हमारे सत्ता विपक्ष की ही आग्रह नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भी सभी माननीय सांसदों का अंदर से समर्थन है कि कम से कम लोकसभा में एमपी लैंड तो मैडम इस बार बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। इतनी महंगाई में बहुत बहुत धन्यवाद। मियां अल्ताफ अहमद। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑनरेबल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि इतने बड़े देश की जिस बेहतर तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हैं, सिस्टम को चला रही हैं, उसके लिए हम इनकी सराहना भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पे इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है। और इस बजट में जो इन्होंने पेश यहाँ पे किया उसमें बेरोज़गारी के हवाले से कोई रोड मैप लोगों के सामने नहीं आया। अगर आज बेचैनी है, अगर आज हमारे बच्चों में डिप्रेशन है, अगर वो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब की बेसिक वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आज यूनिवर्सिटियाँ खोली जा रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लोग वहाँ से डिग्री करके निकल रहे हैं उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। इतना बड़ा पैसा उस सेक्टर पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके रोज़गार का, उनके फ्यूचर का, उनके काम का, उसके लिए कोई चीज़ जो है वो बजट में नहीं है। तो उन इंस्टीट्यूशंस को खोलने का, उन यूनिवर्सिटियों को खोलने का, उन कॉलेजेस को खोलने का क्या फ़ायदा है अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के हवाले से मनरेगा की एक अच्छी स्कीम थी, और ये बदकिस्मती की बात है कि उस स्कीम को डाइवर्ट किया गया। बल्कि ये है कि अब वो स्कीम आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप ये कि वो अपने बजट में से कुछ हिस्सा देगी। जो काम के दिन थे उसमें कम किया गया, तो वो एक रोज़गार का ज़रिया जो गाँव में था, गरीब लोगों के लिए था, उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं तवक्का रखता था कि जो इसमें चेंज की गई उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा लोगों के जज्बात देख के, पॉलिटिशियंस के, पार्लियामेंटेरियंस का जवाब देख के, वो जो रिजेंटमेंट उस कानून के ख़िलाफ़ थी वो इस बजट में उसको रेक्टिफाई करेंगी, लेकिन उस सिलसिले में भी कुछ नहीं हुआ।
बैंक से एक दूसरा जरिया है बेरोजगारों के लिए, लेकिन अब बैंकों का ये हो रहा है कि वो सरमायादारों के लिए हैं, बिजनेसमैन के लिए हैं। जब कोई बेरोजगार इंजीनियर, डॉक्टर डिग्री लेके जाता है बैंकों में, कोई टेक्निकल हैंड जो है वो बैंकों में जाता है, तो वहाँ इतनी बड़ी तवालतें हैं, वहाँ इतनी बड़ी रिश्वत ली जाती है कि वो जो पहले एक बैंक से लोगों को ये लगता था कि ये लोग जो हैं ये बेरोजगारों को उनको प्रायोरिटी पे लोन दे देंगे, दफ्तरी तवालतें कम होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन बैंक भी वो मकसद इस वक्त पूरा नहीं कर रही हैं। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक की हालत ये है कि उस बैंक में अब स्टाफ रहा ही नहीं है। वहाँ गार्डनर जो है वो क्लर्क का काम करता है और क्लास फोर्स जो है वो कैशियर का काम करता है, और लोग इतने बेरोजगार हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। पोस्टें पूरी वैकेंट हैं, लेकिन उनको फिलअप करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह दूर दराज के इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचें खोलनी है, लेकिन मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिस पे किसी का कंट्रोल रहा ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर मुझे 2 मिनट तो चाहिए, मुझे बोलना है। मैं तो अभी तो मेरे टूरिज्म सेक्टर पे आया नहीं, तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर बैंक से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनकी ब्रांच जो हैं वो रूरल एरियाज़ में नहीं खुल रही हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं हो रहा। जहाँ तक हमारा टूरिज़म सेक्टर है, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में, तो टूरिज़म सेक्टर का इस बजट में भी जिक्र किया गया है, लेकिन टूरिज़म सेक्टर की जो आमदनी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसकी इस देश को आमदनी है, हमारी रियासत को उसकी आमदनी है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। इसमें इन्होंने जिक्र किया है इसमें अपने बजट में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी जो है उसको ये बना रहे हैं। नहीं सर, अभी मुझे बोलना है। One more speaker from your party. नहीं सर पार्टी की बात है, लेकिन आप सबको आपने टाइम दिया, 2 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं करूँगा। कंक्लूड करो ना। लेकिन वो अगर इतना बड़ा एक सेक्टर है टूरिज्म का जो जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है हिंदुस्तान में। जिस तरह इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, यहाँ दर्जनों होने चाहिए, और नॉर्थ में भी होने चाहिए, साउथ में भी होने चाहिए, कश्मीर जैसी जगह में भी होने चाहिए, तब जाके लोगों को उनका फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र किया है, शीप का जिक्र किया, एनिमल हस्बेंड्री का किया। हमारे कश्मीर में हार्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है, सेब जो है, या शीप की बात है, एनिमल हस्बेंड्री की बात है, जब तक उसको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होगी, ख़ास तौर पे हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए, कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तब तक उस इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जब भी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो लोगों के लाखों रुपए के तबाह हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल और शीप हस्बेंड्री का सर एक मिनट, एनिमल और शीप, गरीब लोगों की बात करने दीजिए, जो उनके लिए उस लाइफ स्टॉक को इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। गरीब लोग जो हैं उनका गुजारा इसी पे है, अमीर के लिए नहीं। श्री सौगत राय जी, लास्ट सेंटेंस देखिए, हम दिन में इसीलिए बैठे रहे यहाँ पे, हमें 2 मिनट नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देते तो मैं क्या कहूँ। यस, सौगत राय जी प्लीज। थैंक यू सर। सर इनको बैठेंगे, मैं तो एक मिनट से कंक्लूड करो। आपने कंक्लूड करूंगा ना, मैं कंक्लूड करूंगा। 1 मिनट से कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे कंक्लूड करने दीजिए, एक हमारा गुलमर्ग टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत फेमस स्पॉट, वहाँ लीज का मसला है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ट्राइबल्स का बड़ा जिक्र किया गया है इस बजट में, लेकिन ट्राइबल्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उस पैसे की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है जो हिंदुस्तान में ट्राइबल्स को दिया जा रहा है। उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको स्पेंड करने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये मैं आपकी नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। वो सिर्फ पब्लिसिटी की हद तक है, इसके अलावा सर Saugata Roy ji. Sir, I rise to speak on the budget. Abhishek Banerjee has already. भाई अभी तो रुकिए।
बहुत 1 मिनट तो बहुत बार दिया। No. आप Saugat Rai ji, please. Saugat Rai ji, please. Sir, I rise to speak on the budget. Abhishek Banerjee has already spoken on behalf of our party on the budget. Without repeating him, I want to point out that this budget shows that the finance minister is cruel towards West Bengal. I remember last year when Bihar elections were there, she gave all the projects to Bihar and then to Andhra Pradesh. This time, the budget does not find mention of West Bengal at all, excepting about a freight corridor that is to happen from Dankuni to Gujarat. I strongly oppose this. The finance minister has been practically cruel on Bengal. 1,90,000 crores of money due to West Bengal has been held up, both on the behalf of MG NRGA and the Prime Minister Abbas Gujral. I demand again that the Prime Minister, the Finance Minister, revise her position in this matter and do proper justice to Bengal. Sir, speaking on this budget, I feel ashamed as an Indian because this budget is not made by the government of India. It is made by Mr. Donald Trump, President of the United States. 2 days after the budget, we had this so-called Indo-US trade agreement. How? Our tariffs were reduced to 18%. But our exports were made free by America. This is the cruelest blow on Indian agriculturists, who are our bread givers. This government always speaks that we have done mother of all agreements with European Union, though the contours of the same are not clear. And on the Indo-US agreement, where they have allowed free exports by United States to India, it is not clear what are the other contours of the Indo-US trade agreement. There is apparently a difference of opinion between the Commerce and Industry Minister and the Foreign Minister, External Affairs Minister and the Commerce Industry Minister. Sir, it is shameful that India, which has the potential to be a great country, is subject to the vagaries of the opinion of a whimsical American president. And our Prime Minister is reported to have said, "Sir, may I come and see you?" What is this? Maybe you have poverty, but we are a country with a great tradition, Gandhi's country. We cannot bow down our head like this. I don't know why the BJP people are keeping quiet when the Prime Minister's head is being lowered, when the surrender Modi slogan is renting the air. Sir, I would not speak for very long, but I want to point out that this budget seems like the finance minister was told by the Prime Minister that do not make too many announcements. He has given no projects to Bengal, so Prime Minister must have told her that if any announcements are to be made, I'll make it in Tamil Nadu, Kerala or West Bengal. That's why this is not a budget, this is tinkering, just playing around with a few small things, small changes. I'm quite ashamed that the budget is like this. No major changes in the budget on income tax rate slabs. Implementation of new IT Act
will be from April 2026. Only small tinkering, doubling of electronic manufacturing outlay to be by 10,000 crores. The 17 cancer drugs are waived duties. Sir, 1.34 lakh crores for education, which is almost the same as last year. So what is this budget for? You could have kept every figure the same. Sir, you'll notice only for defense there is a 15% jump and some mention of high-speed rail. When they will be implemented, nobody knows. Sir, you'll be surprised. You are from Kerala, you know. Kerala has got nothing from this budget, not even in the matter of national waterways. Sir, subsidy for food, fertilizer and fuel will decline by 4.47%. Only textile, leather, seafood will gain has received a boost from budget proposal that cuts customs duty on scores of inputs. Sir, Indian IT, India's 7.4 million MSMEs will soon be beneficiaries of 10,000 crores advance. Sir, deficit is pegged at 4.3% against 4.4% last year. But center has to borrow 17.2 lakh crores in FY27 to bridge fiscal deficit. The state share remains at 41% after the Finance Commission recommendations have come. Budget fails test of economic strategy. Sir, impact of US tariffs on exporters has to be declared by the government. Protracted global trade deficit is an important factor. China has forbidden export of rare earths to India. They are not allowing tunnel boring machines into India. So we are at loggerheads with US and the China. Where is our foreign policy? We are losing on every count. Sir, the widening trade deficit with China is a big problem. Sir, there is low gross capital, fixed capital formation of around 30%. The worst is this government is a great champion of the private sector. It's called Adani Ambani government. Now, the private sector is not investing at all. What is the proposal to the industry from the finance minister? Sir, there is distress among MSMEs. Their widespread closures are taking place. Unemployment among youth is a big problem. Deteriorating urban infrastructure amid rapid urbanization is a big problem for the country. Sir, government every year announces new schemes. There are 24 such schemes which have not been seen the light of the day. Now, instead of announcing so many schemes, the finance minister could have tried to complete the existing schemes. They did not. So today we face youth without jobs, failing manufacturing, investors not putting out capital, tax exempted, only one human step, tax exempted for motor accident compensation. The budget totally ignores both unemployment and social security. The allocation for the Union Labour Ministry is the same as in the last
budget. No scheme to increase job opportunity. Total central outlay for urban development, where the cities are supposed to be engines of growth, has fallen from 96,700 crores to 85,000 crores. Shrinkage of 11.6%. Yes, Saugata. Sir, in 2 minutes, I'll complete. India's long-term economic security arrangement with Russia has gone. Russia has been our friend. Now on Trump's say-so, on Trump threatening India, we have said that we will not buy Russian oil anymore. Is this the way independent countries should function? India's long-term economic security arrangement with Russia are not there. Another European Union ke saath, mother of all unions, nobody knows what that European Union free trade agreement holds. So there is a difference between the foreign minister and the commerce and industry minister. The finance minister is saying deregulate, simplify and reduce business friction. Some foreign companies that are providing cloud services are being exempted from duty till 47. Now, Saugata, please. So this is no budget, sir. We cannot even get a tunnel boring machine from China. Yes. No rare earth from China. And lastly, I must say that the finance minister should admit, but finance minister is not here. His minister of state is constantly conversing on Uttar Pradesh politics with his friends. Yes. So what to speak to him? No. So he is not listening. He is not interested. He will go back to. Sir, three signal. Yes, Saugata, please. Projects of the government. Now the time to conclude. You are not concerned. He is. Yes, Saugata. Last sentence. Make in India has failed. Atmanirbhar Bharat has failed. Production-linked incentive scheme has failed. Yes. India Sri Captain needs to Viricho encourage Fernandez. investment. Sir, this is a bad budget. One second. Minister has presented the budget with her hands tied behind her back. On the one hand, Trump is pulling at her hand. On the other hand, Modi is pulling at her hand. I am ashamed. Thank you. Thank you. Mr. Captain. Thank you, Chairman, sir. Thank you for allowing me to speak on the budget session. I heard the entire speech of the Honorable Finance Minister, and like a small child who used to wait during Christmas for Santa Claus to come and put some gifts in the stocking, I waited and waited, but finally was greatly disappointed. Not because Goa did not get anything, also not because the Honorable Minister did not even take the name of my beloved state of Goa, but because in the last 11 years, you have taken away everything from Goa, be it our land, our rivers, our forest, our agricultural land, everything, including 10 plus 8, 18 MLAs in wholesale, without GST, without any taxes, lock, stock and barrel. तुमका दिसले की तुम्ही आमका लाचार करतले म्हण विसरते खबरो आम्ही वररात गोयकार. We are people with great heart. We know to fight a battle. Now coming to the budget, sir, the government has run out of ideas. Budget 2026 looks like a swinging a cricket bat in total darkness. Lag gaya to lag gaya, and does not provide a single solution to India's many economic, social and political challenges. In the last 11 years, we kept hearing mission this, mission that. And this 14 point has become a huge challenge to the nation with neither any policy vision nor any political will. Today, with not much details of trade with USA,
The deep and committed love for the two crony capitalists, including Adani, close friend of Vishwaguru, it has resulted in the betrayal of Annadatas of our country. We have backstabbed Annadata farmers who still await meaningful welfare support or an income security. In the 1960s, the Congress government gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. But this government has backstabbed both a Jawan and a Kisan. When it comes to defense, today we have taxed the pension drawn by the disability Jawans or officers, which is a sad thing because he got injured during combat operation or during conflict. There is a delay in disbursement of funds for the ECHS, and that has affected the treatment of our veterans and their families. Inequality has surpassed the levels seen under the British Raj, but the budget does not even mention it or provide any support to SC, ST, OBC, EWS and minority communities. Yesterday, after 43 days of chain hunger strike, Amche Warrat Goinkar, belonging to the ST community, won a battle of opposing the construction of a mall close to the tribal land and a hotspot of diversity. As far as health is concerned, the South Goa District Hospital is having shortage of doctors, nurses, equipments, and most cases are shifted to GMC, putting a huge burden on the doctors and staff of Goa Medical College. There is need to equip our primary health centers. There are funds needed to augment the water requirement, but the government is only giving approval for mega projects with swimming pools. The money bags from Delhi have marginalized Amche Goinkarang. Faulty infrastructure and corruption has led to repeated expenditure by the state government. The job scam of massive proportion has shattered the dreams of the Goan youth. The emerging scam in handing over garbage handling plants to favored corporates, be it in Chikalim or Sankwald, has led to wastage of public money with no desired results. This requires an investigation by the central government. Today, Goa government is known as the event management government by spending crores and crores and has led to a loan of over 35,000 crores. Aaj je burge Goyan Zalman eta te apnache takler almost 2 lakh loan given Zalman eta for no fault of the child. I feel sad to state that today Goa has turned into a crime capital of the country, a drug capital, unemployment capital. Arpara tragedy which has just happened, sir, has resulted in the loss of life of 25 innocent tourists and staff. There were no licenses of the excise department, no fire clearances. There's a total law and order failure. The only focus of center is to turn Goa into a coal hub with double tracking, expansion of roads and other destructive projects meant to help Adani, who is transporting coal from Goa to other states. There is a drop in the budget for education, with implementation of NEP is suffering badly. Teachers are on contract or lecture basis. Today, the exams of the 12th standard have commenced in Goa, sir. The teachers who are on contract or lecture basis, they are not sure that after this academic year, whether they will get a renewal of their contract. Kindly conclude, please. Sir, I've just started, sir. You have taken 5 minutes. The 12th standard, even staff working in various departments are having temporary jobs. The then Congress government in Goa had given Balrat buses to ensure that poor students from remote areas come to the school. Today, those buses need replacement. I have been trying to meet the requirement through MP-led funds, sir. Please make it brief. I'm concluding, sir. The Finance Commission, which had visited Goa, is living in bliss, providing absolutely no relief to Goa, which is under severe financial stress due to faulty policies. There are no jobs for the youth, employment of a youth or increasing participation of women in workforce. What is the outcome of internship or skill development scheme, sir? Poor and middle class, there is no relief from inflation, saving and falling, rising debt.
Instead of focusing on actual infrastructure in Goa, we are demolishing religious places. Shri Vijay Kumar Hansdagi. Sir, I'm concluding. Last term. Sir, we need a special status for Goa for a sustainable development council. This is the only solution for my beloved Goa. नाने आमचे गोय जे वडिलांनी सांभाळून दवरला ते काबार जातले सर. कोण दूरचे ना. गोयकार काबार जातलो. जय हिंद, जय गोवा. श्री विजय कुमार हंसदागी. धन्यवाद चेयरमैन सर. बजट पे बोलने के लिए मुझे मौका अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से देने के लिए धन्यवाद. झारखंड बजट में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है क्योंकि जो जीएसटी इनपुट के साथ साथ आपका जाकर के जो हमारे यहाँ माइनिंग की रॉयल्टीज वगैरह सब वो समय पे नहीं मिलने पे बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होती हैं. सरकार के इस बजट में स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई. कॉन्ट्ररी उसके अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन अभी आया है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से रुपया का जो भाव गिरा है आपका जाकर के, और गवर्नमेंट अपनी गलतियों को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. वो लगातार फेलियर्स पे भी अपने पीठ थपथपा रही है. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट, ये सब बड़े बड़े शब्द यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. इन 12 सालों में कितने आपके छोटे और बड़े उद्योग जो है बंद हुए, कितने आपके जो है मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, कितने जॉब्स आपके जो है लोगों ने खोया, और उन जॉब्स ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दी. ये सभी चीजों पे कोई भी डाटा आपका जाके सरकार पेश नहीं कर रही है. और जिस तरह से इंपोर्ट कम करने की बात हो रही है, लेकिन यूएसए ट्रेड डील के बाद जो दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से घुटने टेक दे रही है. पुराने साथियों से संबंध खराब कर और यूएसए के साथ जो संबंध बढ़ाने के चक्कर में जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग अगर होंगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो भुट्टा का जो बाय प्रोडक्ट हो, उन सबको लेने के बाद यहाँ के फार्मर्स की क्या स्थिति होगी, उस पर कहीं कोई क्लियर इंटेंशन दिख नहीं रहा है. और जिस तरह से जो बाहर के कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट डंप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे देशों में बंद रहते हैं वो यहाँ पे हमारे देश में यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, खतरनाक है. हाई ग्रोथ ऑफ 7% और पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई है, जबकि मैं कह सकता हूं ये पूरी तरह से असत्य है. आज जिस तरह से गरीबी है, महंगाई बढ़ी हुई है, और जिस तरह से आपका जाकर के राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो किस तरह से कहा जा सकता है कि आपका जाकर के गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है. पहले गवर्नमेंट जो है एक बहुत बढ़िया डाटा देती थी कि हमारे मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या काम किया और कितना काम किया. अभी डाटाज छिपाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं और लोगों को भ्रम में डाला जाता है. और जिस तरह का हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हम बात नहीं करें, हर एक व्यक्ति इस देश में जो भी चाहे वो छोटा से बड़ा, आपका किसान से लेके गरीब कोई भी है, सबको ये अपना टैक्स देता है हर एक चीज खरीदने पे. जिस तरह से निचोड़ करके लोगों से, और जो सोशल सिक्योरिटी पे आज तक फोकस नहीं है इस गवर्नमेंट की, हेल्थ, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, फार्मिंग, प्रोडक्शन, जो फोकस गवर्नमेंट की नहीं है, उसे दिग्भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं. आज बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में. जिस तरह से इस पूरे देश में जो आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, जाति धर्म का जो एक सुंदर माहौल, उसे इस सरकार के लोगों द्वारा लगातार चोट करके जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है. आज मणिपुर में जो हुआ, और इस सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ के सरकार की मनसा को दिखाता है. आज आसाम के टी ट्राइब को, चाहे हिल ट्राइब बोल करके जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा, और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है, और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए, जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो. विजय जी, आप भारत की पार्लियामेंट में देश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं. सर, बजट के साथ उनके शब्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं. इनको तकलीफ बहुत हो रही है क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं, की चर्चा क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं. आप झारखंड, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से अगर जो ट्राइब्स के ऊपर से अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल आपका, मैं कह सकता हूं, अपराध है. एक मिनट,
क्या है पॉइंट आउट? जो यहाँ पे सर लोग आज विरोध कर रहे हैं, मैं सर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है हमारा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। 353 सर, चलिए क्या है व्यवस्था? वो ये कहता है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये कृपया जो नियम 353 है सर, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है आप बैठ जाइए, जो स्टेटमेंट इंडिया के लोगों के सामने है उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बात सुन लीजिए, आप यहाँ पे एक बात सुन करके बात करें। हम इस पे व्यवस्था दे दे, जो निशिकांत जी ने उठाया। सर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हम ठीक है, कृपया जिस व्यक्ति को सर आप लोग की बात को पूरी तरह से सुन रहा हूं, जिस व्यक्ति को सफाई देने का अवसर यहाँ नहीं है उसका कृपया नाम या उसको लेकर नहीं। मैंने नाम बिल्कुल नहीं लिया सर। अपनी चर्चा समाप्त करें। और लगातार इस देश की जो व्यवस्था खराब होती चली जा रही है, मैं यहाँ के सदन के नेता की ही बात करूंगा जो शायद डिफेंड कर सकते हैं, कि हमारे चौकीदार की तरफ से हमने सुना था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि उनके फकीरी के चक्कर में ये देश पूरा फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बीरेन्द्र सिंह जी, श्री बीरेन्द्र सिंह जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस वर्ष 26-27 में करीब 53,57,000 साढ़े 53 लाख के करीब 1,000 करोड़ के लाख करोड़ 53 लाख सम 1,000 करोड़ कुछ 1,000 करोड़, ये तो मैं कह रहा हूँ करोड़ के बजट को उन्होंने इस वर्ष रखा है। इतना बड़ा बजट हो गया कि उसको पिछले कहने में दिक्कत हो रही है। सुनने में किसी को दिक्कत हो तो मैं क्या करूं। जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 7.7% अधिक है। मैं इसलिए इस बजट 7.7% हमारे आंकड़े से है। और जो मनीलाल जी आप कह चुके हैं और बीरेन्द्र जी भी विधानसभा में रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग मत करिए। जो 4.4% डेफिसिट के साथ है। मैं इस बात के लिए जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि के लिए 1,62,671 करोड़ आवंटित किया है, क्योंकि सदन पूरा जानता है कि देश हमारा 70% जो देश की आबादी है वो कृषि पर के क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से माननीय वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि इस बजट के अवलोकन से यह जरूर हम लोगों को आशा नहीं दिख रहा है कि जो किसानों के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ रहे हैं उसके माफी के लिए किसी प्रकार का बजट में प्रावधान है, न ही एमएसपी पे गारंटी के कानून के संदर्भ में कोई प्रावधान होगा कि नहीं होगा। मैं पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी जब सदन में थे प्रश्न के दौरान सबसे अधिक जो कठिन स्थिति है वो है बटाईदार किसानों की। लगभग जो बड़े किसान हैं वो स्वयं खेती नहीं करते और वो अपनी जमीन कृषक मजदूरों को ठेका पर बटाईदार के रूप में दे देते हैं। लेकिन जब दैवीय आपदा आती है, किसी कारण बाढ़ से उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है, तो उनको इंश्योरेंस का कोई भी जो है कि सरकारी सहायता का लाभ उनको नहीं मिलता है। मैंने उनसे उस समय भी अनुरोध किया था और माननीय मंत्री जी से भी अपेक्षा की बजट में कुछ इस तरीके का प्रावधान करें कि बटाईदार किसानों के भी हित की रक्षा हो सके। यह सरकार जो है सबका विकास का दावा करती है, लेकिन हम ये सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि
कई प्रदेश और देश के कई प्रदेशों में, और यहाँ तक कि मेरे जनपद चंदौली में भी कुछ जातियां ऐसी हैं कि एक जिले में वो अनुसूचित जनजाति में है और दूसरे जिले में अनुसूचित जाति में है। ये गोंड है, पनिका है, चेरो है, खरवार है, कोल है, भील है, बिहार है। यह इनका आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। और यदि सरकार उनके प्रति इतना दयालु है कि उनका भी विकास हो, तो क्या उनको, जिसको अभी तक राज्य सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रहा है, उनका शोषण भी हो रहा है, तो ऐसे सरकार उनके हित के लिए कैसे कार्रवाई करेगी, यह भी मैं जानना चाहता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो अपने अभिभाषण में उन्होंने जो है बनारस में विकास के नाम पर जिस तरीके से ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक धरोहरों को नष्ट किए जाने का जो है उल्लेख किया है, मैं अपने आप को उनसे संबद्ध करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, क्योंकि मैं उसी जनपद से आता हूं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, और मालवीय जी के नाम पर बीएचयू चिकित्सा संस्थान है। वहां लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार अनुदान, केंद्र सरकार अनुसंधान देती है, पैसा देती है, और वो वहां पे गरीबों का ठीक तरीके से इलाज नहीं होता। और वहां पे कृपया जो अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ सर, 5-6 मिनट हो गया अभी तक जो है आपकी घड़ी तेज है सर। और वहां पे मशीनरी और दवा के खरीद में बड़े पैमाने पर जो है धांधली होती है। और जहां तक एडमिशन का सवाल है, ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम ऐसे शोध के छात्र हैं जिनको जो है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके हिस्सेदार की जो है कि वो चोरी सरकार कर रही है। मैं आपका केवल एक क्षेत्र में ध्यान आकर्षित माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत जो है कि करीब 1,39,289 करोड़ आवंटित किया है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये कहा है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो जनजाति वाला क्षेत्र है, वहां पे वो 500 कमरों का वो छात्रावास गरीबों के लिए तथा छात्राओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए वो देंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि चंदौली हमारा आकांक्षी जिला है और बहुत ही पिछड़ा जनपद है। यदि वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मिनी स्टेडियम तथा ये छात्रावास और एक विद्यालय दे जो है गरीबों के लिए, तो उनके जीवन का स्तर में जो है वो उठान होगा। एक महिला हॉस्टल मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारी बात तो आप कह रहे हैं। एक से केवल रोजगार के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो है कौशल विकास के नाम पर जो है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही थी। पिछले बजट में कौशल विकास का जो जमीन पर जो उसका जो है कि कार्रवाई दिखाई दे रही, मात्र 6% जो हुई है। और सीएजी की रिपोर्ट है कि उसमें हजारों करोड़, 1 मिनट सर, हजारों करोड़ रुपए का जो है कि घोटाला हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो जीरो टॉलरेंस को बढ़ावा देने की बात जो है कि वो कहती है कि हमारी सरकार चंदौली की जो मांग कर ली उसको डाइल्यूट मत करिए, समाप्त करिए। धन्यवाद सर। वो चंदौली से ही मंत्री जी थे जिन्होंने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। आलोक कुमार सुमन जी, आलोक कुमार, धन्यवाद सर। ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आलोक कुमार सुमन जी, श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यूनियन बजट 2026-27 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से मैं अपने माननीय वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य की नई शपथ के साथ अत्यंत जटिल वैश्विक परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और घरेलू विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 3
कर्तव्य यानी वृद्धि, आर्थिक वृद्धि को गति देना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास के मध्य एक संतुलित, दूरदर्शी और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले 53.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का समन्वय है और साथ साथ नई उभरती उद्योगों, सनराइज सेक्टर्स के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से समर्थन है। यह एक बेहद अहम बात है। महोदय, इस बजट के 6 स्तंभ आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को गति, विकासों के आधार पर सुदृढ़ीकरण, जनहित से जुड़ी सुविधाओं पर जोर, विश्वास आधारित जनता को बढ़ावा, व्यापार और जीवन की सुगमता और राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देना है। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार का आभार व्यक्त करूंगा, चूंकि यह बजट ऐसे प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल ये खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नीति, नियत और दिशा स्पष्ट करता है। साथ साथ आशा, आत्मविश्वास और अवसर तीनों का समन्वय भी है। महोदय, मैं सबसे पहले सरकार द्वारा प्रस्तावित 12.2 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय की सराहना करना चाहता हूं, जो जीडीपी के 4.4% है। यह प्रावधान परिवहन अवसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यय रोजगार को बढ़ावा देगा और अवसर को बदलेगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट में वित्तीय घाटे को 4.3% जीडीपी तक रखने का लक्ष्य रखा है। यह दर्शाता है कि सरकार विकास भी चाहती है, सरकार कल्याण भी चाहती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को कर्ज का बोझ भी नहीं डालना चाहती। आर्थिक विकास महोदय तभी सार्थक है जब हमारे नागरिक स्वस्थ हों। इसी सोच के साथ बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है इस बजट, और इस बजट में यह बताया गया है कि 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बढ़ाए जाएंगे। जिला अस्पतालों का विस्तार, आधुनिकीकरण, बायोफार्मा शक्ति की योजना के तहत 10,000 करोड़ की निवेश की बात की गई है, जो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर और बायोफार्मा अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी। इस बजट में स्वास्थ्य पेशेवरों, एएचपी और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के निर्माण पर फोकस किया गया है महोदय, जिसमें 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। हर जिला अस्पताल में 24 घंटे और 24/7 ट्रॉमा सेंटर केयर स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति 24 घंटे सुदृढ़ होगी और सुनिश्चित होगी। मधुमेह, कैंसर और दुर्लभ 17 बीमारियों की दवाइयों पर सीमा शुल्क में कमी से इलाज की लागत कम और सस्ती होगी। बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,500 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 39,390 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ शिशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को मजबूत करेगा। महोदय, एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सबसे अधिक रोजगार यहीं से आता है। बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। यह बजट वोकल फॉर लोकल को न केवल नारा बल्कि आर्थिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कृपया समाप्त करें। महोदय, मैं 2 मिनट। महोदय, मैं इस अवसर पर अपने माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां एक सबिया एयरपोर्ट है और जो 2020 से ही उड़ान योजना में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक
इसकी बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और आर्थिक संरचना नहीं तैयार हो पा रहे हैं, जिसके कारण परियोजना धरातल पर उतरने में विलंब की शिकार हो रही है। जबकि हमारी सरकार ने 149 हवाई अड्डे बना चुकी है। अतः महोदय, आ गई मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये विनम्र आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट के लिए उड़ान योजना की बिडिंग प्रक्रिया के साथ साथ धन एलोकेट किया जाए ताकि उसकी संरचना और उसकी बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार, धन्यवाद सभापति महोदय। श्री राजकुमार संगवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि यह उस भारत का रोड मैप है जो आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। यह बजट देश की आकांक्षाओं, किसानों की उम्मीदों, युवाओं के सपनों और महिलाओं की शक्ति का प्रतिबिंब है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये संतोष का विषय है कि वर्ष 24-25 में देश में खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और जोखिम कम करने की स्पष्ट दिशा प्रस्तुत करता है। तिलहन और दलहन के लिए चलाए गए राष्ट्रीय अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में यह बजट एक निर्णायक कदम है। श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान देकर सरकार ने न केवल पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय के नए अवसर भी पैदा किए हैं। आज का किसान केवल फसल उत्पादक नहीं रहा, बल्कि वह पशुपालक, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन से जुड़कर आय के विविध स्रोत अपना रहा है। वर्ष 24-25 में देश का मत्स्य उत्पादन लगभग 200 लाख टन तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश आकर्षित होना यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियों पर भरोसा बढ़ा है। भंडारण, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक जैसे विस्तार से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने हैं। ग्रामीण रोजगार और विकास के क्षेत्र में सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुधार किए हैं। 125 दिन का रोजगार, डिजिटल भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण से न केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, बल्कि गांवों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। यह बजट ग्रामीण मांग को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखता है। आज 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और न केवल एक वर्ष में 60 लाख नई लखपति दीदी बनी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान यह साबित करते हैं कि यह बजट महिलाओं को लाभार्थी नहीं नेतृत्वकर्ता बना रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती एक दूसरे के पूरक हैं। यह बजट स्पष्ट संदेश देता है कि भारत सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार, माओवादी हिंसा का सीमित होना और युवाओं का मुख्य धारा में लौटना, यह सब विकास और विश्वास का परिणाम है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने ठोस परिणाम दिए हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन और 2025 में रक्षा उत्पादन का 1.5 लाख करोड़ रुपए पार करना, यह बजट भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नींव मजबूत करता है। पिछले 11 वर्षों में $750 बिलियन का FDI वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। युवाओं के लिए यह बजट अवसरों का बजट है। मुद्रा योजना के तहत 38 लाख करोड़ रुपए का ऋण देकर 12 करोड़ से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना यह दर्शाता है कि यह बजट नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बजट है। शिक्षा, तकनीक और कौशल विकास पर यह बजट भविष्य की तैयारी करता है। अटल टिंकरिंग लैब्स, AI और सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण तथा ITI के उन्नयन से भारत एक फ्यूचर रेडी नेशन बन रहा है। यह बजट विकास के साथ साथ भारत की संस्कृति, विरासत और आत्मसम्मान को भी सशक्त करता है। आर्थिक प्रगति और संस्कृति गौरव दोनों को साथ लेकर चलने की यह सोच भारत की पहचान को और मजबूत करती है। यह बजट स्पष्ट करता है कि विकसित भारत कोई नारा नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति, मजबूत नेतृत्व, जन भागीदारी से सरकार साकार होने वाला लक्ष्य है। महोदय, मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ कि बजट में जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए जो सस्ती दवाओं के लिए प्रावधान किया गया है और मेरा लोकसभा क्षेत्र जहां
नदियों का गंभीर खतरा है, जो दूषित जल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। हमारे देश की सरकार ने बहुत सारे एम्स के सेंटर बनाए हैं, एम्स खोले हैं, अभी भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। दिल्ली के एम्स में पूरे देश के मरीजों का पूरा भरोसा है और यहाँ पर इतना दबाव रहता है मरीजों का कि उनको भर्ती होने में दिक्कत होती है। मेरा लोकसभा क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। अगर एक एम्स का सेंटर, मरीज भी ये चाहते हैं कि अगर एक एम्स का सेंटर, क्योंकि कनेक्टिविटी अक्षरधाम से देहरादून के लिए जो बागपत होकर जाते हैं, आधे से पौने घंटे में बागपत पहुंच जाए, एक सेंटर अगर वहाँ बन जाए तो ये मरीजों का जो दबाव है वो वहाँ पर उसको हम कम कर सकते हैं। एक बात मैं और सर कहना चाहूँगा कि अभी किसानों के मन में एक भाव भी है, जो सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण होता है और उस पर जो प्रतिकर किसानों को मिलता है, उस पर टैक्स से उनको राहत मिलती है। और जो अगर उसी परियोजनाओं के लिए, सरकार की परियोजनाओं के लिए अगर आपसी समझौते के आधार पर जमीन को लिया जाता है तो उस पर किसान को से टैक्स वसूला जाता है। अगर इसको भी उसी अधिग्रहण के दायरे में ला दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। एक बात और मैं कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करूंगा, कि मेरा क्षेत्र गुड़ शक्कर की पहचान वाला क्षेत्र है और किसानों के लिए गुड़ शक्कर के जैसी हमारे यहाँ अगर एक हब वहाँ पर ये एक्सपोर्ट जोन, ये कैसे मालूम करके लिए निर्यात का जोन बना दिया तो किसानों की आय बढ़ेगी, आमदनी दुगनी होगी। आपने मुझे ये कैसे मालूम होगा कि आपका गुड़ का क्षेत्र है जब तक माननीय सदस्यों को खिलाएंगे नहीं? बताइए। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री आर सच्चिदानंदम, श्री आर सच्चिदानंदम। Very much, Speaker sir. The budget is not merely inadequate; it is structurally anti-people and pro-corporate. At a time when workers face job losses, farmers face falling incomes, youth face unemployment, and families face rising prices, the government has chosen to protect profits instead of the people. The working masses of this country are experiencing one of the worst phases of economic distress in decades. Real wages are stagnating, unorganized workers remain without security, and unemployment among youth is alarmingly high. Yet instead of expanding public spending in generate jobs and strengthen demand, the government is obsessed with fiscal tightening for poor and fiscal generosity for the rich. There is no universal employment guarantee for urban youth, no major expansion for public sector recruitment, and no serious program to revive labor-intensive industries. This is a budget that asks unemployed to be patient while rewarding those who already control the wealth. Agriculture remains in deep crisis. Input costs, seeds, fertilizer, fuel keep rising. Climate change is increasing crop losses. Farmers are burdened with debt. But this budget does not provide a legal guarantee of minimum support price. Large-scale public investment in irrigation, storage and procurement. Strong measures to reduce input costs. Instead, policies continues to open agriculture to corporate control while reducing the state's responsibility. Farmers are being pushed towards the market without protection, while big agribusiness is given policy support. This is not a reform. This is an abandonment. Public money for private profit. Honorable Speaker, sir, this budget clearly shows the pattern. Losses are socialist, profits are privatized. Corporate tax concessions continue. Incentives and subsidies are extended to large private players in infrastructure, logistics, and strategic sectors. Meanwhile, allocations for food security, rural development, and welfare schemes do not keep pace with inflation. The government claims there is no money for expanding social welfare, but there is always money when big capital demands support. Labor rights are being weakened in the name of ease of doing business. The new labor regime reduces job security, weakens collective bargaining, and makes it easier for corporations to hire and fire. But where in this budget is the protection for gig workers, contract workers, scheme workers, and the vast informal workforce? Workers are treated as disposable.
while corporations are treated as national assets. Energy transition without self-reliance. Yes, renewable energy is discussed, but the real question is who is controlled this transition? Without strong public sector leadership, heavy investment in domestic in manufacturing of solar panels, batteries, grid systems, India will remain dependent on imports. We will become the market, not manufacturing power. A genuine green transition must create jobs for Indian workers, not profits for foreign suppliers and private monopolies. Defense spending rises, social spending suffers. National security is important, but security is not only about weapons, it is also about food, health, education and unemployment. What kind of security do we build when government schools lack of teachers, public hospitals lack of staff and equipment, youth lack of jobs, farmers lack of income security? A hungry, unemployed population cannot be foundation of the strong nation. So, just 1 minute, I will conclude. Science and research. Honorable Speaker, sir, this budget had an opportunity to strengthen with workers, farmers, youth and the poor. It had the chance to expand public investment, generate employment and reduce inequality. Instead, it has chosen the path of corporate-driven growth, weakened labor rights and strengthening welfare of. We believe in the different vision of India, and India where public investment creates jobs, where farmers receive guaranteed remunerative prices, where health and education for rights, not privileges, where workers have dignity and protection, where economic policy serves the many, not a few. The budget fails that vision. Therefore, we strongly oppose this anti-people, pro-corporate budget. Thank you very much, सुदामा प्रसाद जी, आप सुन नहीं रहे सुदामा प्रसाद जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं कुछ रखूं उसके पहले 2026 आईसीसी में अंडर 19 विश्व कप में जिम्बाब्वे के हरारे शहर में हुए विश्व कप मैच, क्रिकेट का जो मैच हुआ उसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो इसके लिए मैं वैभव सूर्यवंशी को और पूरी टीम इंडिया को बधाई देता हूँ। महोदय, ये 2026-27 का बजट जो है वो जन विरोधी बजट है, कॉरपोरेट परस्त, अमेरिका परस्त बजट है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। महोदय, बजट का पैसा कहाँ जा रहा है? बजट का पैसा कहीं देहाती इलाकों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। न नली गली बन रहा है, न पुल पुलिया, न ग्रामीण विकास का कोई काम हो रहा है। और हम लोगों को मिलता है 5 करोड़, हम लोग के करीब 100 करोड़, 125 करोड़ का योजना भी आ गया है। तो हम लोग क्या करें? बजट का पैसा वहाँ खर्च नहीं हो रहा है महोदय, और ये फंड में भारी दबाव है। इसलिए सर, आपके माध्यम से सरकार से हमारा निवेदन है कि कम से कम इसको 30 करोड़ कीजिए। बजट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम देहाती इलाकों में काम चले। जिन लोगों ने जिताकर भेजा है, भारी दबाव है हम लोगों पर। कितना दिन हो गया एक ठो नली नहीं बना, एक ठो गली नहीं बना। दूसरी बात महोदय कि इस बजट में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, फल सब्जी पर पैदा करने वाले किसानों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो क्या करेंगे, उनकी खेती है। ऊपर से ये अमेरिका भारत का जो व्यापार समझौता हुआ, जिसमें कृषि उत्पादों पर से 0 टैरिफ कर दिया। अमेरिकी जो कृषि उत्पाद आएंगे, इससे कहिए कि भारत के किसानों के और यहाँ के खुदरा व्यवसायियों के गले में फांसी का फंदा हो गया महोदय। अभी जनवरी की रिपोर्ट है, पीयूष गोयल जी का बयान आ चुका है कि सिर्फ आप ही की ओर बोल रहे हैं सर। सिर्फ जो है जनवरी माह में इस साल महाराष्ट्र के यवतमाल जिला में 21 किसानों ने आत्महत्या किया, घाटे की वजह से, कर्ज की वजह से। और पूरे महाराष्ट्र में क्या होगा, पूरे देश में क्या होगा, इसलिए हम इस समझौते को कहा जाए कि जो पहला टैरिफ था भारत का अमेरिकी सामानों पर, या जो
हम जो सामान बेचते थे उस पर टैरिफ था, उसको पुनर्बहाल करने की सरकार से मांग करता हूं। महोदय, एक पेड़ मां के नाम और करोड़ों पेड़ अडानी अंबानी के नाम, कैसे रहेगी ये धरती महोदय? आप कृपया नाम, ये धरती कैसे चलेगी अगर पेड़ काटे जाएंगे? 12,000 किलोमीटर में विकास के नाम पर रेल परियोजनाओं के लिए, कोयला खनन के लिए, बांध और रोड परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई होगी। उनको लीज पर ये जंगल दिए जा रहे हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी दलित, उनको पुलिस बल के जरिए हटा करके उनके विरोध को नजरअंदाज करके तमाम राज्यों में ये चल रहा है। इसलिए लगता है महाराज की महोदय की इस सरकार के जो लोग हैं उनको बसने के लिए कहीं दूसरे ग्रह पर जमीन खोज लिया गया है। जब धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे महोदय तो कैसे ये सृष्टि बचेगी? सृष्टि रहेगी कैसे? पेड़ कट जाएंगे सारे के सारे पेड़, तो यहाँ ऑक्सीजन कैसे मिलेगा हम लोगों को? पानी कहां से मिलेगा? खेती कैसे होगी महोदय? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इस सृष्टि को बचाने के लिए सबसे पहली जरूरत, तमाम यहाँ कोई भी पार्टी तभी रहेगी जब ये धरती रहेगी महोदय, जंगलों की कटाई पर सख्ती से रोक लगाई जाए। और एक बात ये महोदय कि यहाँ पिरपैती में 1050 एकड़ जमीन अडानी को पावर प्लांट के लिए दे दिया गया, उसको रद्द किया जाए 1 रुपये के लीज पर। और महोदय समाप्त कर रहे हैं महोदय, ये मनरेगा को खत्म करके ये जो जी राम जी योजना लाई गई है, इसे ग्रामीण भारत के मजदूरों, खेत मजदूरों को जो काम का अधिकार मिला था वो अधिकार खत्म कर दिया गया, इसलिए इसको बहाल किया जाए। महोदय, दूसरी बात की 4 लेबर कोड के जरिए जो मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ये 4 श्रम कोड, ये 44 श्रम कोड थे, उनको खत्म करके 4 लाया गया है। फिर से पुराने को वापस लाया जाए, नया को खत्म किया जाए। और तीसरी बात महोदय, एक मांग हमारे इलाके का है, सुन लिया जाए सर, जो है सोन नदी जो है वहां जलाशय की मांग, हम लोग उसमें निर्माण की बात कर रहे हैं कि अगर वो जलाशय बन जाता है तो मध्य बिहार के 8 जिलों की 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी महोदय, और सोन नहरों का आधुनिकीकरण किया जाए। ये हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और भोजपुर में एक स्टेडियम का सरकार निर्माण करवा दे महोदय। अभी ढेर चीज बोलना है, कहें आप तो इसको हम भिजवा देते हैं। आपकी सब बात आ गई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे 2026 और 27 के बजट पर बोलने का जो है वो मौका दिया। महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 और 27 का बजट जहां पर प्रस्तुत किया। महोदय, ये बजट है 2047 में विकसित भारत बनाने की नींव का, उसकी आधारशिला का। विजय दुबे जी बैठ जाए। महोदय, ये बजट है दूरदृष्टि और दूर की सोच का। महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत और विकसित भारत देकर जाएं और विश्व में भारत नंबर 1 पर हो और आत्मनिर्भर हो। उसी दिशा में ये बजट जो है ये एक कदम है। वैसे तो ये बजट जो है वो 2026 और 2027 के लिए जहां पर लाया गया है, लेकिन ये सोच है आने वाले 5 वर्षों की और 2047 तक जो कार्य हमें करने हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उनकी शुरुआत जो है वो आज इस 2026 और 27 के बजट से जहां पर हो रही है। महोदय, इस बजट में मूलतः 3 स्पष्ट कर्तव्यों पर यह बजट जो है वो आधारित है। विशेष तौर पर पहला कर्तव्य जिसकी मैं चर्चा जहां पर कर रहा हूं, आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, गति भी देना
और बनाए भी रखना, जिसमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और वैश्विक उथल पुथल के प्रति अर्थव्यवस्था को सहनशील बनाना, निर्यात वृद्धि और दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करना, ये सोच है इस बजट के माध्यम से इस सरकार की। तो मैं और दूसरा जो है वो आकांक्षाएं और क्षमता का निर्माण, और विशेष तौर पर भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करना, और विशेष तौर पर जनता को भारत की समृद्धि का भागीदार बनाना। और हर एक भारतीय का ये दायित्व बनता है कि वो भारत को आगे ले जाने के लिए अपना दायित्व निभाए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो है वो करे। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये बजट जो है ये पेश किया गया है। और विशेष तौर पर तीसरा जो कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास, जो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस ओर भारत आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही समावेशी विकास सुनिश्चित करना, हर परिवार, क्षेत्र और समुदाय तक अवसर पहुंचाना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देना, इस बजट का जो है वो विशेष तौर पर ध्यान जो है वो केंद्रित जो है वो किया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर ये जो टैक्सेस की जहां पर बात की गई है, अनुपालन का सरलीकरण करना, जो परेशानी लोगों को ना आए, इसलिए आयकर विवरणी ITR को सरल बनाने और छोटे करदाताओं के लिए नियमों में ढील देने का प्रस्ताव जो है वो इस बजट में जो है वो दिखाया गया है। और इसके साथ ही हम सब जानते ही हैं कि भाई 12 लाख तक की आय तक जो है वो टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई द्वारा जो है वो देश के नागरिकों की जो है वो दी गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन और बजट के द्वारा जो है वो ध्यान जो है वो आकर्षित किया गया है। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, गृह कार्य, कृषि और संबंध कार्यालय, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, IT और दूरसंचार, वाणिज्य और उद्योग, सामाजिक कल्याण, विज्ञान, वैज्ञानिक विभाग, कर प्रशासन, विदेश कार्य, वित्त, पूर्वोत्तर विकास के लिए यहाँ पर बहुत सारा जो प्रावधान जो है वो रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी राहत देने की बात जो है वो इस बजट में जो है वो की गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में भी, शिक्षा और कौशल क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो इसमें रखा गया है, ताकि आने वाले दिनों में देश के नौजवान जो हैं वो अच्छा करें, अच्छा पढ़ा लिखें और कौशल युक्त हों और आत्मनिर्भर बनाने में आत्मनिर्भरता की ओर आगे जो है बढ़े। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जी राम जी विधेयक जहां पर लाकर सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी है और आने वाले दिनों में जो कमियां मनरेगा में थी, उन कमियों को दूर करके, उस भ्रष्टाचार को दूर करके, वो अनियमितताएं जो थी उनको भी दूर करके ये जी राम जी जो लाया गया है, इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो लोगों को जो है वो मिलने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों को, किसानों को देने का जो निर्णय लिया था, वो सबसे अच्छा और बहुत ही अच्छा निर्णय था, ताकि इससे किसान जो है, महोदय थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं जल्दी कंक्लूड जो है वो करने का प्रयास जो है वो करता हूँ। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो अर्थव्यवस्था लुढ़कने की तरफ जो है वो जा रही थी, अब जाकर अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा वित्तीय अनुशासन और उनके द्वारा पेश किए जा रहे दीर्घकालीन जो असर है वो दिखने लगे हैं और बजट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो बनती जा रही है और बनने भी वाली है। महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जो है लगभग बन ही गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे
बहुत सारी योजनाएं जो चलाई गई हैं उन पर भी जहां पर जो है वो सारे कार्य। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना ही समय दिया, लेकिन महोदय कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में 2000 करोड़ जो रुपया है, 2000 लाख करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा जम्मू कश्मीर को भी जो है इस बजट में दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सर कम बुलवाना आज इनको, आपको ही बुलवाना। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जो सुचारू रूप से चर्चा चालू हुई है उसकी, और दोनों पक्षों को धन्यवाद की चाहिए। अगर 5-7 दिन पहले हो जाता तो कम से कम समय तो खराब नहीं होता हमारा और देश का, कुछ बोल लेते राष्ट्रपति अभिभाषण पे भी। सभापति महोदय, जो आम बजट आया केंद्र सरकार का, इसके अंदर गरीब, किसान, मजदूर, युवा और मध्यम वर्ग बजट जब आता तो उम्मीद रखता देश का प्रत्येक वर्ग कि अब बजट आएगा, कुछ विशेष रूप से हमें सौगात मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से कोई वर्ग इस बजट से ज़्यादा खुश नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा देती है सरकार, कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घरानों का बजट बनकर रह गया। पूर्व वक्ताओं ने भी लंबी चौड़ी बात यहाँ पर कही। सभापति महोदय, हमारे देश में आयकर, अधिभार, उपकार, जीएसटी से विभिन्न प्रकार के करों के कारण मध्यम वर्ग, वेतनभोगी, कर्मचारी, पेशेवर वर्ग आर्थिक रूप से शोषित महसूस कर रहे हैं। और जो बहुस्तरीय कर का ढांचा है उससे नागरिकों को वास्तविक आय और बचत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके बजट में सरकार ने उच्च और बहु कराधान की प्रणाली में सुधार करने कोई ठोस रोड में तैयार नहीं किया। सभापति महोदय, अमीर गरीब की खाई बढ़ाने वाला बजट है। आपने स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य कर दी, मगर राजस्थान सहित कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने ऐसे बीमा बेस प्रीमियम बढ़ाकर सरकार को चुनौती दी, मगर सरकार इस बात को स्वीकार करने से इनकार करी है। इसलिए राहत के नाम पर दिखावा करने में सरकार को ज़्यादा भरोसा है। सो मतलब जिस राजस्थान प्रांत से आता हूँ, लगातार एनडीए को 25-25 सीट, अब की बार भी 14-15 सीट आपको दी। इस बजट के अंदर राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया। हमने बहुत बड़ी मांगे राजस्थान के अंदर करी थी, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हो उस स्टेट को आप मदद करते हो उस साल, ये सही है जो भी आप करते हो, लेकिन राजस्थान जैसे प्रांत का नाम आपको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से मजबूत हुई थी। तो मेरा ये आग्रह है कि जब बजट पे जवाब दे वित्त मंत्री जी दोबारा, जब उसके अंदर हो तो राजस्थान का जिक्र जरूर करें, क्योंकि राजस्थान का नौजवान, किसान, प्रत्येक वर्ग इससे नाराज है कि आपने राजस्थान का जिक्र नहीं किया। विशेष राज्य का दर्जा छोड़ो, नाम तो ले लेते राजस्थान का, ये राजस्थान के लोग चाह रहे थे। सभापति महोदय, महंगाई और मध्यम वर्ग की अनदेखी, इसके अंदर जिस तरह सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ और दवाइयों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद थी कि महंगाई को आप कंट्रोल करने के लिए कोई प्रणाली लाएंगे, महंगाई से राहत देने कोई ठोस प्रावधान आपने नहीं किया। सभापति महोदय, किसान और ग्रामीण भारत के साथ अन्याय, किसान देश की रीढ़ है। आपने जब किसान आंदोलन हुआ तब एक कमिटमेंट किया था कि एमएसपी और आय दुगनी, ये बात आपने करी थी। मेरा एक सवाल भी आज लगा हुआ था, गोलमोल जवाब दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन किसानों जवानों ने आपकी सरकार बनाई, अगर हर बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगेगी तो किस तरफ जाएगा जवान किसान। देश के अंदर अलग ही रूप से लोग सोचने लगे। मेरा आग्रह है जब बजट के अंदर आप जवाब दें, खाद बीज महंगे हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं यूरिया और डीएपी के लिए। सौद महोदय, युवाओं के साथ आपने कोई रोजगार के ठोस साधन सर्जित करने की बात करी, नहीं हो रहे हैं। मैं एक न्यूज़ चैनल के अंदर देख रहा था कि प्रधानमंत्री कौशल का जो पैसा जा रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री कौशल के जो केंद्र बने हैं वो कुछ नहीं है। अधिकारी कह रहे कौशल केंद्र चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कई तो लोगों ने अपना घर बना रखा, कहीं दूसरा कोई गौशाला बना रखी, कहीं बकरी पालन हो रहा है। ये प्रधानमंत्री कौशल योजना है, वैसे चल रही भ्रष्टाचार। और यहाँ से ये हमारे मंत्री जी बैठे, मंत्री जी आप ध्यान दें, टीम भेजें राजस्थान के अंदर, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही है उन लोगों को गिरफ्तार करें, सीबीआई जांच कराएं। एक मैसेज आपको देना चाहिए, आपको अधिकारी सही बात नहीं बताते, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है साहब। ये एक मिनट सर, एसएससी जैसी परीक्षाएं, पेपर लीक, भर्ती में देरी, कोई रोड में राजस्थान के तो सारे पेपर आउट हो रहे हैं। ओएमआर सीट, उससे पहले आरपीएससी घोटाले, ऐसा ही भर्ती। तो मेरा आग्रह है कि अब आप वैकेंसी निकालें और ठोस जवान का एक भरोसा। ये सब राज्य का विषय है। एक राज्य नहीं, दिल्ली का ही बता दो साहब, पूरे देश के अंदर पेपर आउट हो रहे हैं। नीट के भी पेपर आउट हुए, और भी हुए, बिहार में हुए, बंगाल में हुए, राजस्थान के अंदर हुए। तो मेरा आग्रह है कि पेपर ही जब आउट हो जाएगा तो नौजवान भरोसा कैसे करेगा। आप भी तो भरोसा, जब जहां आज आप इस चेयर पर बैठे हो, अभी आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं सभापति है,
लेकिन लोग आपको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष से। अच्छा क्या बात है, सही है साहब। और आप मुझे बैठा दो, मैं एक दिन में मैं इसके पावर बता दूंगा आपको एक चक्कर के अंदर। तो जो बैठा है वही राजा है। और आप तो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, जब आपके नाम की मूवी बनी थी, नाइक फिल्म आई थी, देखिए आप। हाँ तो फिर तो जगदम्बिका पाल जी का नाम स्कूल में थे, जब सुनते थे कि अरे भाई मास्टर साहब ऐसे क्या कर रहे हो यार, तो इस बिना कोरम बोल तो रहे हम लोग, थोड़ा तो दो टाइम यार, थोड़ा टाइम दो। फिर हमने तो आपके बार आपको बाधा भी नहीं डाली, वहाँ भी नहीं आया यार, ऐसे क्या कर रहे हो। चलिए फिर क्या वही बुलाना चाहोगे। शिक्षा स्वास्थ्य केवल घोषणाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर आप देखिए अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है। और हमारे केंद्रीय जो केंद्र से संचालित विद्यालय हो रहे हैं स्टेट के अंदर है, तो वहाँ स्टाफ कैसे लगे ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ साहब। CSR की राशि के व्यय के लिए ठोस CSR, जहाँ से आप बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर से देश के तमाम जगह जहाँ माइनिंग हो रही है, दूसरा काम हो रहा है, वहाँ संबंधित MP को कोई नहीं पूछता। निशिकांत जी दुबे को पूछ सकते हैं, हमें नहीं पूछते, क्योंकि ये कागज के अंदर निकाल लेते हैं। अब हमें पढ़ने का समय थोड़ी है, ये पढ़ पढ़ के इतना करके लाते हैं कि हर लोग जवाब देते हैं हमारे को कि साहब निशिकांत जी के वहाँ तो काम हो रहा है। अरे भाई हमारे भी करो खाली, निशिकांत जी काम थोड़ी चलेगा। मेरा आग्रह है तो आप भी एक मिनट, आप भी निशिकांत जी के साथ आ जाइए, आप निशिकांत जी के साथ आ जाइए। सर निष्पक्ष रहिए, सर निष्पक्ष रहिए। एक सर मेरा आग्रह है, नहीं मैं फिर आ जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं तो चाहता हूँ आप भाषण देने के बजाय मंत्री बनो, भाषण ही देते रह जाओ पूरे जीवन। हम आगे लाना चाहते हैं, जितनी तैयारी के साथ जितना भाषण दोगे उतना ही मंत्रिमंडल में नंबर लेट आएगा आपका। सभापति महोदय कृपया एक मिनट सर सुनो, कुछ जल्दी OPS बहाली की मैं मांग कर रहा हूँ सभापति महोदय। NPS को सरकार सुधार बता रही, लेकिन सच्चाई है कि इसने कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा को जुए में डाल दिया। जहां पुरानी पेंशन स्कीम OPS में सम्मानजनक और निश्चित जीवन था, वहीं NPS में बुढ़ापे को बाजार के विरोध छोड़ दिया। सरकार विकास की बात करती है। एक मिनट साहब समाप्त तो करने, कुछ सुझाव है हमारे। मेरी मांग है कि पैरामिलिट्री तमाम केंद्रीय कार्मिकों के लिए OPS बहाल की जाए, क्योंकि OPS में भरोसा था, इस तरह से सम्मान था। मैं कुछ सुझाव दे दूं, आप कहे तो बताओ। सुझाव दे। अब साहब ऐसा है कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सही तरीके से हाउस के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है विधानसभा का ठीक नहीं जाता, लेकिन यहाँ ठीक है, तो इसको ठीक बनाकर आगे हमें टाइम दिया करें आप लोग, क्या दिक्कत है। मैं कुछ सुझाव दे देता हूँ सभापति महोदय। एक तो मेरा सुझाव है, राजस्थान की तेज एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विपरीत हालातों को देखते राजस्थान विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अंतर्राज्यीय जल विवादों का निस्तारण करने के लिए पंजाब, गुजरात से राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को दिलाया जाए। नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये फलोदी से पश्चिम राजस्थान पेयजल व सिंचाई हेतु चिनाब के जल को ERCP की तर्ज पे WRCP बना के विशेष बजट आवंटित किया जाए। सब मैं समाप्त कर रहा हूँ, आधा मिनट में। मेरे संसद से नागौर के डीडवाना, कुचामन जिले के मकराना में मार्बल की अंतर्राष्ट्रीय मंडी स्थापित की जाए। हवाई पट्टी नागौर का विस्तार किया जाए। सर विश्वविख्यात पान मेथी सहित राजस्थान के 40 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिया जाए। मेरे संसद से नागौर के केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना, आधा मिनट में समाप्त कर रहा हूँ सर, आप बैठे हो, ये आधा मिनट मुझे दो। मेरे संसद से नागौर के डीडवाना, कुचामन जिले कुचामन में सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्वीकृत की जाए। सर क्यों सर पर्वत सर और मेरे क्षेत्र की 3 केंद्र, मैं समाप्त कर रहा हूँ, 3 केंद्र 20 सेकंड सर अभी चल रहा है आपके बैठे हुए अब्दुल अजीज साहब आधा मिनट। मैं नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन में लिथियम के खनन है, तो आप काम करें। एक सर सांसदों का बजट आप बढ़ा के 25 करोड़, नरेगा का चेयरमैन सांसद को बढ़ाओ और सांसदों को कुछ अधिकार दो। जिस तरह विधानसभा अरावली के अंदर जो रोक लगी, सरकार इसके अंदर अरावली पे रोक। अब्दुल अजीज साहब ये मेरा प्रमुख। इसके बाद मल्लू रवि जी के बाद सर उम्मीद है कि आप मुझे नहीं मौका देंगे, आप बैठ जाइए। तुम्हें अभी बैठ जाइए। स्पीकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन द बजट। सर, this budget is meant to serve as a roadmap that reflects the aspirations and needs of the country. The question before us is whether this budget truly reflects that responsibility. The answer is evident and requires little elaboration. The budget has been a disappointment for the common citizen. It conveys a clear message that Delhi dur hai. There appears to be a lack of sensitivity towards the difficulties faced by the people, and the budget reflects that growing
disconnect between the government and the lived realities of the citizen. Sir, this budget doesn't meet the requirements of the unemployed youth. The budget is increasing the capital corporations only, not the mass employment. Number two, sir, unemployed about the agriculture. In the agriculture also they have not attended the MSP, which will give more production of the food grain. That is also not attended. Food security also they have not attended, sir. Next, employment, unemployment, again, women, sir. The struggle of the poor and the informed workers are compounded by weakening social safety nets. Over recent years, public investment in food security has declined significantly. Allocations under the National Food Security Act, including key programs such as Integrated Child Development Services, PM Portion, and maternity entitlements have been reduced by nearly 50%. This reduction has weakened India's nutrition safety net at a time when it is most needed, sir. Then, since 2014, 5 minutes, sir. 5 minutes already you have taken. 2014, the rupee has depreciated over 50%, touching Rs 90.12 for USD by January 2026, and was among the worst performing Asian currencies in 2025. Sir, this weekend nearly 92% USD. This shows how the economy of India is weakening in the world economy. Sir, one more. When it comes to Telangana, sir, I come from Telangana, Nagar Kannur, 2 minutes. Telangana's proposal for other major infrastructure heavy projects such as Hyderabad Metro Rail Phase 2, Regional Ring Road and Musi River Development Project, and then Palamuru Rangareddy Irrigation Project. All these projects are neglected in the budget, sir, in spite of the repeated representation given by the Chief Minister and members of Parliament from Telangana. Your point is well taken. Overall, this budget represents a clear shift away from the from the needs and farmers, workers, students, patients and states, and instead prioritizes capital markets and balance sheet presentation over constitutional obligations. Thank you. And Abdul Aziz साहब. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड्स मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को पहले ही दे चुका हूं और उम्मीद है कि वो उनका ख्याल रखेंगी। और राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वो भी शुक्रिया, वो भी सुनिए कि मैं नोट कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो मेरी इससे पहले मैं अपनी बात कहूं, मैं अपने जो लेट अस एडमायर दोज पीपल हु रियली फाइट फॉर देयर कन्विक्शन एंड कमिटमेंट, जो अपने राज्यसभा के सदानंद मास्टर जी हैं, इतनी कष्ट उठाने के बाद राज्यसभा पहुंचे, जो उन्होंने स्पीच दी मैंने वो सारी टीवी पे देखी। मैं उनको अपनी तरफ से कटिंग अक्रॉस हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो फाइट किए अपनी लाइफ में, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रांची ट्रॉफी में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, उनको भी मैं मुबारकबाद दे सकता हूं। जेल में हूं, वहां जा नहीं सकता। उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। 140 करोड़ लोग, हर कोई आप में से कहता है, 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं आपने 6 दिन इस हाउस को हॉस्टेज क्यों रखा। ये आपकी जागीर नहीं है, ना इनकी ना आपकी। आपको किसने अधिकार दिया? यहाँ मेरे जैसे एमपी भी हैं जो 1.5 लाख रुपया मेरे नाम पर रोज चढ़ता है पार्लियामेंट आने के लिए, और यहाँ आपका चेहरा देखकर हम सिर्फ शोरगुल और इस वक्त कहीं नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, ये बुरा हुआ कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले। इससे पार्लियामेंट का स्टेचर जो है, प्लीज फॉर गॉड सेक थिंक ओवर दैट। मेरी ये गुजारिश है। रशीद साहब, सर बजट पे बोल लेना। ये बचत ये है जनाब, 1.5 करोड़ रुपया 1 मिनट का है, 1 घंटे का खर्च होता है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ। मैं तो ये सर आपसे कह रहा हूँ, जहाँ तक बचत की बात है,
हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के जो हैं वो बिल्कुल सरकार के आभारी हैं, जैसा अभी हमारे जम्मू के दूसरे भैया अगर आप खामोश हैं तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया सरकार का कि हमें बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे का क्या करें अगर वहाँ अमन शांति ना हो। सरकार का दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर बना है। हो सकता है अगर वो अपने दावे में सही हैं तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा, इस बचत प्रोविजन में कुछ करोड़ रुपया रखें, जम्मू कश्मीर के लोगों से एक छोटा सा रेफरेंडम करा के पूछें क्या वो 370-35 से हटाने से खुश हैं। अगर थे हम सब आपका बहुत ही आभार प्रकट करेंगे। उसके बाद मेरी ये गुजारिश है, आप चाहे कितना भी पैसा मर्जी दे दें, लेकिन जब तक आप मेहरबानी करके आप अगर वहाँ की सड़कों पर सोना भी बिछा दें आपको 370 और 35 से सूद के साथ वापस देना पड़ेगा। यू कांट डू इट लाइक, समाप्त ही कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी ये गुजारिश है, ये मेरी गुजारिश है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अत्याचार हमारे साथ किया, आपकी आइडियोलॉजी थी, आप लड़े, हम भी 100 साल लड़ना पड़े, 370-35 से आपको देना ही पड़ेगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, कश्मीर पंडितों की बात करता है नहीं, वो बात आपकी ये देखिए, जो पार्लियामेंट से कानून बना है उसको आपके सभा की कार्रवाई, अब आप अपनी बात को समाप्त करें। गया 370 हटाना है, चलिए सर कोई की, हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया, हो गया सर, हो गया। आपकी बात आ गई अब्दुल रशीद साहब, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हाउस उठाइए, हाउस उठाइए। सर नहीं देना, स्पीकर साहब ने। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 11 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 8 बज गया। आप
नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अहम कदम सामने आया है। दोनों देशों के बीच हुए नए व्यापारिक समझौते से। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अहम कदम सामने आया है। दोनों देशों के बीच हुए नए व्यापारिक समझौते से मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिली है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात, उद्योग और रोजगार पर पड़ने की उम्मीद है। आखिर यह समझौता क्यों खास है और भारत को इससे क्या फायदे होंगे, आज का विशेष इसी मुद्दे पर। बदलती हुई वैश्विक राजनीति, नए व्यापारिक समीकरण और भारत अमेरिका संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़। आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक और आर्थिक समझौते की जिसने न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई दिशा दी है, बल्कि वैश्विक व्यापार और शक्ति संतुलन पर भी गहरा असर डाला है। एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। This is one of the most important development and we all have been waiting for this. In one line I will say this is a very fair, equitable framework where India's interest comes first, and that is something has been ensured by our government under the leadership of Prime Minister Modi, and with the very active efforts on behalf of the ministry, where Honorable Minister Piyush Goyal has been actively involved and pursued on behalf of our country. I must say that this is something which brings a lot of expectations for the industry and for entire country. यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि यह ऐसे वक्त में सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापारिक तनाव और भू राजनीतिक दबावों से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत और अमेरिका का और करीब आना न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक समझौते या एक सरकार की देन नहीं है। ये संबंध दशकों में विकसित हुए हैं, कभी उतार चढ़ाव के साथ तो कभी रणनीतिक साझेदारी के रूप में। शीत युद्ध के दौरान दूरी रही, लेकिन 21वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बनकर उभरे। लोकतंत्र, मुक्त बाजार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, ये वो साझा हित हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका को और करीब लाया। A country like the United States of America, where the cost of labor is probably 50 times the cost of labor in India. A country like the United States of America with a per capita income of $90,000 nearly, versus India which is at $3,000 per capita. There is certainly no competition. We actually complement each other. And for our national security, we will certainly need many ICT products. For example, NVIDIA chips. We will certainly need AI equipment. We will certainly need data centers if we have to remain abreast with what is happening in the world. If our IT companies
have to reorient themselves to start becoming more in tune with the needs of the world. We will need these important ICT products. It is a big win. I repeat, it is a big win for India that America has agreed to provide us all these ICT products, which are the need of the hour in our country. क्योंकि 60% काम हमारा अमेरिका से था, तो जैसे ये FTA का जो FTA होते ही हमारा 18% आ गया 50% से, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा है ये, इस तरह जो भारत सरकार ने किया है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत टर्मोइल में थी, बहुत सैड स्टेज में थी। 22% हमारा काम ऑलरेडी कम हो चुका था, तो अब इससे नया ऊर्जा, नया उत्साह के साथ हम लोग ऑलरेडी काम में लगेंगे और इंडस्ट्री के अंदर बहुत इसका व्यापक स्वागत हो रहा है। अमेरिका का मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ में कटौती के फैसले को भारत की आर्थिक कूटनीति की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इससे भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर कंपटीशन मिलेगा, जिससे निर्यात बढ़ेगा और घरेलू उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। इसका सीधा फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, छोटे और मध्यम उद्योग और रोजगार के अवसर पर पड़ने वाला है। जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ता है, निवेश आता है और इससे आर्थिक रफ्तार तेज होती है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि विकास से जुड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के बाद एक बड़ा ऐलान सामने आया। मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। ये फैसला क्यों अहम है? क्योंकि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है और टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स की बड़ी हिस्सेदारी वहीं जाती है। कम टैरिफ का मतलब भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। The historical deal between India and US was, we are very happily noted, and it is good for Tripura apparel exporters. Especially, we are doing around 15,000 crores business with American market. This will be double in within 3 years' time. And it will give more opportunity for employment, more foreign exchange, and we welcome the historical deal between the America and India. इस टैरिफ कटौती का सीधा असर पड़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की आर्थिक कूटनीति की जीत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति के प्रयासों में अमेरिका का पूरा समर्थन करता है। ये बयान केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि भारत वैश्विक मंच पर अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर,
व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। जो अभी एग्रीमेंट which has come into effect from 7th Feb, so it has been widely welcomed by all exporters. Though I represent Carpet Export Promotional Council and Indian Silk Export Promotional Council. As far as silk is concerned, there's a big excitement because it comes under 0% tariff. So by I think 3-4 days, all the agreement details will come. So we will come to know exactly how things will go from here, and definitely trade has been started and people who are exporting. And you have to see the other perspective of this trade agreement. If you see, we are at the 3rd position, UK, European Union, and after that is the 3rd lowest is Indian tariff, that is 18. After that, a lot of economies or like a lot of countries, they are falling after India, 19, 20, some are 30. So we at India at presently is at a 3rd position. If you see the other perspective, that is European Union, UK, they fall under 10% or 15%. We are falling 18%. So we have to see how our leadership will take up with the coming time, so that the more benefits will come for the export segment. As far as import segments are there are people who are importing, and they will see how this is safeguarded so that our farmers, our agriculture produce won't get affected much. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गर्मजोशी दिखाते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अद्भुत संबंध हैं और आने वाले समय में ये और मजबूत होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता बताया। ये बयान कूटनीतिक भाषा से कहीं आगे था। ये व्यक्तिगत केमिस्ट्री और राजनीतिक भरोसे को दर्शाता है। सवाल उठता है, क्या ये समझौता सिर्फ टैरिफ और व्यापार तक सीमित है? जवाब है नहीं। भारत अमेरिका संबंधों में रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक पहलू जुड़े हुए हैं। ये ट्रेड डील इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत आधार देती है। It is a great agreement. It is mother of all agreements that everyone, the entire industry was, exporting community was waiting for. I think this 18% duty structure, which puts India at an advantage in comparison to other competing countries, especially thinking of US as an importing country in products like handicrafts, carpets, jewelry, leather, etc. It gives us a great advantage. It's not something that, is what it was earlier on, but still it gives a huge advantage. All labor-intensive industries that I had mentioned will especially gain a lot out of it. I think the backlog of exports that was being held up for the last 9-10 months will now be cleared in the next 3 to 4 months, and we should multiply our exports many folds in the coming year. So it's a very welcome sign. It's a very healthy sign, not only for Indian exports, but for the Indian manufacturing ecosystem, because more jobs will get created. I think the future of handmade products from India or exports from India will absolutely multiply, and it will help us in our GDP growth, in everything possible. इस समझौते का एक वैश्विक संदेश भी है। जब दुनिया ट्रेड वार, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत और अमेरिका का करीब आना एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी का संकेत देता है। ये संदेश चीन, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों तक भी जाता है। आने वाले समय पर नजर रहेगी, क्या ये टैरिफ कटौती और बढ़ेगी? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में कदम बढ़ेंगे? और क्या भारत अमेरिका मिलकर वैश्विक आर्थिक नेतृत्व निभाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं, अगर ये गति बनी रही तो भारत अमेरिका साझेदारी 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली रणनीतिक दोस्ती बन सकती है। कई सारे किसानों के किए गए वस्तु
किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से शून्य ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी हैं, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी टैरिफ में कटौती ये संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मोल भाव करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। आज भारत सिर्फ नीतियों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नीतियां गढ़ने वाला देश बन रहा है। जनता की नजर में भी ये समझौता उम्मीदों से जुड़ा है, क्योंकि जब निर्यात बढ़ता है तो उसका सीधा असर रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पड़ता है। मेड इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में इसके प्रभाव आंकड़ों में दिखेंगे, लेकिन संदेश अभी से साफ है। भारत वैश्विक व्यापार में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका दो लोकतंत्र, दो आर्थिक ताकतें और अब और भी गहरे रणनीतिक साझेदार। ट्रेड डील से आगे बढ़कर ये रिश्ता अब भरोसे, सहयोग और साझा भविष्य की कहानी लिख रहा है। यही है भारत अमेरिका संबंधों की नई तस्वीर। भारत अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपने हितों को आगे बढ़ा रहा है। वह न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार और उभरता हुआ नेतृत्व भी है। तो साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण में भारत की बढ़ती ताकत का संकेत भी है। निर्यात से लेकर निवेश और रोजगार तक इसके असर आने वाले वक्त में और साफ दिखाई देंगे। आज भारत सिर्फ वैश्विक फैसलों का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनके दिशा तय करने की क्षमता भी रखता है और यहीं से भारत की नई पहचान बनती जा रही है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। पिछले एक दशक में भारतीय संसद ने केवल विधायी कार्यों में ही नहीं, बल्कि डिजिटल परिवर्तन, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय संसद एक पेपरलेस, प्रोसेस ड्रिवन और डेटा सेंट्रिक संस्थान की ओर बढ़ चुकी है। कार्यसूचियां, प्रश्नोत्तर, बुलेटिन, रिपोर्ट्स और बहसें, लगभग सभी संसदीय प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही हैं। इस परिवर्तन को दिशा देने में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय और पहल का महत्वपूर्ण योगदान है। सांसदों को टैबलेट आधारित सिस्टम, ई ऑफिस, डिजिटल प्रश्न प्रणाली और रियल टाइम सूचना उपलब्ध करवाकर संसद को सहभागी लोकतंत्र यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की ओर
अग्रसर किया गया है। लोक सभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो हर चीज़ों का डिजिटल कर दिया है, तो उसके कारण हम लोग एक तो देखिए पेपर वेस्ट नहीं होता है या हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ता है पीए के पास, हमको सीधे ही हमारे व्हाट्सएप पे हर मैसेज आ जाता है। बहुत कम समय में पूरा डिजिटलाइजेशन होगा, हम क्वेश्चन डिजिटल पूछ सकते हैं पोर्टल पे, हमको आंसर मिलते हैं, 0 आवर हो जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब डिजिटल मिलते हैं। टू रिसीव आवर डेली business as well as all of the relevant papers that we require to efficiently function in the house, alongside of course any of the material we want as well, so easily available just on our phones. तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, इसके लिए चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सांसदों में भी हो रही है। हर घर में डिजिटल का सिस्टम प्रवेश कर गया है, ऐसे में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का संसद को डिजिटल करना वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कदम है कि डिजिटलीकरण से आम सांसद को सुविधा मिली है, व्हाट्सएप के द्वारा और कामकाज करने निपटान में उनको सुविधा मिली है और इसलिए बहुत अच्छी उनकी प्रक्रिया और पहल है। बधाई देता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने डिजिटल इंडिया की न केवल कदम बढ़ाया, आज पूरे विश्व में उसकी छाप हमको समझ में भी आ रही, दिखाई भी दे रही। और यहाँ डिजिटल लोकसभा में आज हम देखते हैं हमको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हो गई। जैसे ही हम टेबल पर पहुँचते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स की बटन दबाते हैं, हमको सब पता चल जाता है। बहुत बड़ी सुविधा डिजिटल सिस्टम होने से हुआ है। एक तो कागज़ और कागजात के फेरे ख़त्म हो गए, मोबाइल पर भी खोल सकते हो, कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर करके उसको देखने का काम कर सकते हो। अब हर चीज़ हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी तुरंत आ जाती है। मतलब इतना कि अगर हमारा पार्लियामेंट स्थगित हुआ, एडजॉर्न हुआ, तो वो भी लिखकर तुरंत आता है। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है, सांसदों को सारा इनपुट तुरंत मिल जाता है और डिजिटल माध्यम से तुरंत अवेलेबल होता है सारा रिसर्च पेपर्स हो जो हम बोलते हैं। महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया। और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में इन्हें काफी गोलियां लगी थी,
खून काफी बह चुका था। इनका जीवित बचना इनके जीवट और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है। Grit and determination under extreme adverse circumstances. Honored with Paramveer Chakra. Prahlad Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak Datu. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि देश में स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती बिजली को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में कई प्रावधान किए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कुल बजट का 80% से अधिक हिस्सा अब सीधे तौर पर आम घरों और किसानों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने वाली दो प्रमुख योजनाओं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम पर खर्च किया जाएगा। सरकार का यह कदम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए बिजली के खर्च को कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों से सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिल रही है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 32,911 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। जाहिर है बजट में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों की करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सचिन चुग जी हमारे साथ जुड़े हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हाइड्रोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे सुब्रमण्यम पुलिपका जी से जो सीईओ हैं नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सुब्रमण्यम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईपीई ग्लोबल में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के ग्लोबल सेक्टर हेड अविनाश मोहंती जी। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। और अविनाश जी शुरुआत मैं आप ही से करूंगा क्योंकि सरकार ने बजट में ऊर्जा को प्राथमिकता में रखा है। बात चाहे मैं हाइड्रोजन एनर्जी की करूं या परमाणु ऊर्जा की जाए या सौर ऊर्जा की, सरकार का लक्ष्य जो है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? गुड इवनिंग मनोज जी एंड मेरे फेलो पैनलिस्ट। ये बजट एक एनर्जी बजट हम कह सकते हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि ये जो बजट है पूरा डेवलपमेंटल एजेंडा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जो हमारी अग्रसरता है उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। आप एआई या फिर मशीन लर्निंग की जो इनोवेशन की बात हो रही है या फिर जो डेवलपमेंटल सेक्टर है हर चीज जो है इज इंट्रिंसिक टू एनर्जी, वो काफी हद तक एक डिस्टेंट अफेयर होगा। एंड उसी को देखते हुए इस बजट में एनर्जी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा जो एलोकेशन है वो बढ़ाया गया है, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी जो नेट जीरो टारगेट्स हैं। इंडिया को नेट जीरो अगर 2070 तक बनना है तो रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी हैज टू बी काइंड ऑफ फर्स्ट ट्रैक। तो इसीलिए ये बजट में जो एलोकेशन बढ़ाया गया है दैट्स अ वेरी वेल नोटेड मूव। इसके साथ जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की गई है, स्पेसिफिक एलोकेशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए है, इससे क्या होगा ना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो काफी प्रमोट होंगे, स्पेशली सम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर हो गया या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑल ऑफ दोज डिपेंडेंट सेक्टर्स आर काइंड ऑफ गोइंग टू बी लुक्ड
फॉरवर्ड। एंड उसके साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो एलोकेशन बढ़ा हुआ है, एंड सचिन जी आई एम श्योर इज गोइंग टू पुट मोर लाइट ऑन दैट, बट ओवरऑल इसको एक एनर्जी बजट कह सकते हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन को, क्लाइमेट चेंज को अगर मिटिगेट करना है तो उस एंगल से बजट बहुत सही है। एक चीज जो इस बजट में मिस हो रही है वो है, डायरेक्टली मिस हो रही है, वो है क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर फोकस। तभी जाके हम जो क्लाइमेट हब बनने की बात कर रहे हैं उस चीज को अगर हमें फर्स्ट ट्रैक करना है तो वो इस बजट में मिसिंग थी। बट ओवरऑल दिस इज अ एनर्जी ड्रिवन डेवलपमेंटल बजट, दैट्स व्हाट आई विल से। जी, जाहिर तौर पे बजट 2026 और 27 की अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, भंडारण और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है इस बजट के जरिए, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कही गई है इस बजट में, काफ़ी फोकस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ावे को, प्रावधानों को आप कैसे देखते हैं बजट के संदर्भ में? नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पैनल पे बुलाने के लिए। इससे पहले कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर हम केंद्रीय बजट 2026 को देखते हैं, ये बजट एक ऐसे समय पे आया है जब ऊर्जा अब एक केवल सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रही है, बल्कि ऊर्जा को आज की डेट में देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण तीनों की रीढ़ की हड्डी की फॉर्म में देखा जा रहा है। और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं। इस तरह का माहौल है, हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक्सेस करने के लिए किस तरह से नीतियां बन रही हैं और ऊर्जा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। ऐसे में ये बजट 2026 ये बताता है कि अब सिर्फ लक्ष्य बताने का नहीं, बल्कि उनको जमीन पर लागू करने का समय है। यानी बड़ी बात में हम बोल रहे हैं, उसको कैसे हम व्यवहारिक काम की ओर लेके जा रहे हैं, ये बजट उस दिशा में एक सिग्नल पेश करता है। सरकार ने ये साफ कर दिया कि ऊर्जा परिवर्तन को केवल वह पर्यावरण की जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि देश के भविष्य में निवेश की फॉर्म में देख रही है। और इन्हीं चीजों को लेकर जो बजट में प्रावधान दिए गए हैं, अगर वो ग्राउंड पे हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम हाइड्रोजन हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो या कार्बन कैप्चर हो, इन सबको एक जुट होते देखेंगे। और ये एकजुटता जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल और ट्रांजिशन की फॉर्म में काम करने वाली है। अगर हम इस बजट के एस्पेक्ट्स को देखें तो जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर को काफी बूस्ट मिला है, वहीं देखने की चीज ये है कि एनर्जी स्टोरेज, जो कि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम सोलर एनर्जी को ऐड करते रहें, विंड एनर्जी को ऐड करते रहें, लेकिन जो उनकी इंटरमिटेंसीज हैं, जो जिस समय पे उनको हमें चाहिए, उस डिमांड को मीट करने के लिए जो बैटरी और ग्रिड स्टोरेज की तरफ हमने ध्यान दिया है, वो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने के काम दिशा में निर्देश किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो 85 से 90% रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है और 90% परमानेंट मैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में को बनाने में काम आता है, उस तरह के 90% उस चीज को कंट्रोल करता है। उस दिशा में भारत सरकार का ये कदम अग्रणीय है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हम देखने को मिलेंगे इस सेक्टर में। उसके अलावा आपने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन के साथ साथ ये बायोगैस के क्षेत्र में जो काम सरकार जो नीतियां बना रही है, जो एंटायर वैल्यू चेन जो है वो बायोगैस की, जिसपे एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम सरकार ने इस बजट में किया है। आई थिंक जितना भी 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगा रही हैं, उनको बहुत ही सहायता इस बजट से मिलेंगी। जहां पे आप ओवरऑल प्लांट की वायबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात करें, तो सीबीजी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव फाइनेंशियली हमें दिखेंगे। सीजीडी की तरफ एक ऑफटेक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सीबीजी और सीएनजी दोनों को हम मिला के आगे बढ़ेंगे।
तो ये सारी चीजें जो है एकजुट अगर हम करके देखते हैं तो ये बजट जो है बहुत ही सराहनीय बजट है और आगे चल के इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सरकार का लक्ष्य है। पर्यावरण से संतुलित एक ऐसा एनर्जी सेक्टर की स्थापना करना या उसका निर्माण करना जो वैश्विक परिस्थितियों की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सके। और उस लिहाज से इस बजट में पर्यावरण की दृष्टि से और आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एक संतुलन रखा गया है। सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सोलर एनर्जी के लिए। सोलर एनर्जी को लेकर वैश्विक स्तर पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अगर मैं बात जो सरकार की योजना है, चाहे वो बात की जाए पीएम सूर्य योजना की बात की जाए या दूसरी योजनाएं जो सोलर से जुड़ी हुई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मनोज जी। अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का जितने भी प्रोग्रेस का अगर हम एक बार समराइज करेंगे तो पूरा विश्व में भारत तीसरी बड़ी देश है सोलर इंस्टॉलेशंस में। और हम 2014 में जब हमने काम शुरू किया था उस टाइम पे कुल मिला के पूरा इंस्टॉल कैपेसिटी 2000 मेगावाट तकरीबन इंस्टॉल कैपेसिटी था। आज के दिन में सोलर का कुल मिला के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 140 गीगावाट, मतलब 1,40,000 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर में है। ये 10 साल में 70 टाइम्स 70 गुना ज्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आया है। ये दो ही चीजों की वजह से हुआ है। पहले तो जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनका विजन है, और दूसरा जो है हमारा देश का जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ऐसे मैसेज कन्वे करता है कि हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत ही सीरियसली कमिटमेंट के साथ एज ए सेक्टर उनको ट्रीट करता है। अभी आपने बताया इस साल में बजट में 32,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ हमारे मंत्रालय को, और सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ था दो स्कीम्स को, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम। पीएम सूर्य घर का जो भी हमारा टारगेट है 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप लगना है 2027 तक। इस टारगेट को हम 3 साल का लक्ष्य लेके चले थे 2024 से शुरू करते हुए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ लगभग 26 लाख का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है और अभी इस आने वाले साल में 20 लाख का इंस्टॉलेशन और होंगे और हम 1 करोड़ का टारगेट जरूर अचीव कर पाएंगे आने वाले 1.5 साल के अंदर। दूसरा जो है जो हर किसान हमारे देश में जो है उनको एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, जो भी सचिन जी बता रहे थे, उनका अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाने का जो प्रक्रिया है ये पीएम कुसुम स्कीम से ये संभव हुआ है। और पीएम कुसुम स्कीम का पहला जो स्कीम है 4 साल 5 साल का जो समय है वो इस बार खत्म हो चुका है। हम ये आशा करते हैं पीएम कुसुम 2.0 का भी घोषणा बहुत जल्दी होगा और उससे और भी ज्यादा किसान हमारे देश में अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेंगे। लगभग 12 लाख से ज्यादा जो किसान है उनके खेतों पे सोलर पंप्स आज लग चुके हैं और 6,000 मेगावाट से ज्यादा सोलर कैपेसिटी का उत्पादन ऑलरेडी हो रहा है फीडर सोलराइजेशन में। एक चीज इस बजट का खासियत है, जो आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो भी कदम हम उठा रहे हैं, पिछले 3 बजट में अगर हम देखेंगे तो एक साल कुछ चीजों पे ड्यूटी हटाया गया था या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया था या कुछ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया गया था। इस साल जो बजट है, ये बजट बहुत ही इकोसिस्टम अप्रोच बजट है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक जितने भी एरियाज है रिन्यूएबल में, सोलर में, विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, अभी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का भी 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट आ चुका है। तो इकोसिस्टम अप्रोच के साथ ये बजट दिया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, जो सिलिकॉन है, हमारा कॉपर है, सिल्वर है, ये सब सोलर पैनल में बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल्स है।
इसका भी अलग से कॉरिडोर बन रहा है, अलग से सब्सिडी बन रहा है। जी। एनर्जी स्टोरेज का जो भी मशीन हम इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी ड्यूटी हटाया गया है। सोलर बनाने के लिए जो ग्लास होता है उसके ऊपर सोडियम एंटीमनी जो होता है उसके ऊपर भी ड्यूटी हटाया गया है। तो ये मैसेज अभी माननीय वित्त मंत्री और केंद्र सरकार इंडस्ट्री को देना चाहता है कि शॉर्ट टर्म में जितना जल्दी हम हमारा डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज आत्मनिर्भर बन सकते हैं उसके लिए जो भी जरूरत है वो अभी हम आपको देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी इंडिया में बनना चाहिए, मटेरियल्स भी इंडिया से लेना चाहिए, एंड टू एंड माइन से लेके मॉड्यूल तक, माइन से लेके मॉलिक्यूल तक पूरा इकोसिस्टम इंडिया में बनना चाहिए। ये इस बजट का एक मैसेज है। इसी टेम्पलेट पे जो कैपिटल गुड्स के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया, जो बिल्कुल इसी के लिए जी बिल्कुल सुब्रमण्यम जी, कई पहलू हैं इसके, वो मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा, क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए इस बजट में 22,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले साल के संशोधित अनुमानों के मुकाबले करीब 29% अधिक है। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ कम आय वाले परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का है। इसी प्रकार पीएम कुसुम योजना के बजट में रिकॉर्ड 92% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अविनाश जी जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, सोलर ऊर्जा को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर पिछले 1 दशक में बड़ा बदलाव आया है और देश ने काफी उन्नति की है सरकार की नीतियों के चलते। हाइड्रोजन की दिशा में भी सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन परमाणु ऊर्जा को लेकर संसद में एक महत्वपूर्ण बिल भी पारित हुआ और सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। इसको आप कैसे देखते हैं परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में बजट को? देखिए मनोज जी, आई थिंक मेरे फेलो पैनलिस्ट बोथ सचिन जी एज वेल एज सुब्रमण्यम ने टच किया कि अपार्ट फ्रॉम सोलर बाकी ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस क्या है, एंड उसमें न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी पिवटल। बट जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए जितनी हमें आत्मनिर्भरता विद इन इंडिया चाहिए उसके लिए एक इकोसिस्टम पहले डेवलप करना होगा। एंड व्हाट आई कंप्लीटली अग्री कि व्हाट सुब्रमण्यम टोल्ड अबाउट क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम, दिस बजट इज क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर द एनर्जी सेक्टर लार्जली। उससे क्या फायदा होगा ना, हमारा जो मैपिंग है ऑफ एनर्जी की ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एंड एक सेक्टर को अगर ओपन करना है आपको, उसकी जो पोटेंशियल है 100% हार्नेस करना होगा, तो उसके लिए आपको 3 तरीके की चीजें चाहिए। एक है कि सिस्टमिक रेडीनेस होनी चाहिए। सिस्टमिक रेडीनेस रेफर करती है कि किस टाइप की पॉलिसीज, एक्शन प्लान्स एंड मैंडेट्स हैं सरकारों की। सो नेशनल लेवल। एंड सेकंड है टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, कि हमारे पास राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है कि नहीं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल रेडीनेस। ये 3 रेडीनेस है। कुछ महीनों पहले आईपी ग्लोबल ने एक स्टडी रिलीज किया था जिसका नाम था मैपिंग द क्लाइमेट रेडीनेस इंडेक्स। तो इंडिया की जो टॉप 10 एमिटिंग स्टेट्स हैं, कार्बन एमिशंस में काफी हाई हैं, उन स्टेट्स की अगर सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रेडीनेस को देखा जाए तो लगभग हर स्टेट में टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस एक मेजर प्रॉब्लम था। एंड दूसरी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल एलोकेशन। जो सेंट्रल लेवल में फाइनेंसेस अवेलेबल हैं वो एनफ है क्या, क्योंकि रियल एक्शन जो है आपके स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में, गांव में ही होगी। तो उस टाइप की पेनिट्रेशन के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्केल, और वो स्केल के लिए अभी भी ये जो स्टार्ट है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि अभी भी इंडिया एज अ कंट्री हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर है काफी, और उस फॉसिल फ्यूल की ऑल्टरनेटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहिए उसको अगर करना है तो सोलर की पोटेंशियल हमने काफी हद तक हार्नेस कर ली है। हाइड्रोजन इज जस्ट पिकिंग अप, अल्टरनेटिव एनर्जीज जैसे न्यूक्लियर की बात है, तो इसके लिए हमें राइट काइंड ऑफ एनेबलिंग इकोसिस्टम अभी बनानी होगी, बिकॉज उसके एनवायरमेंटल हजार्ड्स काफी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर सही तरीके से नहीं हो। सेकंड है कि उसको हार्नेस करने के लिए जितना हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वो क्रिटिकल मिनरल्स को हार्नेस करने के लिए हमारे पास राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो इन अ होलसम गेम दिस बजट इज जस्ट अ किक स्टार्ट, आई वुड से। अभी तो इनिंग्स बहुत लंबी
है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को, बट जिस तरीके से हमारी डेवलपमेंटल एजेंडा रही है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ट्रैकिंग, 10 साल पहले, एक दशक पहले हम यही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सोलर के ऊपर। सो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जैसे सोलर के ऊपर हमने एक डिकेड में काफी फर्स्ट ट्रैक किया और आज एक हर घर में पीएम सूर्य घर योजना की तरफ से अंतर्भुक्त जो सोलर की अडॉप्शन हो चुकी है काफी हद तक, ये सिमिलर अडॉप्शन हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन के लिए, सिमिलर अडॉप्शन चाहिए होगा न्यूक्लियर के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमें एक दशक नहीं लगनी चाहिए इसके लिए। हालांकि एक फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा और कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इवन दो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। बट रियली दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो इस बजट के थ्रू हम फेस कर सकते हैं एज अ कंट्री, एंड ये हमारे एडवांटेज के लिए जा सकता है, ये है हमारी कैपेसिटी। बिकॉज हम एक यंग कंट्री है और एक यंग कंट्री के पास स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए। ये जो ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हम जा रहे हैं, उसकी वर्कफोर्स की तैयारी हमें बहुत फर्स्ट ट्रैक में करना होगा, तब जाके हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है और ये जो कैपेसिटी गैप्स है उसको मर्ज कर पाए। जी अविनाश जी, जाहिर सी बात है अगर पिछले एक दशक की मैं बात करूं तो चाहे बात सोलर एनर्जी की जाए या न्यूक्लियर एनर्जी की या बात हाइड्रोजन एनर्जी की या ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं, सरकार ने देश कैसे आत्मनिर्भर बने एनर्जी में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इसकी दिशा में नीतिगत फैसले लिए हैं पिछले एक दशक में, और हर बार बजट में प्राथमिकता में ऊर्जा सेक्टर को रखा है, जो एनर्जी सेक्टर है उसको रखा है। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे है, बजट में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी जो पीएलआई स्कीम है उसको भी मजबूत किया गया है, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे छूट दी गई है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो दूसरे पहलू हैं इसके ईवी सेक्टर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मनोज जी, जो पीएलआई स्कीम है उससे डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन हमको उस चीज को आइसोलेशन में नहीं बल्कि एक बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में देखने की जरूरत है। जैसे हम बात करें कि ऑटोमोबाइल्स में आज की डेट में हम ज्यादातर जो फ्यूल है वो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं। अब उस फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम सब देख रहे हैं कि वो कितना हार्मफुल है। 1 लीटर डीजल को बर्न करने में जब वो गाड़ी में चलता है तो हमारे को लगभग 2.25 से 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में फेंकते हैं। तो इस तरह से हमको इसको हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो कि ईवी के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो एनर्जी स्टोरेज में जो इन्वेस्टमेंट करा गया है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट करेगा। तो जैसे कि अदर पैनल मेंबर्स बोल रहे थे, द फोकस जो इस बार के बजट पे है दैट इज कि हम अपना इंडिजनाइजेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम बूस्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इस सेक्टर में हम लेके आए। हमको ईवी के केस में अभी बसेस जो है वो एक बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह आज की डेट में नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम उसको लार्जर सिस्टम का पार्ट बना के चलते हैं तो जैसे कि कार्बन कैप्चर के केस में जो आप प्रावधान हम देख रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान बजट में दिया गया है, उसके मद्देनजर अगर आपको छोटा सा उदाहरण दे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा एमिटर है और ग्लोबल जो एमिशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो लगभग 37 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्लोबली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आपके दर्शकों के लिए अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये लगभग 8 बिलियन लोग जो हम धरती पे रह रहे हैं, एक साल में हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जितना कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल CO2 एमिशंस हम रिलीज कर रहे हैं एक साल में। एंड दैट इज इक्वल टू 2 लाख करोड़ पूरे पेड़ अगर हम लगाएं तो उन पेड़ों की जो क्षमता होगी CO2 एब्जॉर्ब करने की, ये उतना CO2 हम निकाल रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो पावर इंडस्ट्री, स्टील और रिफाइनरी